بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں، جو کہ مجھے پتا ہے آپ لوگ یاد رکھتے نہیں ہیں۔ میں ہی پاگل ہوں، روزانہ کی رٹی رٹائی لائنز آپ سے بول دیتی ہوں جو منہ میں آتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں آپ لوگوں کے لیے شارٹ ناول ریکارڈ کر لوں، لانگ کر لوں، بس ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے بھی اب اپنی مرضی سے جتنی مجھے فیزیبلٹی بھی میں نے اتنا ہی ناول دیا کرنا ہے، نہیں تو پھر نہ سی میں پاگل ہوں 11 گھنٹے پونک دی رہا میں نے 24 گھنٹے میں کنے ویوز لبن 1 مار مار کے، ٹھیک ہے نہیں تو نہ سی۔ ہر بندے کی اپنی لائف ہے، میری خود اپنی لائف میں کتنی 100 چیزیں اپنی زندگی کی چھوڑ کے میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ بھائی بہت ہو گیا، کل کا رسپانس میں نے دیکھ لیا جتنا اچھا آیا، تو بس اب ناول بھی اسی حساب سے آئیں گے۔ جب کبھی دل کیا لانگ دینے میں دے دوں گی، نہیں تو جتنے کی ریکارڈنگ کی میری کیپیسٹی بھی اتنے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیں آج کے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ او فو سونیا، بس بھی کرو یار، ختم کرو یہ رونے دھونے کا پروگرام، بہت ہو چکا، بور کر کے رکھ دیا۔ اس کی قوت برداشت جب تو آپ دیکھی تو بیزاری سے بول پڑی۔ پچھلے 20 منٹوں سے سونی اپنے رومال سے ناک رگڑتی مسلسل سو کیے جا رہی تھی اور مونگ پھلی چھیل چھیل کر کھاتے ہوئے سے گھور رہی تھی۔ کتنی کٹھور ہو تم ظالم، خود کو میری سہیلی کہتی ہو، میری جان پر بنی ہو، تم کو ذرا بھی پرواہ نہیں، تم مدد سے مونگ پھلیاں کھا رہی ہو۔ سونی نے غصے میں آ کے اپنی سرخ ناک کو زور سے رگڑتے ہوئے شکایت بھی کر دی اور گلا بھی۔ یہ لو بھائی، مصیبت تو تم نے زبردستی بنا رکھی ہے، بہت سارا سی بات ہے، تم کے خواہ خواہ اسے جان کا روگ بنائے بیٹھی ہو۔ وہ بڑے اطمینان سے مونگ پھلیوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ظالم، کٹھور، سنگ دل، سونی نے بڑی فراخ دلی سے خطابات سے نوازا۔ بس بس اتنا کافی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گویا بس کرنے کی تاکید کی۔ کرو نا، کچھ کرو نا پلیز۔ سونی نے ٹپ ٹپ گرتے آنسو کو دوپٹے سے پہنچا۔ میں کیا کر سکتی ہوں، اب تو جو کرنا ہوگا ظفر بھائی کریں گے، اس نے شوخی سے کہا۔ سونی نے کے پاس رکھا کشن کھینچ کر اسے دے مارا، جو سیدھا اس کی جھولی میں گرا اور اس کی گود میں رکھی مونگ پھلیوں کے چھلکوں سے بھری پلیٹ کلین پر سجدہ کرنے لگی۔ لو، ان کلین تو چکے گا کون ہے؟ یہ کیا ظالم لڑکی، اب یہ کوڑا کون اٹھائے گا؟ وہ احتجاجاً چلائی۔ تم؟ سونی نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ کیسی لڑکی ہے یہ؟ اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور چھک کر چھلکے پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ پلیز مہرو، بتاؤ نا میں کیا کروں؟ سوئی کا سونی کا راگ پھر شروع ہو گیا۔ شادی کر لو چپ چاپ، بہت اطمینان سے جواب موصول ہوا۔ مہرو؟ سونی نے اس پر مٹھیاں بھیج کر دانت پیستے ہوئے سے دیکھا۔ مجھے اپنا نام معلوم ہے، وہ سادگی سے بولی۔ میں گلا دبا دوں گی تمہارا۔ سونی کی برداشت کی طاقت جواب دینے لگی۔ کیوں بھری جوانی میں مجھے موت کی نیند سلانا چاہتی ہو؟ ابھی تو میں نے دنیا بھی نہیں دیکھی۔ وہ بھلا کہاں پاس آنے والی تھی؟ سونی نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو مہرالنساء کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے چھلکوں سے بھری پلیٹ ایک طرف رکھی اور ہاتھ چھاڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ یقین جانو سونی، ظفریاب خان بہت ہی سلجھے و اچھے انسان ہے۔ میں خود بنفس نفیس ان سے شرف ملاقات حاصل کر چکی ہوں۔ ان جیسے مرد بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی۔ مگر کم از کم مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا، میری مرضی تو معلوم کرنی چاہیے تھی۔ اس نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ لو اور سنو، جب ڈاکٹر صاحب کا پرپوزل تمہارے لیے آیا تھا تو کیا اپیا نے تم سے پوچھا نہیں؟ انہوں نے تم کو ڈاکٹر ظفریاب خان کے متعلق بتایا نہیں تھا؟ مہرو نے سے گھورا۔ ہاں، وہ تو اپیا نے صرف اتنا کہا تھا کہ ان کا رشتہ آیا اور امی ابو نے ہاں بھی کہہ دیا۔ گویا صرف اطلاع دی تھی اپیا نے۔ سونی نے اپنی ناک سکیڑی۔ شکر کرو کہ تمہیں اتنا بھی بتا دیا، ورنہ فیملی میں کتنی ایسی مثالیں کہ لڑکیوں کو تو اتنا بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کی تقدیر جس بندے سے باندھی جا رہی ہے وہ ہے کون۔ کیا تم اپنے خاندان کے رواجوں سے واقف نہیں ہو؟ یہاں لڑکی کی شادی کرتے وقت اس کی مرضی معلوم کرنے کا رواج نہیں ہے، کیونکہ بزرگوں کو اپنے کیے گئے فیصلے پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات درست بھی ہے میری بہن، ہمارے بڑے بہت جہاں دیدہ، بہت تجربہ کار اور بہت زمانہ شناس ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ تم دیکھ لو کہ اپیاں، نازو باجی، تمین آپی، ستوت بجو اور دوسری لڑکیوں کی شادی بھی بزرگوں نے ہی طے کی ہے۔ ان سے تو پوچھا بھی نہیں گیا، انہوں نے تو خوشی خوشی بزرگوں کے فیصلوں پر سر جھکا دیا۔ دیکھو ماشاءاللہ سب کی سب کتنی خوش ہے اپنے اپنے گھروں میں۔ وہ اس پر خاصی سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی دکھ ہو جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سونی نے اختلاف کیا۔ خوشی اگر دلوں کی ہو تو وہ چہروں سے عیاں ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ سب کی سب ماشاءاللہ کتنی خوش ہیں، ان کے چمکتے ہوئے چہروں سے ان کی خوشیاں عیاں ہوتی رہتی ہیں۔ رہا سوال غم کا، تو چھوٹے موٹے دکھ تو ہر انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ کسی کی بھی زندگی بالکل شفاف کبھی نہیں ہوتی کہ مکمل جہاں تو کسی کو بھی نہیں ملا۔ تم خواہ اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو، فضول ٹینشن لے رہی ہو۔ خوش رہو، کھاؤ پیو، اور شادی بھی صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا۔ مہرو نے ہولے ہولے سے سمجھایا۔ مگر پھر بھی مہرو، میں یہی کہوں گی کہ بے شک رشتے بزرگی طے کریں، مگر بالا ہی بالا فیصلے بچوں پر مسلط نہ کریں، بلکہ ان سے پوچھنا تو چاہیے کہ حق تو ہمیں ہمارے مذہب نے دیے۔ سونی نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔
ہاں تمہاری اس بات سے میں 100% متفق ہوں، اس نے سر ہلایا۔ میں نے تو ان کو دیکھا تک نہیں ہے، جانے مزاج کے کیسے ہو؟ وہ فکر مند تھی۔ مہرو نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں ملی ہوں نا ان سے، بہت نائس ہے۔ مہرو نے سونی کی بھیگی آنکھوں کو اپنے دودھیا انگلی سے پہنچا۔ اس وقت صدف دروازے سے طلوع ہوئی۔ جیسے اس کی نگاہ سونی کے روئے روئے چہرے پر پڑی، الٹے قدم لوٹ گئی۔ لو بھی، اب تو بی بی سی نے عوام کو تمہارے گریہ زاری کرنے کی خبر سنا دی ہوگی، اب تم شرافت سے رونا دھونا بند کرو، سمجھی؟ مہرو نے اسے گھورا۔ ظالم سماج رونے بھی نہیں دیتا۔ سونی روتے روتے شکوہ کی نہ ہوئی۔ اچھا مہرو، اگر تمہاری شادی میں تم سے نہ پوچھا گیا تو؟ سونی نے اچانک پوچھا تو لمحے بھر کو وہ ٹھٹکی، مگر پھر خود کو سنبھال لیا۔ میری باری آئے گی تو دیکھا جائے گا، اس نے ٹالنے والے انداز میں جواب دیا۔ اچھا مہرو، ان کو تم نے دیکھا ہوگا، دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ او سونی، کتنی بار بتایا کہ بہت اچھے ہیں وہ، بہت کیوٹ ہیں، ذرا شادی ہو جائے نا تو صبح شام بیٹھی ان کو تکتی رہنا، یقین جانا نظر سیر نہیں ہوگی۔ وہ اس کو چھیڑنے لگی تو سونی نے اسے گھورا۔ ایسی ظالم نظروں سے نہ گھورو، تمہاری شادی اٹینڈ کرنے کی حسرت دل میں لے کر ہی نہ مر جاؤں۔ اس نے مصنوعی گھبراہٹ خود پر طاری کی۔ اللہ کرے تمہاری شادی جلدی ہو جائے، پھر گن گن کر لوں گی تم سے بدلے۔ سونی نے بڑی خوبصورت بددعا دی۔ آمین، جواب میں سے لمبی سی آمین کی۔ بڑی بے شرم ہوگی، سونی مسکرا کے بولی اور ساتھ ہی اس کے ایک ہاتھ چڑھ دیے۔ صحبت کا اثر ہے، وہ برجستہ بولی۔ ٹھہرو ذرا، تم کرتی ہوں میں چچی جان سے بات، تمہیں بھی کسی کھونٹے سے باندھنے کی تیاریاں کرے۔ اس نے دھمکی دی۔ کسی کھونٹے کی کیا ضرورت ہے، کھونٹا تو گھر میں موجود ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور سب لب مسکرا دی۔ یہ آپ ہی آپ مسکرایا جا رہا ہے، کیا چکر ہے؟ سونی نے اس کے کان کھینچے۔ تمہاری شادی ہو رہی نا، اس لیے تم کو ہر طرف چکر ہی چکر نظر آنے لگے۔ مہرو نے اس کو منہ چڑھایا۔ ٹالو مت مجھے، سونی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کچھ نہیں، یوں ہی تم سیریس مت بنو، مجھے لاپ کر بولی۔ اس کا مطلب کہ واقعی کو چکر ہے، سونی کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ توبہ ہے، تم سے بھی کھوجی ہو پوری۔ ظفر بھائی کی تو خیر نہیں، اب وہ ہنس پڑی۔ ہاں دیکھا نا، میرا شک غلط نہیں تھا۔ کون ہے وہ؟ سونی بھی فاتحانہ انداز میں مسکرائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دروازے پر فوج نے اٹیک کیا۔ ہے ارے ہم تک تو خبر پہنچی تھی کہ یہاں سے سیلاب آیا ہوا ہے، گرج چمک کے ساتھ بارش بھی موسلا دھار ہو رہی ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ صاف ہے، بلکہ نہایت خوشگوار ہے۔ کہاں ہے یہ صدف کی بچی؟ ذرا اسے ہمارے حضور تو پیش کرو کوتال، ہم اس گستاخ کو امن امان میں خلل ڈالنے کی جرم کی سزا دیں۔ افواہیں پھیلا کر فضا مکتر کرنا چاہتی ہے۔ باری کی شہانہ آواز پر سونی اور مہرو دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ باری دروازے کے بیچوں بیچ استادہ تھا، جبکہ اس کے پیچھے بہت سارے سر نظر آ رہے تھے، جن میں صدف کا سر نمایاں تھا۔ تو افواہوں پر کان کیوں دھرتے ہیں عالم پناہ؟ عمران کی موت بانا آواز کا کب سے سنائی دی۔ یہاں کا موسم بالکل ٹھیک ہے، تم سب جا سکتے ہو۔ باری نے پیچھے کھڑے درباریوں کو اشارہ کیا۔ جو حکم عالم پناہ۔ حکم ملتے سارے درباری اڑن چھو ہو گئے۔ باری آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آ گیا اور سونی سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیوں رلا رہی تھی میری بہن کو؟ وہ براہ راست مہرو سے مخاطب تھا۔ آپ کی بہن کو ٹسوے بہانے کا شوق تھا؟ شوق ہے؟ میں نہیں رلا رہی تھی اسے، وہ چل کر بولی۔ ارے بھئی یہ کیسا شوق ہوا؟ ہمارے پیارے دلہا بھائی کو تو آپ کا یہ شوق بہت گراں گزرے گا، وہ براہ راست سونی سے مخاطب ہوا۔ مطلب یہ آپ کے دلہا بھائی ہی ہیں، مہرو نے دلہا بھائی پر زور دیتے ہوئے کہا، حالانکہ سونی نے آنکھوں کے اشارے سے اسے کچھ کہنے سے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ صاف نظر انداز کر گئی۔ کیوں؟ اس بار باری حقیقی حیرانی سے گویا ہوا۔ اس کی حیرانگی میں تشویش کا عنصر بھی صاف نظر جھلک رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ تائمی وغیرہ نے ظفر بھائی کی تصویر انہیں نہیں دکھائی تھی، اور محترمہ اس خوف میں مبتلا کہ اگر بھائی ظفر کسی بھنگی چمار کی کاپی ہوئے خدا نہ خواستہ تو ان کا کیا بنے گا۔ حالانکہ میں بارہا یقین دلا چکی ہوں کہ ظفر بھائی کسی گلفام سے کم نہیں، مگر یہ مانتی نہیں۔ اب سمجھائیں ان کو۔ مہرو نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی میز پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈیلا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ میں نے یہ کب کہا کہ بھنگی اور چمار ہے؟ میں تو سونی اپنی دھن میں پہلے تو بولتی کی، لیکن پھر یکدم بڑے بھائی کا خیال ہے تو زبان دانتوں میں دے دی۔ او ہو یار، اتنی سی بات کے لیے اپنی انرجی ویسٹ کر دی تم نے، مجھے تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ باری کو جیسے افسوس ہوا۔ بھائی یہ محترمہ واقعی درست کہہ رہی ہے، ڈاکٹر ظفریاب صاحب نہایت معقول بندے ہیں، ہاتھ پیر ناک کان سب برابر ہے، بال بھی فی الحال پورے ہی ہیں۔ بات کا البتہ کچھ پتہ نہیں کہ رہتے ہیں یا بالکل ہی صفا چٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بول رہا تھا، سونی اور مہرو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آخری بات اس کے سر سے گزر گئی۔ وہ کیوں؟ سونی نے بے ساختہ بھول پن سے پوچھا۔ وہ اس لیے میری بھولی بہن کہ اکثر شریف شوہروں کے اچھے خاصے بال شادی کے بعد خاصے کم ہو جاتے ہیں، یا پھر بالکل ہی صفا چٹ بیویوں کی اونچی ہل اپنا کام دکھا جاتی ہے نا۔ اس کے لہجے میں شرارت بھری تھی۔ مہرو بے ساختہ ہنس پڑی، جبکہ وہ بری طرح چھلکی۔ کیا میں آپ کو ایسی لگتی ہوں بھائی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ بالکل نہیں، میں ظفر صاحب سے یہی تو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے بالوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، کیونکہ ہماری سونی اونچی ہل کا سینڈل استعمال نہیں کرتی۔ نہایت سنجیدگی سے جواب ملا۔ بھائی، وہ احتجاجاً چیخی۔ جی بیٹا جان، بہت شفقت سے بولا۔ اسی وقت کامران نے دروازے سے سر نکالا۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ ایک تو اس قوم کو چین نہیں ہے، باری بڑبڑایا۔ شادی والے گھر اور مچھلی بازار میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ قریبی اور دور پار کے سبھی مہمان اس وقت افندی منزل میں موجود تھے، بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ بچوں نے الگ گل کو پاڑا مچا رکھا تھا، اوپر سے لڑکیوں نے ڈھولک پیٹ پیٹ کر پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ رئیسہ کثر بھانڈوں نے آ کے پوری کر دی۔ بی جان، وہ بھانڈ کہہ رہے ہیں کہ ملکوں کی شادی ہے، ہم تو جوڑے گھوڑے مٹھائی روپیہ سبھی لیں گے۔ خالہ امیرن نے آ کے بی جان کے آگے دہائی دی۔ آئے ہائے امیرن، انہیں اندر کس نے آنے دیا؟
आय हाय मीरन, इन्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर से रुखसत कर देती, बीजाने ने डांटा। क्या करूं बीजान, अब खैर से शादी वाला घर है, कहाँ हर वक्त दरवाजा बंद रह सकता है? खुला दरवाजा देकर घुसा है कम वक्त। अच्छा अच्छा, अब ऐसा करो, वो जो खैरात के जोड़े इनमें से 2 जोड़े और थोड़ी सी मिठाई और चीनी दे दो इन्हें। बीजा ने हदायत दी। मीरन बाहर चली। मेहरू को इस मखलूक से बहुत डर लगता था, जाने कि वो इस बेज़र इंसानों को देखकर बुरी तरह। हाय हाय, मेरा माइक किथे गया? माइक नीचे दफा हो गया, क्या पका हो गया इसे? जाने कि वो इन बेज़र से इंसानों को देखकर बुरी तरह खौफज़दा हो जाती थी। इस वक्त वो अपनी धुन में सहन से गुजरी थी, किसी नजर इन पर नहीं पड़ी। जैसे बीच सहन में पहुंची, इनमें से एक ने जोर से मखसूस लहजे में आवाज लगाई, ए माई, ए शहजादी, ए अल्लाह घर आबाद रखे, हमें भी कुछ दे दे। और वो जो जाने किन ख्यालों में थी, हकीकतन उछल पड़ी। इसने खौफजदा सी नजरों से दाएं जानिब देखा, इनका पूरा ग्रोह बैठा था। इसने इन्हें देखते एक चीख मारी और सरपट अंदर कमरे की तरफ भागी और कमरे में पहुंचकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। और खुद गहरे गहरे सांस लेती हुई दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी होगी। क्या पीछे पागल कुत्ते पड़ गए? बारी की आवाज पर वो चौंकी। इसने गर्दन घुमाकर देखा, वो इस्त्री स्टैंड के पास खड़ा अपनी पैंट पर इस्त्री कर रहा था। लबों पर शोक मुस्कान थी। बारी, वो आए हैं। इसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। कौन? क्या इजराइल आ गए? नहीं वो। इसने वो पर जोर दिया और बारी समझ गया। प्लीज बारी ने निकालो बाहर, वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। तुम्हारा क्या लेते हैं बेचारे, थोड़ी खैरात लेंगे और चले जाएंगे, वो सादे से लहजे में बोला। प्लीज बारी ने निकालो बाहर, मेरी जान जाती है इनसे। तुम्हें मालूम भी है अचानक किसने इन्हें अंदर आने दिया? आज तक की बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम बेचारों से इतना डरती क्यों। सच मुझे तो बड़ा तरस आता है, बेचारे किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, वो पलक निकालते हुए बोला। तुमको बड़ी हमदर्दी है ना इनसे, तो इन्हीं टोले में जाकर शामिल हो जाओ, वो भुनागी। ला हौला वला, कभी सोच समझ के भी मुंह से बात निकाल लिया करो, वो गड़बड़ा के बोला। अच्छा हटो, मुझे तो बाहर जाने दो। इसने अपनी पैंट बाजू पर डाली, दरवाजे की तरफ आया जहां वो बंद दरवाजे के एन सामने खड़ी थी। अच्छा तुम देखो कि वो है या नहीं, वो एक तरफ हटती हुई बोली। बारी ने दरवाजे की चटकनी खोलकर दरवाजे के दोनों पट खोल दिए, बाहर निकल आया। है या नहीं, इसने बाहर झांके बगैर पूछा। खुद देख लो आकर, बारी की आवाज सुनाई दी। बारी प्लीज, इसने रोहानसी होकर मिन्नत की, लेकिन इधर से कोई जवाब नहीं मिला। चंद लम्हे यूं ही खड़े रहने के बाद इसने डरते डरते बाहर झांका तो सेन खाली था। इसने शुक्र का कलमा अदा किया और बारी को कोसती हुई बाहर निकल आई। सामने अमीरन खाला से मतभेड़ होगी। खाला, इन भांडों को किसने अंदर छोड़ा था? खुद ही आगे थे बेटा, आइंदा ना आने पाए, बड़े बिगड़े हुए अंदाज में कहती वो आगे बढ़ गई। ये देखे बगैर कि रूबी की चमकती हुई आंखों में शक के साए लहरा रहे हैं। रूबी ने हैंडल दबाया तो दरवाजा खुल गया और बड़े आराम से अंदर आई और दरवाजा बंद किया और सुकून से चलती हुई कमरे के वस्त में बिछे डबल बेड के नरम फॉर्म पर नींद दराज होगी। इसने कमरे के इत्ताफ में निगाहें घुमाई, सारा कमरा खाली पड़ा था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। इसने इत्मीनान से साइड टेबल पर रखा मैगजीन उठाया, वर्ड गर्दानी करने लगी। कुछ देर बाद पानी गिरने की आवाज बंद होगी और चंद लम्हों बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और व्हाइट पाथ गाउन पहने, तौलिए से सर रगड़ता, बारी सीटी पर कोई प्यारी सी धुन बजाता बाहर आया। हेलो अब्दुल बारी अफंदी, बहुत प्यार से इसे मुखातिब किया गया। वो जो अपनी धुन में था बुरी तरह चौंक गया। इसने मुड़कर बेड की तरफ देखा और इसका गुलाबी रंग कंधारी अनार की तरह हो गया। यू नॉनसेंस, इसने नहायत गुस्से में तौलिया कालीन पर पटका और खुद वापस बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो बाहर निकला तो इसके कसरती जिस्म पर पैंट और शर्ट मौजूद थी। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि किसी के कमरे में बिला इजाजत दाखिल नहीं होते, वो भी एक मर्द के कमरे में? बेहूदगी की भी इंतहा होती है। रूबी, गुस्से और शर्मिंदगी से इसका बुरा हाल था। शर्मिंदगी से इस बात पर और थी कि बेखबरी में से मगर रूबी के सामने ऐसी हालत में चला, और गुस्सा इसे इसकी दर्जा बेबाकी पर है। तुम कोई गैर तो नहीं, वो बेहद अपनायत से बोली। देखो रूबी, तुम इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें उठा के कमरे से बाहर फेंक दूंगा, समझी? भरा हुआ घर है, तुम्हें कोई लिहाज पास नहीं किसी का भी? बारी का सपनाक होकर वो बोला। क्यों, अब तुमको ये ख्याल क्यों करा रहा है? कोई तुम्हें और मुझे अकेले कमरे में देख लेगा तो क्या सोचेगा? तुमको ये ख्याल इस वक्त क्यों नहीं आया, जब अभी कुछ लम्हे पहले तुम और मेहरू नीचे आपा जान के कमरे में बंद? वो तंजिया लहजे में कह रही थी, लेकिन बारी ने इसका जुमला पूरा ही नहीं होने दिया और इसने रूबी को बाजू से पकड़ के एक झटके से उठा, तकरीबन घसीटता हुआ कमरे के दरवाजे तक ला, बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा अंदर से बंद करके चटकनी लगा दी। तो बीबी है ही ऐसी काबुल सी नॉनसेंस, बेहुदा लड़की। शदीद गुस्से से इसकी कनपटियों की नसें फूलने लगी। इस लड़की से एलर्जी थी, कहने को तो वो इन्हीं के खानदान की थी, मगर इसकी कोई बात भी खानदान की दूसरी लड़कियों से मुताबिकत नहीं रखती थी। इससे ज्यादा गुस्सा इस बात पर भी आ रहा था कि इसने इन दोनों पर शक किया कैसे। ये तो वो जानता था कि इसकी ज़हनियत कितनी पस्त है, मगर वो इतना भी गिर सकती है वो सोच भी नहीं सकता था। मगर वैसे लोगों की कभी भी परवाह नहीं करता था, इसलिए इसने किसी भी बात की वजाहत भी करना ज़रूरी नहीं समझा। हेलो, कमरे में दाखिल होते हुए रूबी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा तो ढोलक की थाप चेक करती हुई मेहरू समेत सब लड़कियों ने इसे देखा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी मिली-जुली ज़नाना आवाज़ें उभरी। इसने जवाब देने की ज़हमत नहीं की, बस अपनी मखसूस चाल चलती हुई आके लड़कियों के कॉल से ज़रा परे हट के बैठ गई। कब आई रूबी? ज़हरा अपिया ने अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाते हुए पूछा।
कुछ देर पहले रूबी ने जवाब दिया। मुमानी भी आएंगे? इन्होंने पूछा। नहीं, वो बिजी थी, कल आएंगी। जवाब देते देते इसकी निगाहों ने महरू के सादा चेहरे का तवाफ किया, जो अभी भी ढोलक की डोरियां कसने में मसरूफ थी। आप लोग सुनाएं, गाना वानों की तैयारियां जा रही हैं? इसने सभी को मुखातिब किया। बड़े जोर से, बड़े शोर से। तुम भी आ जाओ मैदान में। समीन आपा ने हंसपे आरत मुस्कुराते हुए कहा। हाँ रूबी, इधर क्यों बैठी हो, यहाँ आ जाओ। अपिया ने भी मेजबानी के फराइज निभाए कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। क्यों महरू, बात बनी या नहीं? सितवत बच्चों ने पूछा। नहीं बच्चों, ये कमबख्त तो गई काम से, अब दूसरी मंगवानी पड़ेगी। महरू ने मायूस होकर जवाब दिया। क्या हुआ? रूबी ने पूछा। ढोलक की रस्सी टूट गई है, ताल ठीक नहीं बैठ रही। हालांकि महरू ने ठीक करने की कोशिश की थी। गुल्लो ने मायूस से अंदाज में ढोलक की रुदात सुनाई। तो दूसरी मंगवा ले, रूबी ने फौरन हल पेश किया। हाँ, ये तो करना ही होगा। मैं बारी से कहती हूँ कि मुझे ढोलक ला दे और तो कोई काम करेगा भी नहीं। महरू ने उठते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात वो जरूर मानेगा, रूबी अजीब से लहजे में बोली, मगर किसी ने ख्याल नहीं किया सबकी सुई तो ढोलक में अटकी थी। अभी वो ढोलक उठाकर बाहर निकली थी कि इसे बारी सीढ़ियों से उतरता नजर आया। सुनो, एक मिनट बारी। महरू ने इसे देखते आवाज देकर रोका। वो रुक गया और इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। बाहर जा रहे हो? वो इसके करीब आ गई। सफेद शर्ट और स्याह पैंट में बहुत तरोताजा लग रहा था। हाँ, बड़े मसरूफ अंदाज में जवाब मिला। मेरा भी एक काम कर दो, इसने लगावट से कहा। बड़े मसरूफ अंदाज में जैसे इजाजत मिली। ये ढोलक खराब हो गई, प्लीज दूसरी ढोलक ला दो, इसने जल्दी से कहा। क्या क्या तुमने मुझे इतना फालतू समय रखा कि मैं अपने इतने जरूरी काम छोड़कर तुम्हारी ये फजूल काम करूं? वो तब क्या, सबके काम करते हो, मैंने एक काम का कह दिया तो इतने नखरे दिखाने लगे। वो खफकी से बोली। अच्छा लाओ। इसकी नाराज नाराज सी सूरत पर इसे प्यार आ गया। ये लो। वो खुश हो गई, छठ ढोल की इसको थमा दी। वहीं से लानी है जहां से ये वाली लाए थे। मगर ये मैं नहीं लाया था, कामी लाया था। इसे मालूम है रास्ता कहाँ है। वो ठहरो देखती हूँ। और इसने तेरी से कामी की तलाश शुरू कर दी। जल्दी वो इसे बावर्ची खाने में दस्तयाब होगा। तुम यहाँ सैंडविचेस पर हाथ साफ करो, चलो मेरे साथ। मेहरू ने इसका हाथ पकड़ और खींचती हुई बाहर ले, जबकि वो चिल्लाता ही रह गया। अरे मेरा सैंडविच, अरे आधा रह गया, वो तो खा लेने दो। मगर वो इसे लेकर सीधी बारी के पास आ गई, जिसने ढोल के नीचे जमीन पर रखी हुई थी। ये रहा कामी, अब ले जाए इसे साथ। इसने कामरान को बारी के दरबार में पेश कर दिया। कहाँ लेकर जाना है मुझे? कामरान ने ताज्जुब से पूछा। बताता हूँ, पहले ये ढोल की उठाओ। बारी इत्मीनान से बोला। है मगर क्यों? वो मुंह खोलकर जमीन पर रखी ढोलक को देखने लगा। इसे गले में डालकर तुम पीटोगे, लोग तुम्हारी झोली भरेंगे। मेहरू ने इसको चिढ़ाया। या वहशत, कामरान सटपट आ गया। हाँ यार, ये ढोल की चेंज करानी है, चलो जल्दी करो, मुझे पहले देर हो रही है। बारी इस बार बेजारी से बोला। मगर मेरा सैंडविच। कामरान को अपना आधा सैंडविच याद आने लगा। आके खा लेना, हरी अप। हाय हाय, हाथ चिपड़ा दो कोई सैंडविच। बारी कहकर आगे बढ़ गया, जबकि मुंह बनाते हुए ढोलकी उठाकर इसके पीछे चलने लगा। बहुत क्यूट लग रहे हो कामी। मेहरू ने पीछे से हाँक लगाई तो कामरा ने मुड़कर इस पर घूरी डाली, मगर वो तो कब की गायब हो चुकी थी। बड़ी देर लगा दी क्या? खुद चली गई थी ढोलकी लेने? जिस वक्त वो अंदर आई तो रूबी ने पूछा। नहीं, बारी से कहा वो लेने गया। इसने सादा से लहजे में जवाब दिया और आके अपिया के पास बैठकर इनकी नन्ही मुन्नी गुड़िया को गोद में उठा लिया। बहुत मानता है वो तुम्हारी। रूबी का लहजा चुपता हुआ था। इस बार इसने महसूस तो किया, लेकिन परवाह नहीं की कि वो जानती थी इसका लबा लहजा ऐसा ही है। वो तो सभी की सुनता है। मेहरू ने संजीदगी से जवाब दिया। एक बात पूछूं मेहरू? रूबी ने बड़े गौर से इसे देखा। बारी तो तुमसे खासा बड़ा है, फिर भी तुम इसका नाम लेकर पुकारती हो, इसे तुम कहकर बुलाती हो, इसे बुरा नहीं लगता? इसमें बुरा लगने की तो कोई बात नहीं। फिर अगर मैं इसका नाम लेकर पुकारती हूँ तो क्या हुआ? तुम भी तो इसको नाम से बुलाती हो, हालांकि तुम भी इससे छोटी हो। मेहरू ने मुस्कुराकर इसे देखा तो वो चुप हो गई। मेहरू बेपरवाही से गुड़िया से खेलने लगी, जबकि बाकी लड़कियों ने अपनी अपनी बोलियां शुरू कर दी कि ढोलक के आने तक वक्फा गुफ्तगू था। शादी के हंगामे अरूज पर थे। आज मेहंदी की रस्म थी। सब लड़कियां बालियां शाम की लुड्डी की रिहर्सल करी थी। उफ, मैं तो थक गई, जरा दम ले लें फिर शुरू करते हैं। वहीदा बाजी थक कर बैठती हुई बोली तो बाकी सारी भी बैठ गई। मेहरू, तुम्हारे हाथों पैरों पर मेहंदी का रंग खूब चढ़ा। अब ने इसके दूधिया हाथ पैरों को सताइशी नजरों से देखा। सुना, जिसके हाथों पर मेहंदी का रंग खूब चढ़ता है, इसकी ससुराल, खास तौर पर सास, इसे बहुत पसंद करती है। गुल्लो ने अपना इलम बगारा। फिर तो मेहरू की बन पड़ेगी भाई, सास की पसंदीदगी बहुत कम लोगों को रास आती है। सितवत बच्चों ने मुस्कुरा के कहा तो मेहरू मुस्कुराने लगी। अगर चाय का मूड हो तो बनाऊं? इसने पूछा। नेकी और पूछ पूछ, सबने कोरस की सूरत में कहा तो उठकर बाहर निकल गई। इसकी निगाहें इधर उधर भटकी, लेकिन मतलूबा शक्ल को ना देखकर मायूस हो गई। कितना जी चाह रहा था कि इसे अपनी मेहंदी दिखाए और वो इसकी तारीफ करे। वो तो बस इन्हीं दो ख्वाबेदा आंखों की सताइश चाहती थी। ये मेहंदी भी इसने इसी की खातिर लगाई थी कि एक बार जब इसने मेहंदी लगाई थी तो इसने कहा था, मेहंदी तुम्हारे हाथों पर खूब सजती है। आज भी वो इसी की पुरसताइश निगाहें देखना चाहती थी, मगर नामालूम वो सवेरे से कहा था। नाश्ते के बाद इसकी शक्ल देखने को तरस की थी। वो किचन में आई, बड़े से बर्तन में चाय बनाने के लिए पानी चढ़ाकर खुद कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ बैठकर किस मंसूबे पर गौर किया जा रहा है? चंद लम्हों बाद वो थम से इसके पास कुर्सी पर बैठते हुए कह रहा था। तुम कहाँ थे सुबह से? इसने सीधी होते हुए पूछा। जरा बाहर के काम निपटा रहा था। क्यों? इसने सवालिया नजरों से मेहरू को देखा। मेरी समझ में नहीं आता, अगर सारा घर तुम्हें क्यों काम का कहते हैं? नौकर हो क्या तुम इन सबके? कोई तुम्हें इंसान ही नहीं समझता? अकेली जान पर इतना बोझ डाल देते सब, तुम थकते नहीं? बारी ने गौर से इसका चेहरा देखा। मुलायम चेहरे पर इसके लिए कितनी फिक्रमंदी थी। तुम मेरे लिए इतनी परेशान ना हुआ करो। वो मुस्कुराया। अच्छा ये बताओ कि यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? चाय बना रही हूँ, पियोगे?
اس نے پوچھا۔ کافی بنا دو، چائے کا موڈ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے مہندی سے رچے ہاتھ پیر اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ باری نے اس کے ہاتھوں پیروں کو دیکھا۔ نازک نازک سے ہاتھ پیر پر بہت دلکش ڈیزائن ہے، اسے پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، مہندی کا سرخ سرخ رنگ اس کی دودھیا جلد پر بہت بھلا لگ رہا تھا۔ کم از کم یہ عورتوں والی باتیں مجھ سے تو نہ پوچھا کرو، اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا۔ کیوں؟ تعریف کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کیا مرد تعریف نہیں کرتے؟ وہ تنک کر بولی۔ یہ تعریف تم میرے ہی منہ سے کچھ سننا چاہتی ہو؟ باری نے اس کی آنکھوں میں چھانکا تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہوگی۔ نہیں کرنی تو نہ کرو تعریف، میں ہی پاگل تھی تم سے پوچھنے لگی۔ وہ چولہے کی طرف بڑھی۔ ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہو۔ میں مذاق کر رہا تھا، ویسے سچی بات تو یہ کہ مہندی کا رنگ تم پر اتنا کھلتا ہے کہ جیسے تمہارے لیے بنایا گیا ہو۔ وہ گہرے سے لہجے میں بولا تو مہرو کے دل میں عجیب سا اطمینان اتر گیا۔ وہ تو ہم جانتے ہیں، وہ اترائی۔ اچھا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھا تھا؟ باری نے چھیڑا۔ آئندہ بھولے سے بھی نہیں پوچھوں گی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی اور پتی ڈالنے سے پہلے کھولتا ہوا پانی کافی بنانے کے لیے لگ گیا۔ پھر پتی اور دودھ اکٹھے دیگچی میں ڈالنے کے بعد وہ مگ میں کافی پھینٹنے لگی، جبکہ باری کافی کے انتظار میں میز پہ جانے لگا۔ آج لڑکے والوں کو آنا تھا، مہمانوں کی آمد رفت شروع ہو چکی تھی، پورا گھر رنگین کمکوں اور روشنیوں کے درمیان جگمگا رہا تھا۔ گھر کی بزرگ خواتین باہر لان میں بیٹھی تھی، گیٹ پر پھر دوست چچی اور ممانی کھڑی مہمانوں کا استقبال کری تھی۔ مہمانوں کو کرسیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری صنوبر چچی کی تھی۔ ارے بڑی بہو، یہ بچیاں کہاں رہ گئی؟ یہاں مہمانوں کی آمد ہے، ادھر ان کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں۔ ذرا میرن سے کہہ کر بلواؤ تو سب کو، باہر جانے کمرے میں گھسی کیا کر رہی ہیں؟ بی جان شہناز بولی۔ جی اچھا، وہ تابعداری سے کہتی ہوئی اٹھی اور اندر چلے گی۔ راستے میں امیرن خالہ پر نظر پڑی تو آواز دے ڈالی۔ امیرن ذرا لڑکیوں کو تو دیکھنا چاہ کر کہنا کہ جلدی کریں، ظفر کے گھر والے آتے ہی ہوں گے۔ جی بہو بیگم، ابھی دیکھتی ہوں۔ امیرن اندر بڑھ گئی۔ مہرو ذرا میرے بالوں کی فرنٹ چٹیاں تو بنا دو، پھر یہ موتی لگا دینا۔ اپی نے سے کہا تو ان کے پاس چل کر چٹیاں بنانے لگی۔ ارے گلو، ذرا یہ دوپٹہ تو ٹھیک کرو، میرا کمبخت بار بار پھسل کر گر پڑتا ہے۔ صدف اپنے ریشمی دوپٹے سے عاجز تھی۔ میرا جھمکا کدھر چلا گیا؟ بچوں نے دہائی دی۔ یہی ہوگا، وہ دیکھیں آپ کے سپوت کے ہاتھ میں۔ مہرو نے ان کے گول مٹول بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ او شیطان، ادھر لاؤ، کہیں توڑ ووڑ دیا تو۔ بچوں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے جھمکا لے لیا۔ مہرو، تم نے گجرے کہاں رکھے تھے؟ اپیہ کو اچانک یاد ہے، ان کو موتی کے گجرے بے حد پسند تھے، ہر فنکشن میں گجرے ضرور بنوا کر لگاتی تھی۔ اس بار بھی انہوں نے باری سے کہلوا کر اسپیشل گجرے بنوائے تھے، وہ تو میں نے اوپر فریج میں رکھے ہیں تاکہ تازہ رہے۔ اس نے چوٹی کو بل دیتے ہوئے بتایا۔ اچھا تو چندہ ذرا لے آنا ورنہ بھول جائیں گے، انہوں نے کہا۔ اچھا لاتی ہوں، بس ذرا یہ بینڈ لگا لوں۔ اس نے اپیہ کی چوٹی کے سرے پر ربڑ بینڈ لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک بنی ہے نا؟ وہ چوٹی کو تنقیدی نظروں سے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ A1۔ اپیہ نے اس کے رخسار کو چھوا اور مسکراتی ہوئی باہر نکلنے لگی تھی کہ خالہ میرن پر نگاہ پڑ گئی۔ مہرو، تم لوگ تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ میں تو تیار ہوں، بلکہ گھنٹہ پر پہلے کی تیار بیٹھی ہوں، بس ان سب کی تیاری پوری نہیں ہو رہی۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ارے بچیوں، جلدی کرو بھائی، نوشا میاں کے گھر والے آنے والے ہیں، انہوں نے اعلان کیا۔ ارے اچھا ہوا خالہ میرن کہ آپ آگئی، ذرا گڑیا کو تو سنبھالے، مجھے تیار ہی نہیں ہونے دے رہی۔ اپیہ نے موقع غنیمت جان کر بھاں بھاں کا سائرن بجا دی، گڑیا کو انہیں تھمایا۔ اچھا مگر تم لوگ بھی جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ دلہا والے یہاں پہنچ جائے اور گھر والے تیار ہی ہوتے رہ جائے۔ خالہ میرن نے گڑیا کو گود میں اٹھا لیا، وہ گجروں کی ٹوکری لینے اوپر آئی تو باری اپنے کمرے کے دروازے میں استادہ تھا۔ سادے سے براؤن کلر کی شلوار قمیص میں وہ شرٹ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ پھولوں کی ٹوکری اٹھائے وہ اس کے پاس چلی ہے۔ نہیں، یہ شرٹ استری کرانی تھی، خود ہی کر لیتا، لیکن ذرا جلدی میں بڑے ابو نے بلوایا، وہ عجلت میں کہہ رہا تھا۔ ایک تو بڑے ابو کا نوالا آپ کے بغیر حلق سے نیچے نہیں اترتا، لاؤ میں کر دوں استری، تم حاضری لگوا لو اور لاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتی ہوئی بولی۔ باری تھینکس کہتا ہوا جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتر گیا، اب اس کی شرٹ کاندھے پر ڈالے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکری تھامے نیچے آ گئی۔ یہ لیجیے اپیہ، اس نے ٹوکری چاہتے ہوئے انہیں تھما دی۔ یہ کیا جھاڑ پونچھ شروع کر دی؟ صدف نے اس کے شانے پر پڑی باری کی وائٹ شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ باری کی شرٹ پلیس کرنے کو دی ہے، وہ مسکرائی۔ لگتا ہے باری اپنے سارے کام تم ہی سے کرواتا ہے، روبی کی آواز عقب سے سنائی دی۔ جی ہاں، کیونکہ اس کو میرے ہاتھ کے کام پسند ہے، وہ اسے چڑھاتی ہوئی بولی اور اپیہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ تیر گئی، جبکہ روبی کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے چھپاک سے باہر نکل گئی، شرٹ استری کر کے وہ اوپر آئی، بنا دستک دیے باری کے کمرے میں داخل ہوگی۔ اس کا خیال تھا کوئی کمرے میں نہیں ہوگا، لیکن وہ تو سامنے الماری کھولے کھڑا تھا، اس کے جسم پر صرف پینٹ اور بنیان تھی۔ مہرو اسے اس حالت میں دیکھ کر بری طرح خجل ہوگی، لاکھوں اس سے بے تکلف سی مگر اس کو اس حلیے میں دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہوگی۔ سوری، میں سمجھی کہ تم کمرے میں نہیں ہوگے۔ اس نے باری کے ورزشی مضبوط جسم سے نظریں ہٹاتے ہوئے شرمندہ شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اٹس اوکے، ہو جاتا کبھی کبھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتے ہوئے نارمل سے لہجے میں بولا۔ مہرو جلدی سے باہر نکل کے باری کے لب جانے کے مسکرانے لگے۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ وہ پہنچا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کرسی پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ نظر کمزور ہو گیا کیا؟ مہرو نے جلدی جلدی پیاز کاٹتے ہوئے سے گھورا۔ نہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے میری نظر، دلوں میں جھانکنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، وہ زومانی لہجے میں بولا تو لمحہ بھر کو وہ گڑبڑا گئی۔ اچھا تو پھر کبھی محترمہ روبینہ کے دل میں چھانکا؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہوئی کھڑی ہوگی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ بھائی تمہارے بہت آگے پیچھے پھرتی ہے، کل کیسے چپکی جا رہی تھی، کل رات کیسے چپکی ہوئی تھی تمہارے ساتھ؟ وہ پیاز کے چھلکے ڈسٹ بین میں ڈالتی ہوئی بولی۔ تمہیں جلن ہو رہی تھی؟ باری مسکرا۔ جلتی ہے میری جوتی، وہ بھنا کے بولی اور غصے میں کٹی ہوئی پیاز گرم گرم تیل میں ڈال دی۔ خالص عورتوں والا بلکہ خالص بیویوں والا فکرہ بولا تم نے، وہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا تو مہرو نے اسے گھورا۔ جب بھی بولو گے فضول ہی بولو گے،
اس نے دوسرے چولہے پر رکھے دیگچے کا ڈھکن ذرا سا پرے کیا. کیا پکا رہی ہو؟ باری نے پوچھا. خود ہی دیکھ لو. وہ خراب موڈ میں بولی تو باری اٹھ کے چولہوں کے پاس آ گیا اور ایک ایک دیگچے کا ڈھکن اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا. آج تو بہت زبردست ڈشز بنی ہے. قورمہ، شملہ مرچ، قیمہ، گاجر، مٹر. اور یہ کیا بنا رہی ہو؟ اس نے اس دیگچے کی طرف اشارہ کیا جس میں مہرو پیاز سرخ کر رہی تھی. بینگن. وہ کہنے کے ساتھ ساتھ مسالہ بنانے لگی. بینگن کی کیا ضرورت تھی؟ وہ برا سا منہ بنا کے بولا. تمہارے لیے نہیں ہے، وہ تنک کر بولی. وہ تو مجھے معلوم ہے، باری اطمینان سے بولا. مسالہ بھوننے کے بعد اس نے کٹے ہوئے بینگن دیگچے میں ڈالے اور ڈھکن اوپر رکھ کر چولہا آہستہ کر کے دوبارہ میز کی طرف بڑھی جہاں سلاد کی اشیاء رکھی تھی. بائی دا وے تم نے یہ سب کام اکیلے کیے؟ وہ بھی ایک کرسی کی سیٹ کر بیٹھ گیا. نہیں، پڑوسیوں کو بلوایا تھا ساتھ میں. وہ سنجیدگی سے بولی. ساتھ ہی سلاد بھی بنانے لگی. باری نے پوری گاجر اٹھائی اور آہستہ آہستہ چبانے لگا. آپ شرافت سے باہر جائیں، یہ سلاد آپ کے کھانے کے لیے نہیں ہے. مہرو نے سے گھورا. تو پھر کس کے کھانے کے لیے؟ وہ اطمینان سے پوچھنے لگا. روبی کے کھانے کے لیے، وہ چبا چبا کر بولی. تو ایک ہی بات ہے نا، وہ عام سے لہجے میں بولا. اور مہرو نے غصے سے گھورا. اچھا اچھا، اب یوں تو نہ دیکھو. اس نے گھبرا جانے کی ایکٹنگ کی. تم یہاں کیوں آ گئے؟ آج بڑے ابو کو تم سے کوئی کام نہیں؟ وہ تنگ آ کے بولی. مجھے دراصل تم سے بڑی ضروری بات کرنی تھی. وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا. کیا؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے. روبی کے بارے میں کیا؟ مہرو کا سارا جسم کان بن گیا. یار میں نے کل اسے بڑے غور سے دیکھا. واہ کیا چیز لگ رہی تھی. سب لڑکیوں سے مختلف، سب سے پیاری. میں سوچ رہا ہوں کہ وہ یقیناً میرے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھتی ہوگی. تو کیوں نہ میں اس سے نہایت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. اور مہرو کا دل ڈوبنے لگا. تم وہ ایک دم چلا پڑی. دیکھو باری، اگر تم نے روبی یا کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں قتل کر دوں گی، اسے بھی اور تم کو بھی. مہرو کی آنکھوں سے خون چھلکنے لگا. باری ایک ٹک اس کا لال پھپھو کا چہرہ دیکھ رہا تھا. آج سے پہلے وہ اتنا کبھی نہیں کھلی تھی. اس نے اتنا واضح اظہار کبھی نہیں کیا تھا. باری محبت انسان کو اتنا بے اختیار بھی کر سکتی ہے. باری ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا. تم تو سیریس ہوگی، میں مذاق کر رہا تھا پاگل. وہ آہستگی سے بولا. مہرو کی آنکھیں بھر آئی. باری دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. اس نے ہاتھ میں پکڑ سلاد کے پتوں کی گڈی اس کے منہ پر ماری اور تقریباً بھاگتی وہاں سے چلے گی جبکہ باری کے ہونٹوں کی مسکان لمحہ بلمحہ گہری ہوتی چلے گی. اس کا مطلب ہے دونوں جانب آگ برابر لگی ہوئی. وہ سرشار سے سوچ رہا تھا جب جذبے ایک سے ہو تو پھر خطرہ کیسا. اس نے گاجر کا ایک حصہ دانتوں سے کترا گنگناتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا. وہ مسترب سے اپنے کمرے میں آ گئی. ہائے اللہ، وہ کیا سوچتا ہوگا؟ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. پکا بدماش ہے. کتنا بھولا منہ بنا کر بات کر رہا تھا جیسے واقعی مجھے تنگ کرا تو میں سچ سمجھ بیٹھی. کیا مجھ کو معلوم نہیں کہ اس پرکٹی کو بالکل پسند نہیں کرتا؟ ہائے مہرو، تو کتنی احمق ہے. وہ خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی. مہرو تم یہاں بیٹھی ہو، وہاں امی تمہیں بلا رہی ہیں. صدف اسی لمحے اندر داخل ہوئی. ہاں آتی ہوں. وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی. ادھر اسٹور میں ہے، وہ تم چلی جاؤ. صدف کہتے ہوئے خود باورچی خانے میں گھس کے وہ اسٹور میں پہنچی تو شہناز اور فردوس اپنے آگے بڑے بڑے ٹوکرے رکھے بیٹھی تھی جن میں فروٹ اور خشک میوے کے علاوہ مٹھائی بھری تھی. آپ نے بلایا تھا؟ وہ اندر آتے ہوئے گویا بھی. ہاں بیٹا دیکھو، یہ باقی لڑکیوں کو تو اپنے منہ فیشن اور اوپر مہندی سے فرصت نہیں. کب سے بلا رہی ہو ایک ایک کو. کوئی کان ہی نہیں دھرا. تم ایسا کرو کہ باری کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ فیروزے کا جو سیٹ وہ جو جوہری کے پاس لے کر گیا تھا وہ لے آئے فوراً. مجھے رات کو پہننا ہے، کہیں بھول ہی نہ جائے. شہناز بڑے مصروف سے انداز میں اس سے مخاطب تھی. جی اچھا. وہ پلٹ آئی. کہنے کو تو اس نے کہہ دیا لیکن اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. نہیں اس طرح تو نہیں چلے گا. کہہ دوں گی کہ ایسے منہ سے نکل گیا تھا غصے میں. اس نے خود کو مطمئن کرنا چاہا پھر ہمت جمع کر کے باری کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. دروازہ بھیڑا ہوا تھا. وہ اندر آ گئی. باری بیڈ پر بیٹھا تھا. اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی. وہ کسی رسالے کی برگدانی میں مصروف تھا. باری تائی امی کہہ رہی ہیں کہ اور آدھی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی جب اس شخص نے گردن گھما کر مہرو کی طرف دیکھا. جی مجھ سے کچھ فرمایا آپ نے؟ وہ شخص بڑی دلچسپی سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. جی وہ باری. وہ گڑبڑا کے ایک اجنبی باری کے کمرے میں کیا کر رہا تھا. باری نیچے گیا. نوجوان نے بتایا اور بغیر کچھ بولے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی. راستے میں باری سے مد بھیڑ ہو گئی. میرے کمرے میں گئی تھی؟ اس نے مہرو کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا. ہاں وہ تائیم میں کہہ رہی تھی کہ ان کا فروزے والا سیٹ جیولر سے لے آؤ. وہ جلدی سے بولی. اور سنو، یوں منہ اٹھا کر ہر ایک کے کمرے میں چلی جاتی ہو. تمہیں میرا دوست بیٹھا نظر نہیں آیا؟ وہ ناگواری سے پوچھ رہا تھا. مجھے الہام نہیں ہوا تھا کہ کمرے میں تمہارا دوست ہے، نہ ہی مجھے تمہارے دوستوں کے سامنے جانے کا کوئی شوق ہے. وہ غصے سے بولی. پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی. باری اپنے کمرے میں آ گیا. مجھے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی؟ باری اندر آتے پوچھا تھا. کچھ زیادہ نہیں، لیکن جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ وہ باری کے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھنے لگا. مقصد جلدی پورا ہوگا، خاطر جمع رکھو. باری مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا. یار یہ جو لڑکی ابھی بھی آئی تھی یہ کون تھی؟ اس نے باری سے پوچھا تو وہ چونکا. اسی وقت دروازہ کھلا اور حسنہ ملازمہ چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آ گئی. اس نے چائے بنا کے دونوں کو دیر واپس چلے گی. تم نے بتایا نہیں. اس نے اپنا سوال دہرایا. کزن ہے. باری نے ناکواری چھپاتے ہوئے گرم چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا. کیا میں جان سکتا ہوں کہ صرف کزن ہے یا؟ وہ شوخی سے پوچھ رہا تھا. ابھی تک تو صرف کزن ہے، مستقبل قریب میں بہت کچھ بننے والی ہے. باری نے بسکٹ کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی. او سوری یار. وہ ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے شرمندگی سے بولا. سوری فار واٹ؟ باری نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا. دراصل تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل میں اپنا گھر بسانے کے چکروں میں اسی مقصد کے لیے لڑکیاں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اچھی لڑکی ملے تو اپنا بھی گھر آباد ہو جائے. تمہاری کزن کو دیکھا تو ایک بار دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو میرا گھر اور دل دونوں آباد کرنے کے قابل ہے. بس اسی خیال کے دل میں آنے کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اس نے بڑے سادہ سے الفاظ میں وضاحت کی. اٹس اوکے یار. بات
बारी हल्के-फुल्के लहजे में बोला, वैसे अगर कहो तो मैं अम्मी से बात करूँ, वो तुम्हारे लिए एक अदद अच्छी-सी लड़की का बंदोबस्त कर सकती हैं। वो शौक़ी से बोला, नेकी और पूछ-पूछ, ये बात तो जैसे तैयार बैठा था। बारी हँस पड़ा, अच्छा यार जल्दी-जल्दी पियो चाय, मुझे ज्वेलर के पास जाना है। बारी जल्दी-जल्दी चाय के घूंट भर रहा था। क्या इस घर में किसी को तुम्हारा टिक कर बैठना पसंद नहीं? जब देखो तब साहब परेड करते नज़र आते। ये बात चिढ़कर बोला, अब इसका बहुत पुराना दोस्त था, लिहाज़ा सब बातों से वाकिफ़ भी था। बारी मुस्कुरा दिया। आज इन्हें मेहंदी लेकर लड़के वालों के यहाँ जाना था, सब लड़की गाड़ियाँ और बसें जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मेहमान ख़वातीन, लड़कियाँ और बच्चे बसों में लद चुके थे। शहनाज़ तो फिर दोस्त शगुन की चीज़ें गाड़ियों में रखवा रही थी, लड़के भी तैयार हो चुके थे। अब घर की लड़कियों का इंतज़ार था, जो असर से कमरे में घुसी हुई थी और निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि बड़ी अम्मा ने सैकड़ों बार हुस्ना और खाला मीरन के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि जल्दी तैयार हो जाएँ, लड़के वालों की घर जल्दी पहुँचना है। मगर इनकी तैयारी खत्म होने में नहीं आती। मेहरू हमेशा की तरह सबसे पहले तैयार होकर बाहर निकल आई थी। जिस वक़्त वो बाहर निकली तो बीजान, शहनाज़, बड़ी अम्मी और दूसरी ख़वातीन वहाँ मौजूद थी और चंद बुज़ुर्ग ख़वातीन से लैक्स-लैक में मसरूफ़ थी, वो वहीं आ गईं। फिरदौस देखो तो मेहरू कितनी प्यारी लग रही है, शहनाज ने बहन को टोका दिया। हाँ आपा। फिरदौस ने मोहब्बत से अपनी बेटी को देखा, सब्ज रंग के बेहद नाजुक और बारीक दबकी वाले काम वाले लहंगा पहने हुई थी वो। बिल्कुल हल्का सा मेकअप इसके तीखे नकुश को उभा रहा था। घुटनों को छूती छूती हुई लंबी मोटी सी चोटी में मोतिया के गजरे अपनी बहार दिखा रहे थे। पैरों में तिल्ले वाले खुस्से पहने वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई किसी दूर देश की शहजादी लग रही थी। वाह मेहरू, आज तो खूब गजब ढा रही हो, बिल्कुल मुगल दौर की शहजादी लग रही हो। सनोबर चच्ची ने इसकी तारीफ की तो वो छेम कर मुस्कुरा दी। ये बाकी लड़कियां भी तैयार नहीं हुई कि नहीं? बीजान ने पूछा। हो रही हैं, इसने जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम, तहमीना बेगम की आवाज पर सब इधर देखने लगे। वालेकुम अस्सलाम, सब खवातीन ने जवाब दिया। आओ तहमीना, कैसी हो? बीजान ने बैठने का इशारा करते हुए पूछा। ठीक हूँ बीजान, आप सुनाए? वो साड़ी का पल्लू बड़े अंदाज से संभालती कुर्सी पर दराज हो गई। अल्लाह का शुक्र है। अरे रूबी तुम बैठो ना, खड़ी क्यों बेटे? बीजान ने एक तरफ खड़ी रूबी से कहा तो बड़े अंदाज से माँ के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान होगी। मेहरू ने इसकी तरफ देखा बगैर आस्तीनों के जदीद तर्ज का सिला हुआ फिटेड लिबास पहने हुए, गले से में दुपट्टा रस्सी की तरह लगाए, वो फुल डार्क मेकअप में बेहद मॉडर्न और हसीन लग रही थी। हसीन तो बिलाशबा बेहद थी, इतनी कि मेहरू का सादा स्वरूप इसके सामने मध्यम पड़ जाता। मेहरू ने गैर इरादी तौर पर इसका मवासना अपने साथ किया। बिलाशबा वो हर लिहाज से इससे बेहतर थी। सूरत में, तलीम में, दौलत में इसका स्टेटस बहुत ऊंचा था। खुद एतमादी की इसमें फरावानी थी, वो जो चाहती हासिल कर सकती थी। वो इसकी मामूज़ा थी, लेकिन फिर भी इन दोनों में किस कदर फ़र्क था। "पक्कार में आए थे मीना?" शहनाज़ ने अपने भाई भी से पूछा। "नहीं, इन्हें ज़रूरी मीटिंग अटेंड करना थी, शायद बारात पर आ जाए।" "मेहरू जाओ बेटा, बहन को अंदर लड़कियों के पास ले जाओ, यहाँ बुड्ढों में तो बोरी होगी।" शहनाज़ इससे मुखातिब थी। "चलो रूबी।" इसने मेज़बानी का फ़र्ज़ निभाया, अपनी ताईमी का कहना टालना मुनासिब नहीं समझा, वो ना चाहते भी मुस्कुरा के बोली। "नहीं, मैं यही ठीक हूँ।" इसने इनकार कर दिया। मेहरू ने भी दूसरी बार कहने की ज़हमत नहीं की। "ओफ़ो अम्मी, अब क्या लोग और कितना टाइम लेंगी? ज़फ़र भाई के घरवाले तो सूख चुके होंगे।" बारीकी बेज़ारी और झल्लाहट से भरी आवाज़ पर सबने मुड़कर देखा। सफ़ेद कलफ लगे शलवार कमीज़ और ब्लैक बास्केट में पेशावी चप्पल पैरों में पहने बेहद जाज़ में नज़र और भरपूर लग रहा था। रूबी ने बड़ी गहरी नज़रों से इसे देखा। मेहरू के बिल्कुल साथ खड़ा था, शायद इसे ध्यान ही नहीं रहा। "क्या करूँ बेटा? तू खुद ही जाके बोल इन्हें, मैं तो बीसियों चक्कर लगा चुकी हूँ।" खाला मीरन जो बीजान के पास बैठी थी ने दुहाई दी। "मेहरू तुम जाओ और इनसे कहो कि बस करें, वक़्त निकला जा रहा है, अंधेरा फैल रहा है। वक़्त पर निकलेंगे तो वापसी भी अच्छे टाइम पर हो जाएगी। ख्वामखा की देर लग ठीक नहीं।" बड़ी अम्मी ने अपने मखसूस लहजे में कहा। "जी बड़ी अम्मी।" वो ताएबेदारी से कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। "मैं भी देखता हूँ अकेली इनसे कहाँ काबू में आएँगी सब।" बारी भी इसके साथ हो लिया। "आज किस पर बिजलियाँ गिराने का इरादा मोहतरमा?" बारी ने अपने से एक कदम आगे चलती मेहरू के कान में सरगोशी की तो एकदम से चौंकी। "मुझसे कुछ कहा आपने?" वो अनजान बन के पूछने लगी। "कहाँ जी, मुझे तो खुद कलामी की बीमारी है।" वो मुँह बना के बोला। "तो फिर इलाज करवाइए ना इस बीमारी का।" इसने छेड़ा। "इलाज तो एक ही डॉक्टर के पास है, अगर वो राज़ी हो जाए तो।" या बारी मानी खेज नज़रों से इसे देखने लगा। मेहरू ने गर्दन घुमा के इसे घूरा। "यूँ मत घूरा करो, किसी दिन मैं जान से ही चला जाऊँगा।" वो बड़ी संजीदगी से बोला। "अल्लाह ना करे।" वो दहल गई। "जो मुँह में आता है बोल देते, ना सोचते ना समझते मौसूफ।" वो बिगड़ के बोली। "आदत से मजबूर हूँ।" वो बेचारगी से बोला। "बदल लो अपनी आदत।" वो जल के बोली। "तुम मदद करोगी तो ज़रूर बदल लूँगा।" बारी ने गहरी नज़रों से इसे देखा तो वो एकदम घबरा गई। वो बिना कुछ कहे तेज़-तेज़ कदम उठाती बड़े कमरे में घुस गई, जहाँ आजकल सब लड़कियों ने डेरा जमाया हुआ था। अंदर अजीब हब्बड़-तब्बड़ का आलम था। किसी का दुपट्टा नहीं मिल रहा था, तो किसी के जूते, किसी की मैचिंग ज्वेलरी गायब थी, तो किसी के बाल नहीं बन रहे थे। माशाल्लाह, लगता है जैसे सबकी सब हसीना आलम बनने के चक्कर में। बारी की तंज़ी आवाज़ कमरे में गूंजी। "तो तुम भी आ जाओ मैदान में।" बच्चों ने दावत दी। साथ ही लिपस्टिक का आखिरी टच लबों को दिया। "आपके मुकाबले में अपनी दाल कहाँ गलने की बच्चों।" इसने आप भरी। तौबा! ये कमरा या लंडा बाज़ार? इसने कमरे में बिखरे हुए सामान की तरफ देखा और ऊँची आवाज़ में बड़बड़ाया। इसकी बड़बड़ाहट सुनी तो सबने, मगर कान फिलहाल किसी ने नहीं धरे कि इनकी मसरूफ़ियत इस कदर थी। ट्राई करने में क्या हर्ज है? अपिया ने मुखलिसाना मशवरा दिया। चलें, गौर करूँगा, लेकिन फिलहाल तो ये बताएँ कि आप लोग कील काँटे से लैस हो चुके? अगर हाँ, तो फिर जल्दी कीजिए ताकि सफ़रे खैर की रवानगी हो सके। अभी 5 मिनट और ठहरो। समीना आपा ने
बालों से रोलर्स उतारते हुए कहा, बिल्कुल ही, मुझे पता है कि आप लोगों के 5 मिनट भी 5 घंटों के बराबर होते हैं। आप लोग बस फौरन निकलें। कोई अवार्ड नहीं देगा आपको। बाहर तमाम हज़रात और ख़वातीन आप लोगों के इंतज़ार में सूख रही हैं। आपकी दीद को तरस रही हैं सबकी आँखें। लिहाज़ा आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ 2 मिनट और ले सकती हैं, वरना हम लोग आपको छोड़कर चले जाएँगे। फिर दूल्हा वालों के यहाँ जाने का इंतज़ाम खुद ही कर लीजिएगा। वो एक ही साँस में बोलता गया, लड़का या छल्लावा? अपने अपने पर्स उठाती हुई बोली, चलो भई लड़कियों, जल्दी-जल्दी हाथ हिलाओ, वरना इससे कुछ बाद नहीं कि वाक़ई छोड़कर चला भी जाए। अपिया ने सबको डरा दिया। इनकी धमकी का वाक़ई सब पर असर हुआ। भई वो मेहंदी की थालियाँ ले लो, मेहरू ने बुलंद आवाज़ में कहा। ओ, वो माचिस रखी है नहीं? अपिया ने पूछा। मेरे पास है माचिस, सदफ ने मुट्ठी में दबी माचिस दिखाई। सब लड़कियाँ जल्दी-जल्दी गाड़ियों में भर्ती होने लगी। भई ये मेहंदी-वेहंदी से अगर मेरी कार अंधी हुई तो फ़ाइन कर दूँगा। अच्छा। भई ये मेहंदी-वेहंदी से अगर मेरी कार गंदी हुई तो फ़ाइन कर दूँगा। इमरान को अपनी सुज़ुकी की बड़ी अज़ीज़ थी। इस साबनदानी का भी फ़ाइन लेंगे? सदफ इस्तज़ाई अंदाज़ में हँसी। मेरी गाड़ी की तौहीन करती हो, चलो निकलो। इमरान ने इसकी चोटी पकड़कर खींची। हाय मेरी चोटी इमरान, छोड़ो, इसने बिलबिला के कहा। छोड़ो इमरान, क्या बचपना, चलो बैठो अंदर। तहमीन आपा ने इसे डांटा तो वो सदफ को घूरता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेहरू, मेरा गोल्ड का सेट अम्मी की अलमारी में रखा था ना? अपिया को कार में बैठते बैठते याद आया। ओ मर गई अपिया, वो तो मेरे कमरे में रह गया, मैं भूल गई, अभी लॉक करके आती हूँ। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोली और अंदर की तरफ तकरीबन भागती हुई चली गई। अपिया ने सुबह से अपने सोने का भारी सेट अलमारी में रखने को दिया था, जो कि इसने अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। बाद में उठाकर लॉकर में रख देगी, मगर फिर वो भूल गई। अब अपिया ने याद दिलाया तो इसे याद है। ये कहाँ चल दी? बारी जो जरा दूर खड़ा अपनी कार का लॉक खोल रहा था, मेहरू को इस तरह बदहवासी में भागते देख इमरान से पूछने लगा। जवाब में इसने सारी बात बता दी। अच्छा, अब तुम लोग सब तो मत रुको। ऐसा करो इमरान, इर्तज़ा और हान, तुम लोग तो रवाना हो जाओ, मैं मेहरू लेकर पीछे आता हूँ। हाँ, ये ठीक है, इस तरह मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं होगा। सब बसें और कारें तो पहले रवाना हो चुकी थी, सिर्फ़ इनकी गाड़ियाँ रह गई थी। अभी आप हमारे साथ आ जाइएगा, कार में बहुत गुंजाइश है। इसने बहन को रोक लिया तो वो इमरान की कार से उतरकर बारी की कार में बैठ गई। या अल्लाह! ये लड़की कहाँ रह गई? बारी ज़रा देखना तो। अपिया ने गुड़िया को पीछे सीट पर बिठाते हुए घड़ी पर निगाह डाली। बारी तो जैसे इंतज़ार में था। जिस वक़्त मेहरू के कमरे में दाखिल हुआ तो नहायत परेशानी के आलम में चीज़ों को उलट-पलट रही थी। क्या हुआ, मिला? बारी इसके पास आ गया। नहीं, मैंने यहीं रखा था, जाने कहाँ चला गया? बारी प्लीज़ तुम भी देखो, अगर सेट ना मिला तो? वो हद से ज़्यादा परेशान थी, करीब था कि वो रो भी देती। कैसे हो सकता है? यहीं होना चाहिए था। इसने ड्रेसिंग टेबल की सारी दराज़ें उलट-पलट दी। मिल जाएगा, आराम से तलाश करो, बारी ने नरमी से कहा। बारी अगर सेट ना मिला तो अपिया का मुझ पर से एतबार उठ जाएगा, वो जाने क्या समझेंगी? वो बेड पर बैठ गई और चेहरा हाथों में छुपाकर फूट-फूट कर रो दी। बारी परेशान से उसके करीब चला आया, लेकिन इससे पहले कि वो इसे तसल्ली देते सोनी अंदर आ गई। अरे आप लोग गए नहीं? और ये से क्या हुआ? वो फ़िक्रमंद सी भाई से पूछने लगी। जवाब में बारी ने इसे सब कुछ बता दिया। ओहो! वो सेट? अरे वो तो मैंने उठाकर लॉकर में रख दिया था। सोनी ने पूरी बात सुनने के बाद इत्मीनान से कहा। क्या? मेहरू ने एकदम सर उठाकर इसे देखा। हाँ, मैंने सोचा कि जाने किसका सेट है, शादी वाला घर है, कहीं आगे पीछे हो गया तो। बस यही ख्याल करके मैंने सेट अम्मी के लॉकर में रख दिया। ओह अल्लाह! शुक्र तेरा शुक्र है, अगर सेट ना मिलता तो मैं मर ही जाती। इत्मीनान की एक लहर इसके रगों-पैर में दौड़ गई। पगली हो बिल्कुल। सोनी मुस्कुराई। अब जाओ, पिया बाहर इंतजार करिए। पहले अपने आंसू तो साफ कर लो, वरना लोग समझेंगे मैंने मारा है। बारी ने अपनी जेब से रुमाल निकाल के इसकी तरफ बढ़ाया। इसकी रोई-रोई सी सूरत बारी को बेचैन कर गई। ये इतनी-इतनी सी बातों पर क्यों रोती हो तुम? कार की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था। ये इतनी सी बात थी बारी? अब ये तो मुझे अमानत दी थी, अगर खुदा ना ख़ास्ता वो सेट मेरी वजह से खो जाता तो? कसूरवार मैं ही किरदारनी चाहती। वो संजीदगी से बोली। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अपिया ने पिछली सीट पर बैठे-बैठे खिड़की से सर निकाला। आपका सेट हिफाज़त से रख रही थी मोहतरमा। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जिस वक़्त इनकी कार ज़फ़रियाब खान के घर के सामने रुकी, इमरान वग़ैरह इन्हें बाहर खड़े नज़र आ गए। कहाँ रह गए थे यार? हम इंतज़ार में सूख गए। इर्तिज़ा ने बारी को देखते कहा। इन खातून की वज़ह से देर हुई है, लेकिन ये तुम सब अभी तक बाहर क्यों खड़े हो? बारी ने ताज्जुब से बच्चों वग़ैरह की तरफ देखा। इसलिए कि हम सबको इकट्ठे ही अंदर जाना था, तुम लोगों का इंतज़ार करते। चलो लड़कियों, शम्में रोशन करो। बच्चों ने कहा और सदफ ने एक-एक थाली सबकी लड़कियों को पकड़ा दी। फिर मेहरू इन थालियों की शम्में रोशन करने लगी। शम्में रोशन करने के बाद इसने एक हाथ में अपनी थाली उठाई और दूसरे हाथ से दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। बारी ने बड़े गौर से इसे देखा। मोमबत्ती की लरजती कांपती रोशनी में इसका हुस्न बेहद ख्वाबदीदा सा लग रहा था। पलकों के साए थोड़ी को छू रहे थे। लाइट ब्राउन कलर की लिपस्टिक का शेड इस रोशनी में गहरा मालूम हो रहा था। वो सब आगे पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हुए। सारे ने बारी बारी खलोता नहीं ताड़ रहे। जैसे इन लोगों ने दहलीज पार की, इन पर फूलों की बारिश होने लगी और अगले पल वो सब सर से पैर तक मूवी की फ्लैश लाइट में नहा गए। मेहंदी के गीत गाती, हंसती मुस्कुराती वो सब अंदर चली गई। मेहरू सब लड़कियों में सबसे आखिर में थी। महफिल में रोशनी तो अब कूंदी है, पहले तो जैसे सारा जहां अंधेरे में गर्क था। कहाँ थी आप अब तक? इसके कान में किसी ने सरगोशी की। वो सर से पैर तक लरज़ की। इसने अपने दाएं-बाएं देखा, लेकिन सरगोशी करने वाला इसे नज़र नहीं आया। अलबत्ता बारी इसके बिल्कुल पीछे खड़ा बड़ी बड़ी नज़रों से इसे घूर रहा था। क्या बारी ने? नहीं, नहीं, बारी ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता, ना ही वो आवाज़ बारी जैसी थी। कौन हो सकता है? वो परेशान सी सोच रही थी। चलो अंदर, बारी इसके करीब आते हुए हौले से मगर सख्त लहजे में बोला। इसने बिना कुछ कहे कदम आगे बढ़ा दिए। वो पिया वगैरह के साथ बैठकर गाने बजाने में लगी हुई थी। इस बात से बेखबर कि कोई मुसलसल इसे अपनी निगाहों के हसार में लिए हुए। यार आरिफ, वो जो सब्ज़ कपड़ों में शहज़ादी बैठी है ना, ज़रा इसका क्लोज़अप लेना।
फहद ने कैमरामैन से कहा, जो कि इसका दोस्त भी था, और इस पर बारी का चेहरा तब किया। जिस वक़्त कैमरामैन महरू का क्लोज़अप लेने की कोशिश कर रहा था, इसी वक़्त बारी ने आवाज़ देकर उसे बुला लिया। जी? वो लहंगा सँभालती इसके पास चली आई। देखो, तुम लोग लुड्डी वग़ैरह डालोगे? वो पूछ रहा था। हाँ, क्यों? महरू ने हैरत से कहा। तुम लुड्डी डालोगी, ना ही तुम डांस करोगी। समझी? बारी का लहज़ा खुद ब खुद तहकमाना हो गया। मगर क्यों? मैंने तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस की और वो एहतजाजन बोली, जो कहा है वो करो। बारी का लहज़ा एकदम सख्त हो गया, फिर वहाँ से चला गया। माहिरो हैरानगी से ये सोचती रह गई कि इस बात का मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि बारी कभी भी इस किस्म के ज़नाना मामलात में टांग नहीं अड़ाता था। अब बहरहाल इसने कह दिया तो इसे मानना भी था कि दिल के हाथों मजबूर थी। कोई और कज़िन इसे ऐसा करने से मना करता तो वो कभी नहीं मानती। बल्कि इसे सख्त लहजे में 2-4 सुना भी देती, मगर बारी के मामले में मजबूर थी। वो बेदिली से सदफ के पास बैठ गई। इसने कनखियों से बारी की तरफ देखा। वो शहनाज़ के पास खड़ा आहिस्ता-आहिस्ता कुछ कह रहा था। इसने सर झटकर दोबारा गानों की में लड़कियों का साथ देने लगी। मेहरू स्टिक्स रखी थी? सदफ ने इससे पूछा। बच्चों के पास थी, इसने जवाब दिया, और सदफ ने बच्चों को पुकारा जो जोर शोर से गाने में मसरूफ थे। बच्चों, स्टिक्स किधर है? इधर रखी है मुमानी के पास। इन्होंने ताहिर मुमानी की तरफ इशारा किया। मैं ले आती हूँ, लुड्डी शुरू कर देते हैं। गुल्लो बोली। नहीं, तुम रुको, मैं ले आती हूँ। मेहरू ने इसे रोकते हुए कहा, और वहां से उठकर मुमानी ताहिरा की तरफ बढ़ गई। आंटी जी, स्टिक्स कहाँ है? करीब पहुंचते इसने पूछा। ये रही। इन्होंने इस सीट के नीचे से शार्पनर निकालकर मेहरू को पकड़ा दी, जिस पर वो खुद बैठी थी। लुड्डी शुरू कर रही हो? इन्होंने पूछा। जी। इसने मुस्कुराकर सर हिला और अभी जाने के लिए पलटी थी कि एकदम इसका पैर पूरे का पूरा मुड़ गया। हाय, मर गई। वो अपना पैर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ? ताहिरा मुमानी ने परेशान होकर पूछा। पैर मुड़ गया, वो अपना पैर सहलाती हुई बोली। क्या हुआ मेहरू? फिर दोस्त और बड़ी अम्मी ने फिक्रमंदी से इसके पास आते हुए पूछा। पैर मुड़ गया, वो होंठ चबाते हुए बोली। अपिया और सदफ भी इसके पास आ गए। ज्यादा दर्द हो रहा है? शहनाज ने इसकी नम आंखें देखकर पूछा। इसने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। चलो यहाँ आराम से बैठी रहो, शायद दर्द को आराम आ जाए। सनोबर चच्ची ने कहा। तो क्या अब तुम लुड्डी भी नहीं डालोगी? सदफ ने हसरत भरी नजरों से इसे देखा। जाहिर है इतना दर्द हो रहा है, इसकी आंखों से सचमुच आंसू बह निकले। तुम भी हद करती हो सदफ, इस बेचारी को तकलीफ हो रही है, तुमको लुड्डी की पड़ी है। अपिया ने इसे डांटा। क्या हुआ आलमताब? खैरियत तो है ना? सोनी की सास हजूम देखकर इधर आ गई। जी हाँ, खैरियत है, बस बच्ची के पाँव में जरा मोच आ गई। बड़ी अम्मी ने मुस्कुरा के कहा। अरे कहीं ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? सोनी की सास ने फिक्रमंदी से इसका पैर देखा, जिसे वो हौले हौले दबा रही थी। नहीं नहीं, आप लोग प्लीज फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ, आप लोग अपना फंक्शन खराब ना करें, इसने जल्दी से कहा। अरे ऐसी भी क्या बात है बेटा, एक शख्स तकलीफ में और दूसरा खुशी मना रहा हो, ये तो सख्त बदइखलाकी की बात है। सोनी की सास ने शफीक से लहजे में कहा, और उनके खुलूस पर शर्मिंदा सी होगी। हाय बारी, तुम्हारी खातिर झूठ पर झूठ बोलकर खुद को शर्म खुद ही शर्मसार होना पड़ रहा है, इसने सोचा। बहन आप फिक्र ना करें, इसका पाँव ठीक हो जाएगा, आप अपने मेहमानों को देखे। फिर दोस्त बोली। जी आंटी, तकलीफ इतनी नहीं है, आप परेशान मत हो। मेहरू ने लहजे को नॉर्मल बनाया तो वो दूसरे मेहमानों की तरफ चली गई। मेहरू, तुमको तकलीफ ज्यादा हो रही है ना, तो इस तरह तुम्हारा बैठे रहना दुरुस्त नहीं, तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है, हमें तो जाने यहाँ कितनी देर लग जाए। तुम ऐसा करो, घर चली जाओ, मैं बारी से कह देती हूँ, छोड़ आएगा तुमको। फिर दोस्त से बेटी की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। नहीं अम्मी, आप अब इसे क्या तकलीफ देंगी? वो जल्दी से बोली। इसका ख्याल था कि लुड्डी ना सही मगर बाकी फंक्शन तो अटेंड कर ही लेगी, चाहे कुर्सी पर बैठकर ही सही। मगर फिर दोस्त की बात पर इसे प्लानिंग ही उल्टी लगी। इससे तो अच्छा तो कि वो ये नाटक ही नहीं करती, साफ साफ इनकार कर देती कि नहीं करनी मुझे कोई लुड्डी शुड्डी। इसने सुलग कर सोचा। नहीं बेटे, इससे भला क्या तकलीफ होगी, ठहरो मैं बुलवाती हूँ। शहनाज कहती हुई खड़ी होगी और वो बेचारगी से इन्हें देखने लगी। चल लम्हों बाद वापस आ गई। चलो मेहरू, तुम्हें कार तक छोड़ो। शहनाज ने इसे बाजू से पकड़ते हुए कहा। वो बादल नाख्वास्ता उठी और लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी। अरे ये कहाँ चल दी? फाहद ने इसे जाते हुए देखा तो सोचा शहनाज इसे लेकर बाहर आ गई, जहाँ बारी पहले अपनी गाड़ी के कार के पास खड़ा था। इसे देखकर इसने फ्रंट डोर खोल दिया। घर जाके कोई पेन किलर ले लेना, और बारी सोनी से कहना कि इसके पाँव पर हल्दी गर्म करके बांध दे, हल्दी दर्द को खींच लेती है, जल्द आराम आ जाएगा। वो दोनों को हदायत दे रही थी। मेहरू अंदर बैठ गई तो शहनाज ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर की तरफ पलट गई। मौज कैसे आई? बारी ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। वो चुप रही, शायद नाराजगी का इजहार करी थी। कुछ पूछा है? बारी ने कार की स्पीड बढ़ा दी। बस आ गई, तुमसे क्या? वो मुंह फुलाकर बोली तो बारी ने कनखियों से इसे देखा, और वो हफा हफा सी विंडो स्क्रीन से बाहर थी। नाराज हो? बड़ी अपनाई से इसे पूछा। दूसरी जानिब हनूस खामोशी थी। इसलिए कि तुम्हें लुड्डी डालने से रोका था, या इसलिए कि मेरी वजह से तुमको ये नाटक करना पड़ा? वो नॉर्मल से अंदाज में खफकी की वजह पूछ रहा था। मेहरू ने इस बार खासी हैरानगी से इसे देखा। इसके ख्याल में तो इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन इसकी अकाबी नजरों ने जान लिया था। अगर एक्टिंग की भी तो तुम्हारी वजह से, इसने खफा खफा से लहजे में जताया। अच्छा? वो जान बना पूछने लगा। अगर ये ड्रामा ना करती तो सब मुझे मजबूर करती, मैं इनकार करती तो वो वजह पूछती, वो इनसे कहने लगी। तो फिर क्या था, बता देती ना वजह, वो इसे छेड़ते हुए बोला। अच्छा, तो अगर मुझसे ही पूछती कि बारी ने सिर्फ तुम्हें क्यों मना किया, तो मैं क्या जवाब देती? इसने बारी को घूरा। वैसे तुमने मुझे मना क्यों किया था? इसे ध्यान आया तो पूछने लगी। बस ऐसे ही, मुझे पसंद नहीं कि तुम गैरों के सामने लचकती हुई लुड्डी शुड्डी डालो। वहाँ मर्द भी थे, वो संजीदगी से बोली। लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों, और भी तो थे वहाँ, सदफ भी तो थी। तुम शराफत से मुझे वजह बता दो, इसने इस्रार किया। अगर सच उगल दिया तो मुझसे निगाहें नहीं मिला सकोगी, वो शौक लहजे में बोला। ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे।
وہ اس کے سر ہوگی۔ باری نے گاڑی سنسان سڑک پر ایک طرف روک دی اور پورے کا پورا اس کی طرف مڑ گیا۔ وجہ اتنی تھی کہ وہاں ایک فضول سا لڑکا تھا جو مسلسل تمہاری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بس مجھے غصہ آ گیا۔ اگر وہ کچھ دیر اور ایسی حرکت کرتا تو یقیناً میرے ہاتھوں سے پٹ جاتا۔ اس نے تصویر والی بات گول کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم کو برا لگا تھا؟ کیوں؟ مہرو کو جانے کی بات بہت اچھی لگی۔ جاننا چاہتی ہو؟ باری نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مہرو کی پلکیں ایک دم بوجھل ہو کے اس کے تپتے ہوئے رخساروں پر گر گئی۔ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ نگاہیں نہیں ملائی جاتی، اس نے سوچا۔ ہر بات زبان سے کہنا ضروری تو نہیں ہوتی، کچھ باتیں بنا کہے بھی سمجھ آنی چاہیے۔ باری نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سیدھا ہو کر کار سٹارٹ کر دی۔ مہرو کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا، وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ پھر پورے راستے وہ دونوں چپ رہے۔ مہرو کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے کوئی بات کرتی، دل کی دھڑکنیں اتنی بے ترتیب ہو رہی تھی، جبکہ باری اس کے وجود سے اٹھتی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتا ہوا اس کی غربت کے ان لمحات کو خاموشی سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی الفاظ سے زیادہ بااثر اور سچی ہوتی ہے۔ باری نے اسے گھر ڈراپ کیا اور خود واپس چلا گیا۔ مہرو سیدھی اپنے کمرے میں چلی ہے۔ اس نے دیکھا کہ سونی اس کے بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ملکوتی سی مسکراہٹ تیری تھی، شاید کوئی بڑا اچھا سپنا دیکھ رہی تھی۔ مہرو نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کپڑے بدل کر اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ مہمانوں کی وجہ سے آج کل اس کے کمرے میں سونی کا ڈیرا جما ہوا تھا۔ مہرو نے پلکیں موند لی، باری کی حسین سپنوں میں کھو گئی۔ صبح جب وہ باہر نکلی تو سب بھی اس کی خیریت پوچھ رہے تھے۔ اس نے سب کو کہہ کر مطمئن کر دیا کہ رات کو جو پین کلر اس نے لی اس کی وجہ سے درد میں کافی کمی ہوگی۔ وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے کہوا بنا رہی تھی کہ روبی وہاں پہنچ گئی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ نارمل سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، کہوا لوگی؟ مہرو کے لبوں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت صاف دل کی لڑکی تھی، چھیل کے شفاف بہتے پانی کی طرح۔ کبھی کسی کے خلاف دل میں کینہ یا بغض نہیں رکھتی تھی، نہ ہی کسی کا برا سوچتی تھی۔ روبی سے بھی تبھی چڑھتی تھی جب وہ اس سے کوئی الٹی سیدھی بات کرتی تھی، ورنہ دوسری صورت میں تو روبی کے لیے بھی اس کے دل میں کسی قسم کے منفی جذبات موجود نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب روبی نے اسے بات کرتے وقت لہجے کو نارمل رکھا تو اس کے لبوں پر بھی خود بخود دوستانہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ہاں دے دو، تم کہوا اچھا بنا لیتی ہو۔ اس بار روبی ذرا سا مسکرائی تو اس نے خاصی حیرانگی سے روبی کو دیکھا۔ اس کا رویہ آج مہرو کو حیرت میں ڈال رہا تھا، ورنہ تو اس کے منہ سے پھول پتیاں نچھاور ہوتی تھی۔ شعلے اگلتی زبان جب امرت برسانے لگے تو حیرانگی ایک فطری امر ہوتا ہے۔ مہرو نے ایک کپ میں کہوا ڈال کے اس کی سن پڑھایا۔ تھینکس، روبی نے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ باری تمہیں ڈاکٹر کے پاس تو لے گیا ہوگا؟ کہوا کا گھونٹ پھٹتے ہوئے اس نے بظاہر بڑے عام سے لہجے میں پوچھا۔ مہرو نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ نہیں، اس وقت ڈاکٹر کہاں ملتا، ہم سیدھے گھر آئے تھے۔ مہرو نے ٹرے میں پیالیاں سجاتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ باری نے واپس آنے میں کافی دیر لگا دی۔ عام سی بات ہے، بالکل اتنی دور آنے جانے میں وقت تو صرف ہوتا ہی ہے۔ مہرو کندھے اچکا کر بے پرواہی سے بولی۔ اچھا مہرو، یہ بریسلٹ دیکھو۔ روبی نے اچانک اپنا دایاں بازو اس کے سامنے کر دیا۔ مہرو نے اس کی سڈول کلائی میں پڑا بریسلٹ دیکھا۔ وائٹ گولڈ کا بے حد نفیس و قیمتی بریسلٹ تھا جو کہ روبی کی مرمری کلائی میں اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، کہاں سے لیا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ لیا نہیں، ملا ایک گفٹ، روبی مسکرا کے بولی۔ اچھا، کون ہے وہ بازوق شخص؟ مہرو نے اشتیاق سے پوچھا۔ باری، روبی نے پیالی لبوں سے لگاتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ مہرو کے ہاتھ سے چمچ پھسل کر زمین پر گر گیا۔ باری؟ اس نے بے یقینی سے روبی کی شکل دیکھی جو بے حد اطمینان سے بیٹھی تھی، چہرے پہ کسی قسم کے جھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میری پچھلی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا، اس نے کہہ رہا تھا دبئی سے لاؤں صرف تمہارے لیے، وہ بتا رہی تھی اور مہرو کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے یاد ہے کہ باری پچھلے سال دبئی گیا تھا کسی ضروری کام کے سلسلے میں، پھر وہاں سے آنے کے بعد اس نے وقار ماموں کے گھر بھی ایک چکر لگایا تھا۔ تو کیا باری وہاں روبی کو برتھ ڈے گفٹ دینے کے لیے گیا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ، اس بی بی نے کہہ دیتا تو باہر کر لے۔ یہ روبی کی بچی جھوٹ بولتی ہے، بکتی ہے، باری سے بالکل پسند نہیں کرتا، میرا دل کہتا ہے وہ مجھے چاہتا ہے۔ اس نے کر لی تو اشاروں کنائیوں میں اپنی پسند کا اظہار کر دیا تھا۔ خاموشی تو خود اپنی زبان ہوتی ہے، محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ باری نے خاموشی کی زبان میں اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ بکواس کرتی ہے، اس کے دماغ میں چکر سے چل رہے تھے۔ کس سوچ میں ڈوب گئی؟ اب روبی کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے ٹٹولتی نظر اس کا چہرہ دیکھا۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ باری سے پوچھ لو، آ رہا ادھر ہی۔ اس نے خالی کپ میز پر رکھ دیا اور کھڑے ہوتے ہوئے باری کی طرف اشارہ کیا جو کہ بڑے ابو کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ روبی باہر نکل گئی تو وہ بھی تیزی سے باری کی طرف بھاگی۔ ایک منٹ رکو، اس نے باری کا راستہ روکا۔ ایک تو تم ہمیشہ کالی بلی کی طرح راستہ کاٹ لیتی ہو، کیا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ باری، مجھے تم سے یہ پوچھنا ہے کہ لاسٹ ایئر جب تم دبئی گئے تھے تب روبی کے لیے کچھ لے کر آئے تھے؟ اس نے خطرناک حد تک سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ چونکا، پھر مسکرا کے پوچھنے لگا۔ بتاؤ نا، وہ بیزاری سے بولی۔ ہاں، تہمینہ ممانی کے ایک بھائی رہتے ہیں وہاں، ان سے اتفاقاً ملاقات ہوگی، انہوں نے ممانی اور روبی کے لیے کچھ گفٹ دیے تھے جو پاکستان واپس آ کر میں نے انہیں دے دیے تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے بتایا۔ تم اپنی طرف سے کچھ نہیں لائے تھے، جیسے کوئی بریسلٹ وغیرہ؟ مہرو نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں جو ہر ایرے گہرے کے لیے گفٹس لاتا پھروں، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ باری نے جھلا کر کہا۔ کچھ نہیں، ایسی۔ مہرو کے سر سے جیسے کوئی چٹان سے رکھی ہے، وہ پھول کی طرح ہلکی ہو گئی تھی۔ پاگل ہو بالکل۔ باری نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی اور آگے بڑھ کے کتنی دوگلی ہے یہ روبی، غلط بیانی کر کے میرے دل میں شک پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ہوا کہ میں نے باری سے پوچھ لیا، ورنہ خواہاں کا بیچارے پر شک کرتی۔ وہ سوچتی ہوئی کچن کی طرف چلی ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا وہ روبی سے پوچھے گی ضرور کہ اس نے جھوٹ کس لیے بولا، اور پھر موقع دیکھتے اس نے روبی کے کان کھینچے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، وہ تم سے سچ بول رہا تھا؟ اس کے استفسار پر روبی نے تمسخر سے کہا۔ باری کبھی جھوٹ نہیں بولتا روبی، غلط بیانی تم نے کیا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس حد تک بھی گر سکتی ہو۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی۔
झूठ मैं नहीं बोल रही महरू, दरअसल तुम हो ही इतनी सादा कि हर एक की बात पर यकीन कर लेती हो। दरअसल बारी के और मेरे दरमियान जो रिश्ता कायम हो चुका है, अब इसके बारे में फिलहाल किसी को बताना नहीं चाहता। रूबी असहद संजीदा लग रही थी। रिश्ता? कैसा रिश्ता? इसका दिल जैसे पसलियां तोड़ने को बेताब था। हाले ਨੂੰ पता एक झूठी औरत है, एक ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਈ ना। प्यार का रिश्ता, रूबी ने धमाका किया। प्यार? मेहरू के सर पर जैसे बम आके फट गया। मैं तुम्हें ये बात काफी रोज पहले बता देती मगर मौका ही नहीं मिला। मैं ये महसूस कर रही थी कि तुम्हारा रुझान बारी की तरफ बहुत बढ़ रहा है। लेकिन मैं तुम्हें खबरदार कर दूं कि बारी मुझसे हदों पैमान कर चुका है। मैं सिर्फ इसके दिल में नहीं, इसके जिस्म की भी मालिक बन चुकी हूँ। गुर्बत की जिस कदर इंतहा के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो, इस इंतहा से भी हम गुजर चुके हैं। अब तो दूरी की हर हद पार हो चुकी है महरू, कि अब भी एक बढ़ते हुए शख्स की तमन्ना करोगी। इतना साफ लहजा, इतना भयानक इंकशाफ, इतनी लर्जा देने वाली हकीकत, क्षण से इसके अंदर कुछ टूट सा गया, आंखों में मिर्ची सी भर गई। दौर फिटे मुंह तेरे उत्ते, ऐ तू जाननी ओनू। बकवास करती हो तुम, झूठ है ये सब, वो चीख पड़ी। इतना बड़ा झूठ कौन लड़की बोल सकती है महरू? मैं इसकी तन्हाइयों की साथी हूँ। जब वो हफ्तों फार्म हाउस में रहते तब इसकी तन्हाइयां बांटने के लिए मैं होती हूँ वहां। वो अंगारा लहजे में बोल रही थी। नहीं नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। महरू ने तड़प कर कानों पर हाथ रख लिया। अब भी यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें अपनी सच्चाई का एक नमूना पेश करती हूँ। बारी के सीने पर दाएं तरफ जख्म का तकरीबन 2 इंच लंबा निशान है। और अब भी मेरी बात पर शक हो तो किसी रोज फार्म हाउस आ जाना चुपके से, वहां तुम्हें सब पता लग जाएगा। वो मुस्कुराते हुए कहती। महरू से मजीद कुछ नहीं सुना के वो सीधी बाएं बाग में चली गई और बरगद के बूढ़े दरख्त के मोटे तने से टेक लगाकर सिसकने लगी। वो कभी भी रूबी की बातों का यकीन नहीं करती जो अगर वो इसको इतनी पेचीदा बातें न बताती। इसे बारी के वजूद से कराहत आने लगी। शौर की दहलीज पर कदम रखते ही इसके दिल ने एक ही शख्स की तस्वीर सजाई थी। इसकी एक एक धड़कन पर एक ही नाम लिखा जा चुका था, बारी बारी बारी। इसका लंबा चौड़ा वजूद महरू को साहिबान की तरह लगता था। जब अपनी स्याह जुगनू सी आंखों से इसे तकता तो इसके अंदर जल तरंग से बज उठते। जब इसका नाम लेता तो जैसे स्केट गिट कांसी की घंटियां सी बजने लगती। वो धीरे से महरू कहता तो इसे अपने आप मौत पर लगता था। कल जब मेहंदी वाले घर में कोई लड़का इसे देख रहा था तो इसे कितना बुरा लगा। इसे बारी कोई हक जताना, इसका डांट वाला लहजा बहुत अच्छा लगा था। जब वो इस पर रोब जमा रहा था तो कितना अपना अपना सा लग रहा था। फिर जब इसने धीमे से कहा कि हर बात जबान से कहना जरूरी नहीं होती, कुछ बातें बिना कहे भी समझ जानी चाहिए, तो इसे लगा कि इसे इसने कुछ ना कहते भी सब कुछ कह दिया। वो अपने आप को मौत पर समझने लगी थी। इसे यूँ लग रहा था कि जैसे इसके दामन में जहाँ भर की दौलत सिमट आई हो। ढके-छुपे अल्फाज का इज़हार भी जैसे मालामाल कर गया और दिल जैसे तमानियत के एहसास से लबरेज़ हो गया। मगर फिर अचानक क्या हुआ? रूबी ने कैसा भयानक इंकशाफ किया था, पल भर में जैसे सब कुछ मलिया-मेट हो गया, सब ख्वाब राख बन गए। दिल एकदम सुकून की नेमत से महरूम हो गया, इसका दामन एक पल में खाली हो गया। ऐसी तू लाइलग औरत तेनू सामने दी गल तेनू नज़र नहीं आ रही। ओ एक फसादी औरत है, तेने जो कहता तू ओहदे ते गल एतबार कर ले। वो इतनी अमीर थी, पल भर में रूबी के इंकशाफात ने इसे गरीब कर दिया। इसके लहजे में इतनी सदाकत थी, इस कदर एतमाद और मजबूती थी कि ना चाहते भी इसे यकीन करना ही पड़ा। इस दिन जब वो अचानक इसके कमरे में दाखिल हुई और वो बगैर कमीज के इसके सामने था, तब इसकी निगाह एक पल के लिए इसके कुशादा सीने पर पड़ी। गोरे-गोरे सीने पर स्याह बालों के दरमियान सफेद सा पुराने जख्म का निशान इसकी नजरों से गुजरा था। तब इसने सोचा कि न जाने ये निशान इसके कैसे लगा होगा। ये भी तो हो सकता है कि जैसे इत्तेफाकन मेरी निगाह पड़ गई, रूबी की भी पड़ गई हो। पागल दिल अब भी इत्पार की कोई किरण ढूँढ रहा था, जिस पर वो खुद से बढ़कर भरोसा किया था। इस पर बेतबारी करने को दिल भी नहीं चाह रहा था। शक तो दिल में बैठ गया, मगर वो चाहती थी कि जो रूबी ने कहा वो सब अपनी आँखों से देख ले। तब पूरी तरह यकीन करे, क्या पता जो कुछ वो कह रही थी सच ना हो, महज़ हसद का नतीजा हो। ये भी तो हो सकता है कि वो बारी से इसे बदगुमान करने के लिए सब बकवास कर गई हो। हकीकत इससे अलग हो। दिल में उम्मीद की किरण चमकी, वो कुछ पुरुम्मीद हो गई। दिल डर भी रहा था कि कहीं रूबी की बात दुरुस्त ही ना निकल आए, और दुआ गो भी थी कि इसका भरोसा न टूटे। बाकी शादी में बहुत उदास रही। रूबी ने इसे ज़हनी तौर पर बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। वो इंतज़ार में थी कि कब बारी फार्म हाउस जाता है। अच्छा जी। फिर बहुत से दिन यूँ ही बीत गए, वो बहुत बेकल-बेकल सी रहने लगी। कॉलेज में भी दिल नहीं लगता, कुछ सोनी के चले जाने के बाद इसे फंदी मंज़िल भी सूनी-सूनी लगने लगी थी। अफंदी मंजिल इसके आगाज़ान दादा ने बनवाई थी। सफ़ेद और स्याह मार्बल और पत्थरों से बनी आलीशान और बावकार इमारत इसके दादा की निशानी थी। अफंदी मंजिल में इसके सब चाचा ताया वगैरह भी महल अयाल रहते थे। आगाज़ान जब तक हयात रहे, अफंदी मंजिल के शाह बने रहे। इनकी वफ़ात के बाद इनकी गद्दी बड़े अब्बा यानी फ़याज़ ने सँभाल ली। बड़े अब्बा ने अपने सारे बहन-भाइयों पर बाप जैसी शफ़क़त, शफ़ीक मोहब्बतें निछावर की। सब ख़ानदान वाले इनकी बहुत सुनते और मानते थे और बेहद इज़्ज़त करते थे। आगा जान ने अपनी ज़िंदगी में अपने सारे बच्चों के घर आबाद कर दिए। शहनाज़, ताई, अम्मी और फिरदौस बड़ी चच्ची दोनों सगी बहनें थीं। और आगा चांद के नहायत करीबी दोस्त की साथज़ादियाँ थीं। आगा चांद दोनों बहनों को एक ही वक़्त में अपनी बहुओं के रूप में अफंदी मंज़िल ले आए थे। अपने मंझले बेटे मलिक अनवर अफंदी यानी बारी के वालिद और मलिक वहीद अफंदी यानी महरू के वालिद की दुल्हनों के रूप में। शहनाज़ और फिरदौस चूँकि आपस में बहनें थीं, लिहाज़ा इसी निस्बत से इनके बच्चों में भी दूसरे कज़िन की निस्बत ज़्यादा उनसियत और मोहब्बत थी। कुछ फितरी सा जज़्बा था या फिर दोहरे रिश्ते का कमाल, बहरहाल इनकी मोहब्बत एक-दूसरे के दिलों में बुरी तरह घर कर चुकी थी। फिर दोनों बहनें भी अपने भांजे-भांजियों को बहुत चाहती थीं। इसी मोहब्बत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए शहनाज़ ने महरू को बारी के लिए माँग लिया था। बीजान और बाकी बुजुर्गों ने बख़ुशी इनके इस इक़दाम को कबूल कर लिया, मगर बीजान का हुक्म था जब तक बाकायदा रस्म नहीं हो जाती, ये बात बच्चों में से किसी को पता नहीं चले। लिहाज़ा अब तक ये राज़ सबके दिलों में दफ़न था।
दूसरी तरफ फिरदौस के सुतेले भाई बक्कार शाह की इकलौती बेटी रुबीना थी। बेहद मॉडर्न, हद से ज़्यादा खुद एतमाद, खुद पसंद, खुदगर्ज। तहमीना जैसी आज़ाद ख्याल औरत की सोहबत और लंदन की तालीम और तरबियत ने रुबीना को असद बेबाक और निडर बना दिया था। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो जब पहली बार पाकिस्तान आई, तहमीना के साथ नाज़बाजी मेहरू की बड़ी बहन की शादी में शिरकत के लिए पहली दफ़ा फंदी मंज़िल आई, तो इसकी टक्कर बारी से होगी। नहायत वजीह और शकील, लेकिन इसे बहुत लिया-दिया सा मिज़ाज रखने वाला लगा। जिसने इससे मिलने के बाद दूसरे लड़कों की तरह कोई खुशी का इज़हार नहीं किया, बल्कि रस्मी सी सलाम दुआ के बाद इसे तीसरी बात ही नहीं की। तब रूबी को अपनी नज़रअंदाज किए जाने पर अपनी शदीद बेइज़्ज़ती महसूस हुई। वो तुरादार बेपनाह हुस्न की मालिक थी, मगर बारी पर इसके हुस्न का जादू नहीं चल सका। और यही वजह थी कि वो इसका गुरूर मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुकी थी। इसकी आमद रफ्त फंदी मंजिल में बढ़ने लगी, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बारी था। इस बात को खानदान की चंद बड़ी लड़कियों समेत मेहरू ने भी महसूस किया। खैर पता तो बारी को भी था, मगर वो इस मलका क्लोपत्रा को खातिर में कहाँ लाता था। वैसे भी इसके दिल में तो सादा सा रूप रखने वाली मासूम सी अल्लड़ झुकी-झुकी नज़रों वाली मेहरू बस चुकी थी। फिर रूबी जैसी अल्ट्रा मॉडर्न लड़की कहाँ इसकी निगाहों में जच सकती थी। यूं भी इसे डाल-डाल मंडाने वाली इन तितलियों से कोई सरोकार नहीं था, न दिलचस्पी। रूबी अपनी अदाओं के जाल बिछाने की कोशिश करती रही, मगर बारी अपनी मजबूती की वजह से इसके बिछाए हुए जाल को तोड़कर हमेशा निकल जाता। और यही नाकामी रूबी पर जलती पर तेल का काम करती थी। बारी की मेहरू में दिलचस्पी इसकी नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकी। ना ही मेहरू की आंखों में बारी के नाम से जो सितारे चमकते थे, इनकी चमक से वो अनजान थी। सो इसने इंतकामन मेहरू के दिल में बारी के लिए शक और नफरत का ज़हर भरना चाहा, जिसकी इब्तिदा वो कर भी चुकी थी। बीजान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। ईशा की नमाज के बाद जब बीजान अपने पलंग पर गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी थी, तो शहनाज और फिरदौस इसके पास आ गई। कहो क्या बात है बहू? इन्होंने नरमी से पूछा। बीजान, अल्लाह के फजलो करम से आज हम अपनी दूसरी बेटी के फर्ज से भी सुपुख्तोश हो गए। शहनाज ने बात शुरू करने से पहले तमहीद बांधी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसे सदा सुखी रखे, सब बच्चियों समेत। बीजान के लबों से दुआ निकली और जी बेटा। बीजान के लबों से दुआ निकली, दोनों माँओं के मुँह से आमीन। सदफ अभी बहुत छोटी है, लिहाजा इसकी शादी के बारे में तो अभी सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन बारी अब माशाल्लाह इस काबिल हो चुका है कि इसका घर बसाया जाए। तालीम भी अपनी मुकम्मल कर चुका है, कारोबार में भी इसकी बदौलत रोज़-बरोज़ तरक्की हो रही है, फिर अब शादी का इसका नंबर भी है। इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी आमद का मुद्दा बयान किया। बीजान ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। मैं समझ गई, लेकिन क्या तुमने अपने-अपने शौहर के से बात की? बीजान ने पूछा। खानदान की बड़ी आप है, हमारी छप्पर छाया आप हैं। इनसे तो हम बात कर लेंगे, पहले आपसे बात करनी ज़रूरी थी। इस बार फिर दोस्त ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जीती रहो, सदा सुहागन हो मेरी बच्चियों। जब तुम लोग इस बूढ़ी को इतनी अहमियत देती हो, तो मेरा दिल अपने रब के हुज़ूर शुक्र से झुक-झुक जाता है कि इसने मुझे इतनी ताबेदार और फर्माबरदार नेक औलाद से नवाज़ा है। वरना आजकल कौन-सी बहू अपनी सास को इतनी अहमियत देती है। बीजान के लहजे में शफ़क़त, मोहब्बत, शक्र, फ़ख़्र सभी कुछ था। शर्मिंदा ना करें बीजान, आपको हमेशा हमने अपनी सगी माँ का दर्जा दिया। शहनाज़ ने इनका हाथ थाम लिया। खुश रहो बेटी, अपनी औलाद का सुख देखो। इसके रोम-रोम से दुआएँ निकल रही थी। ऐसा करो कि कोई मुनासिब घड़ी देखकर बाकायदा रस्म अदा कर दो। बीजान ने कहा, जी हाँ बीजान, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि अब खैर से मेहरू के लिए बाकायदा प्याम आने शुरू हो गए। एक प्याम तो सोनी की शादी के दौरान ही आ गया था। फिर दोस्त ने बताया। अच्छा, किसका? बीजान ने चौंक कर पूछा। ज़फ़री आपके कोई रिश्तेदार है, दूर पार के। इनका बेटा फ़हद नाम है, चमड़े का कारोबार करते हैं। इसकी माँ ने सोनी के वलीमे वाले रोज़ ही मुझसे इशारों कराई में बात कर ली, मगर मैं बेअक्ल समझ नहीं सकी। फिर चौथी के बाद तो बाकायदा पैगाम लेकर आ गई। मैंने तो साफ इनकार कर दिया, कह दी कि मेरी बच्ची की बात तय हो चुकी है। वो बता रही थी। जिस घर में बेरी का दरख्त हो, वहाँ कंकर पत्थर आते रहते हैं बहू। मुनासिब खड़ी देकर मंगनी कर दी जाए, तो फिर सभी को मालूम हो जाएगा। इन्होंने जवाब दिया। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, हाँ मगन में गाऊंगी। सदर गुल्लो मुस्तकिल स्टील की बड़ी सी ट्रे बजा बजा के अपनी बेसुरी आवाजों में गा गा कर इसका दिमाग खा रही थी। ओफो, आखिर तुम दोनों को हो क्या गया? क्यों कान खा रही हो मेरे? इसने आजिज़ आकर मेज पर दे मारा। इस वक्त वो अपना एक असाइनमेंट तैयार करने में मसरूफ थी कि दोनों किसी अजाब की तरह नाजिल हो गए। कान तो तुम्हारे अब कोई और खाएंगे मोहतरमा, गुल्लो ने शोखी से कहा। क्या मतलब? मेहरू ने कुछ ना समझते हुए से घूरा। मतलब ये कि सोनी के बाद अब तुम्हारा नंबर है। नए नए कपड़े पहनोगी, ब्यूटी पार्लर जाओगी और किसी के दिल पर बिजलियां गिराओगी। सदफ हंसी। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो झल्लाकी, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। बकवास नहीं करी, रिश्ता आया तुम्हारा। सदफ ने धमाका किया। क्या? इसका मुंह खुले का खुला रह गया। जी जनाब, सोनी की मेहंदी वाले रोज ही किसी साहब के दिल पर बिजलियां गिरा चुकी हैं आप। बेचारे से सब्र नहीं हो सका। सोनी के वलीमे वाले रोज ही इनकी वालदा मास्टर ने ताई अम्मी को पैगाम दे दिया था। तुम्हें कैसे पता चला? वो परेशान होगी। बीबीसी ने बताया। गल्लो ने सदफ की तरफ इशारा किया। अम्मी और बड़ी चच्ची की बातें सुननी थी, इसने बताया। फिर क्या कहा उन्होंने? मेहरू ने फिक्रमंदी से पूछा। किसने? फहद की अम्मी ने? मेरी अम्मी ने? इडियट! मेहरू इसकी बेवकूफी पर दांत कुचकुचाकर बोली। पता नहीं, पूरी बात मेरे कानों में नहीं पड़ी, बस खुलासा ही सुन सकी थी। वो बेचारगी से बोली। सदफ प्लीज जरा पता तो करो कि अम्मी ने क्या जवाब दिए इन्हें। वो रोहान सी होगी। क्यों, तुमको हाँ का इंतजार है? सदफ ने से छेड़ा। अल्लाह ना करे, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। देखो, मुझे भी शादी वादी नहीं करनी, पढ़ना है मुझको। प्लीज सदफ, तुम किसी तरह मालूम करके बता दो। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। इसकी गुलाफी आंखों में ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया था।
अच्छा, मैं किसी तरह पता करके बता दूँगी, तुम बिन बादल बरसात मत शुरू कर देना। सैयदब ने जल्दी से हामी भर ली कि कहीं वो रो ही ना दे। महरू ने एक तवील साँस ली, अब एक नई मुसीबत पल्ले पड़ गई। उसने सोचा वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर रिश्ता सबको पसंद आ गया तो कोई भी इससे राय लेने की ज़हमत नहीं करेगा। बल्कि इसके निकाह वाले रोज़ इसे बताया जाएगा कि आज इसका निकाह अपने ख़ानदान के रस्म और रवाज़ और तौर तरीकों से बखूबी वाकिफ़ थी। इसकी फ़ैमिली का हर शख़्स पढ़ा लिखा था, रोशन ख़्याल था। इसके बड़ों ने तो कभी बच्चों पर बेजा पाबंदियाँ भी आयद नहीं की। लेकिन मैंने एक हद तक आज़ादी देने के कायल थे, खिलाते सोने का नवाला और देखते शेर की नज़र से थे। इनकी फैमिली की लड़कियाँ तक आला तालीम हासिल करी थी, सब बच्चों को पसंद-नापसंद की अहमियत दी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद जहाँ शादी-ब्याह के मामलात आ जाते थे, वहाँ जाने क्या इन बड़ों की रोशन ख़्याली कहाँ चली जाती। इस मामले में पसंद-नापसंद का हक ना लड़के को हासिल था, ना लड़की को। लड़के-लड़की दोनों को बड़ों के पसंद से शादी करनी पड़ती थी। लड़कों को इस मामले में थोड़ी बहुत रायतियाँ दी जाती थी कि वो शादी से पहले लड़की की तस्वीर देख सकते थे। मगर जहाँ तक लड़की का ताल्लुक था तो इसके लिए इतनी रियायत भी नहीं थी। शादी के बाद ही लड़की को अपने शरीके हयात का चेहरा देखना नसीब होता। जहाँ तक इसका ताल्लुक था, तो बारी के अलावा किसी दूसरे का सोचना भी गुनाह समझती थी। तमाम शिकायतों के बावजूद अब भी इसके दिल में बड़ी शान से बराज आज वैन वाला नहीं आया था। सुबह तो इसे कामरान ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, मगर अब छुट्टी में से अकेले जाना था कि दोपहर का वक्त था। सभी मर्द अपने अपने काम धंधों में लगे हुए थे। सड़क के किनारे पर खड़ी किसी रिक्शे का इंतजार करती, क्योंकि आज इत्तेफाक से बसों की हड़ताल थी। इतनी देर होगी और अभी तो कोई खाली रिक्शा नहीं गुजरा। वो तंग आकर सोचने लगी कि आखिर खाली टैक्सी भी मिल जाए तो वो रोक लूं। अचानक एक बैक कार इसके बिल्कुल पास आके रुक गई। मेहरू ने चौंक कर देखा, ड्राइविंग सीट पर एक अच्छा खासा माकूल बंदा बैठा हुआ था। अरे मेहरू निसा, आप यहाँ इतनी धूप में खड़ी हैं, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। एक अजनबी के मुंह से अपना नाम, वो भी ऐसी बेतकल्फी से सुनकर वो घबरा गई। कौन है आप? इसने सख्त लहजे में पूछा। अरे मुझे नहीं पहचाना? फहद कहते हैं जनाब हमें। वो एकदम इसे याद है कि आवाज इसने कहाँ सुनी थी। ये वही आवाज थी जिसने सोनी की मेहंदी वाली रात इसके कान में सरगोशी की थी। और यकीनन ये वही बंदा था जिसकी वजह से बारी बिगड़ा था, और यही वो नाम था जिसका तलबगार था। अब वो इसे पहचान गई थी, लेकिन फिर भी अनजान बनी। देखे मिस्टर, आपको मैं नहीं पहचानती, लिहाजा आप मुझे तंग नहीं मत करें और अपना रास्ता नापे। इसने पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा, प्लीज़ मेहरू इस तरह बिहेव ना करें। मैं जानता हूँ कि आप मुझे पहचान चुके हैं, वरना इस तरह ना चौंकती। चले आएँ, अंदर आ जाएँ, मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है। वो अपनायत से बोला। देखें मिस्टर, इसने कहना चाहा, हम लोग ऐन रोड पर खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा, जाने लोग क्या समझेंगे। प्लीज़ अंदर आ जाएँ, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। ज़फ़री, आपका भाई होने के नाते मुझ पर भरोसा कर लें, आ जाइए। वो कुछ ऐसे लजारत भरे लहजे में इसरार कर रहा था कि वो मजबूर हो गई। अल्लाह! एक तो इदां दी मजबूर बड़ियां होई होंदियां। इसे एहसास था कि इसे बहुत सी आंखें घूरी हैं। इसे बीच सड़क पर खड़े होकर बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो दरवाजा खोल के अंदर बैठ गई। ते बीबी जी, तेरा कोई इतना ताल्लुक नहीं, ते तू गल्लां करनियां है, क्यों आराम नाल अपनी साइड ते होई आ। इसी वक्त इनके करीब से एक रेड कार गुजरी, जिसको बारी का दोस्त ही बाहर ड्राइव कर रहा था। इसकी नजर पहले फहद और फिर मेहरू पर पड़ी तो वो चौंक गया। लब भेज कर इसने कुछ सोचा, कार की रफ्तार बढ़ा दी। कहिए क्या चाहते हैं आप? वो पूछ रही थी। आपके घर वालों ने मेरा प्रपोजल क्यों ठुकरा दिया? क्या कमी थी मुझ में मेहरू? बिला तमहीद वो पूछ रहा था। कॉलेज से घर तक का रास्ता कम था, शायद इसलिए वो तमहीद में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मुझे क्या मालूम, आप इन्हीं से पूछें, वो खुश लहजे में बोली। आपकी वालिदा तो बता दी कि आपकी बात पक्की हो चुकी है। मैं पूछना चाहूंगा वो खुशनसीब कौन है जो आपका हाथ थामेगा? बड़ी हसरत से वो पूछा था, जबकि इसके इंकिशाफ पर मेहरू को अच्छी खासी हैरानी हुई। मेरी बात पक्की हो चुकी है? किससे? कब? बेख्तियार इसके मुंह से निकला। तो क्या आप इस बात से बेखबर है? फहद को हैरानी हुई। जी हाँ, मैं तो आपके मुंह से सुन रही हूँ। वो अभी तक अचंभे की हालत में थी। मेरी अम्मी बता रही थी कि आपके किसी कजन से बचपन में बातें आई होगी थी। इसने एक और इंकशाफ किया। मेरा कज़न? कौन से वाला? इसने बेताबी से पूछा। पता नहीं, फ़हद ने लाइल्मी का इज़हार किया। कौन हो सकता है? कामी, इमरान, इर्तज़ा या बारी? इसका दिल बेतरह धड़का। क्या आप इस फैसले को दुरुस्त समझती हैं? फ़हद पूछ रहा था। पता नहीं फ़हद साहब, बस आप मुझे यहीं उतार दें, मैं आगे पैदल ही चली जाऊँगी। वो परेशानी के आलम में बोली। मैं घर तक छोड़ देता हूँ, इसने इसरार किया। नहीं, नहीं, बस यहीं उतार दें। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले मुझको आपके साथ देखकर मेरे बारे में कोई गलत राय कायम करें, और प्लीज़ आप आइंदा इस तरह मेरे रास्ते में मत आइएगा। वो इंतहाई खुश्क लहजे में बोली। फहद ने कार एक तरफ रोक दी। वो थैंक्स कहती बैग उठाकर नीचे उतर आई और तेज-तेज कदम उठाती आगे बढ़ गई। फहद ने इसको नई उलझन में डाल दिया था। इतना इत्मीनान तो इसे हो ही चुका था कि इसे इनकार हो चुका है। मगर जिसकी वजह से हुआ था, इसका नाम अभी सीका राज़ी था। रात की कितनी बीत की, मगर इसकी आँखों में नींद का शाबा तक नहीं था। वो कमरे में यहाँ से वहाँ टहले लगा रही थी। सोचते-सोचते इसका ज़हन शल हो चुका था और टहलते-टहलते टाँगों से जैसे जान निकल गई थी। आखिर इसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया और आंखें मूंद ली कि शायद नींद आ जाए, मगर जब ज़हन परेशानियों में घिरा हुआ तो नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नींद भी कितनी बड़ी नेमत है। इंसान सारे गमों, सारी फ़िक्रों से ज़ाद होकर चंद लम्हे सुकून से गुज़ार लेता है, इसने सोचा। इसी लम्हे दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक ने इसे चौंका दिया। इसने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली और फिर दुपट्टा शाने पर फैलाते हुए दरवाज़ा खोलने चली गई। इस वक़्त कौन हो सकता है? इसने दरवाज़ा खोला तो बारी को सामने देखकर हैरान रह गई। रात के इस पहर इसकी आमद से तशवीश में डाल दिया। तुम? वो सिर्फ़ इतना ही कह सकी। बारी बिना कुछ के अंदर की तरफ बढ़ा तो वो जो दरवाज़े के बीचों-बीच इस्तारा थी, इसे एक तरफ हटना ही पड़ा। बारी अंदर आके अलबत्ता वो भी हनूज़ इसी हालत में खड़ी थी। आज तुम कॉलेज से वापसी पर किसके साथ आई थी? बिला तमहीद वो इसकी आँखों में आँखें डाले पूछ रहा, तो वो जो सरापा सवाल बनी खड़ी थी, गहरी साँस लेकर रह गई। शायद इसने मुझे फ़हद की गाड़ी में बैठे देख लिया था। मैंने कुछ पूछा है? बारी की सख्त आवाज़ दोबारा कमरे में गूंजी। किसी के साथ भी आई हूँ, तुमको इससे क्या?
اور تم مجھ سے ایسے لہجے میں بات کرنے کا حق نہیں رکھتے، نہ ہی میں تم کو جواب دینے کی پابند ہوں۔ وہ درشٹی سے بولی تو لمحے بھر کے لیے باری کی آنکھوں میں حیرانگی کا سایہ سا لہرا گیا۔ آج سے قبل مہرو نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ باری بنا کچھ کہے اس کی طرف بڑھا اور اس نے ایک جھٹکے سے کھلا ہوا دروازہ بند کر اشتعال سے بڑا اس کی طرف موڑا۔ میں تم سے ایسے لہجے میں بات کرنے کا حق رکھتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا، سمجھی؟ باری نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ مہرو نے بیزاری سے نظریں گھما لی۔ اب شرافت سے بتاؤ کہ کیوں بیٹھی تھی اس لفنگے کے ساتھ کار میں؟ اس کا لہجہ اتنا سرد و خشک تھا کہ مہرو کا ننھا سا دل لمحہ بھر کو لرز اٹھا۔ اس نے خفا خفا لہجے میں ساری بات بتا دی، صرف کزن کے رشتے والی بات کھول کر گئی۔ اوہ تو یہ بات تھی۔ گہرا اطمینان اس کے اندر تک اترتا چلا گیا۔ اس نے آہستگی سے مہرو کے نازک سے دودیا ہاتھ کو تھام لیا۔ مہرو نے نظریں گھما کر اسے دیکھا، بے حد شاکی نظروں سے، جیسے اسے شکایت کری کہ اس نے اس پر شک کیوں کر کیا۔ مجھے تمہارے کردار پر کوئی شک نہیں مہرو، بلکہ فہد، یہ ہے کہ فہد انتہائی لوز کریکٹر کا ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب بعد نے مجھے بتایا کہ اس نے تم کو فہد کے ساتھ دیکھا تو مجھے پل بھر کے لیے محسوس ہوا کہ جیسے خدا نہ خواستہ تم کو کھو ہی بیٹھا ہوں۔ مگر اللہ کا احسان ہے کہ تم بالکل خیریت سے ہو۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہیں اتفاقاً بھی فہد تم کو ملے، تم اس سے نہیں بات کرو گی، نہ ہی اس کی طرف دیکھو گی، سمجھی؟ وہ بہت نرمی سے گویا مہرو نے اس کی شفاف آنکھوں میں جھانکا جہاں مہرو کے چہرے کا عکس نمایاں تھا۔ باری نے گڈ نائٹ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور باہر نکل گیا۔ مہرو دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ خدائے کس پر یقین کروں؟ روبی کی باتوں پر غور کروں تو وہ سچی لگتی ہیں، باری کو دیکھوں تو روبی کی باتیں مبالغہ لگتی ہیں، کس کا اعتبار کروں کس کو جھوٹا سمجھوں؟ میرے اللہ میری مدد کر ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اب اوپر سے رشتے والی بات، جانے کس کے ساتھ میری قسمت پھوٹتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا۔ مارے بے بسی کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روبی نے تو آپ ہی تو اپنے سر تے چاڑیا، مسلسل سوچوں نے اسے بیمار کر ڈالا۔ شہناز اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، انہوں نے صرف ٹینشن بتایا۔ آخر کس چیز کی پریشانی ہے تم کو بیٹا، ہمیں تو بتاؤ۔ فردوس مشفقانہ لہجے میں پوچھی تھی۔ کچھ نہیں امی، بس یوں ہی پڑھائی کو زیادہ سوار کر لیا، اس نے ہنس کر بات بنائی۔ تم تو پڑھنے والی بچی ہو مہرو، اس طرح مت کرو ورنہ حاصل کچھ نہیں ہوگا، بس بیمار پڑ جاؤ گی، ایزی لو، انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ جی امی، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ فردوس آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سمجھا رہی تھی، اس کا ذہن کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ بی جان کو ساری باتوں کا پتہ چلا تو بہت ناراض ہوئی۔ ارے آگ لگی ایسی پڑھائی کو، سوکھ کر کانٹا بن گئی، کھاتی پیتی تو کچھ اور ہی، اوپر سے پڑھائی کو خود پر سوار کر لیا۔ کیا کروں بی جان؟ وہ عاجزی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرے پاس ہے اس کا حل، کامران فوراً چاہے گا۔ ہاں بی جان، اس کی پٹاری میں سے کوئی نامعقول قسم کا حل نکلے گا، صرف سنیے گا، عمل مت کیجیے گا۔ ارتضیٰ نے اسے چھیڑا لیکن بی جان کی موجودگی میں کامران نے صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ بی جان نے فارم ہاؤس بھیج دے، وہاں کی کھلی فضا میں اس کا دماغ بھی کھلے گا، سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، ظاہر ہے دماغ کو تو سن ہونا ہی ہے۔ تجویز تو واقعی معقول ہے، گلو بولی، لیکن یہ اکیلی وہاں کیسے رہے گی؟ صدف بولی۔ اکیلی کیوں بھائی، باری آج کل وہیں گیا ہوا، پھر وہاں کرنل انکل کی بیٹی بھی تو رہتی ہے بیمار، اپنے 8 درجن بچوں کے، اگر ہم میں سے بھی کوئی ساتھ چلا جائے تو کیا حرج ہے؟ گلو بولی۔ بھائی میرے تو آج کل پیپرز ہو رہے ہیں، میں نہیں جا سکتی، صدف نے عذر پیش کیا، اور مجھے تو فارم ہاؤس پسند ہی نہیں، اذان کے ساتھ ہی گھوڑوں کی ہنہناہٹ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ساری نیند برباد ہو جاتی ہے۔ کامران منہ بناتے ہوئے بولا، مجھے بھی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں کراچی جانا ہے۔ ارتضیٰ بولا، بھائی کسی کو بھی جانے کی ضرورت نہیں، بی جان میں اور مہرو چلی جاتی ہے، گلو نے تنگ آ کے اعلان کر دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، عمران چھوڑ آئے گا وہاں۔ بی جان نے حامی بھر لی اور مہرو سوچ رہی تھی کہ باری آج کل فارم ہاؤس گیا ہوا ہے، یقیناً روبی بھی وہاں پہنچے گی، اچھا موقع ہوگا، سوچو جھوٹ کھل جائے گا۔ بی بی تو پہلے ہی اپنا ذہن بنائی بیٹھی ہیں کہ ادنا ہی ہونا تے پھر بندہ کی کرے۔ سر سبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان اس جنت نظیر وادی میں اس کا فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ بڑے ابا اور طیب ابا کا مشترکہ فارم ہاؤس تھا، جس میں اعلیٰ نسل کے بے حد قیمتی اور تنومند گھوڑے پرورش پا رہے تھے۔ اس فارم ہاؤس کا حساب کتاب بھی باری کے ذمہ تھا، ہفتے میں ایک چکر وہ یہاں کا ضرور لگاتا۔ باقی کسی لڑکے کو فارم ہاؤس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے بڑے ابا نے باقی معاملات کی طرح فارم ہاؤس کی ذمہ داری بھی باری کے سر پر ڈال رکھی تھی۔ بڑا بھروسہ کرتے تھے افندی منزل کے بزرگ اس لمبے چوڑے دیوہیکل سے وجود پر، جس کا دل ایسا شفاف آئینہ تھا جس میں کبھی بال نہیں آتا، نہ ہی کبھی اس نے سوچا کہ افندی منزل میں اتنے لڑکوں کی موجودگی میں سب اسی کو کیوں کام کہتے، حالانکہ وہ خود مختار نوجوان تھا، کبھی کسی کام سے انکار کرنے کا حق بھی رکھتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ بڑے ابا سمیت کوئی بھی چچا تایا یا اسے چاہے رات کے 12 بجے کسی کام کا کہہ دے، وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ اپنی ذہانت، بردباری اور سعادت مندی کے سبب وہ افندی منزل کے مکینوں کے جان بن چکا تھا۔ خاص طور پر بڑے ابا تو اس پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرتے تھے، حالانکہ ان کے اپنے جوان بیٹے موجود تھے، مگر ان کے ذمے کبھی اپنے کام نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کو بھروسہ صرف باری پر ہی تھا۔ موسم بڑا زبردست ہو رہا ہے یہاں کا، دیکھو تو بادل کیسے بھرے میں، جیسے ابھی برس پڑیں گے، گلو کہہ رہی تھی۔ مہرو جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ کھوئے کو اس انداز میں جواب دیا، گلو نے بھی کوئی خیال نہیں کیا، شاید اس کی طبیعت خرابی کے سبب۔ جس وقت وہ لوگ اپنے رہائش گاہ پر پہنچے تو فارم ہاؤس کے پرانے اور وفادار ملازم حضرت خان نے ان کا استقبال کیا۔ کیسے ہو حضرت خان؟ عمران پوچھ رہا تھا۔ اچھا ہوں سرکار، اس بار تو بی بی صاحبہ بھی آئی ہیں۔ حضرت خان نے گاڑی میں سے سامان نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں ذرا دماغ کو ہوا دینے آئی ہیں، عمران نے شوخی سے کہا۔ مہرو کی طرف دیکھا۔ شٹ اپ عمران، مہرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے سیٹ پر سے اپنا بیگ اتارا۔ ہاں جی، ادھر کا موسم، ہوا، پانی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کچھ دن یہاں رہو، دماغ کو ہوا بھی لگے گی، صحت بھی اچھی ہوگی، حضرت خان سادگی سے کہہ رہا تھا، اور عمران اور گلو کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ تیر گئی، جبکہ مہرو نے گھورتے ہوئے خان کو مخاطب کیا۔ باری کدھر ہے؟ وہ تو جی فارم پر ہے،
اس نے بتایا وہاں کیوں یہاں کیوں نہیں ہے؟ اسے بتایا تو تھا ٹائم مانے کہ ہم لوگ یہاں پہنچنے والے ہیں، مہرو نے چلا کر کہا۔ وہ جی وہاں پر ان کی گھوڑی بیمار پڑی ہے، اس نے بتایا۔ گھوڑیوں کی پرواہ اور جیتے جاگتے لوگوں کی فکر ہی نہیں، اس نے تب کر سوچا۔ باریک گھوڑوں کے درمیان رہ کر بالکل گھوڑا ہی بن گیا، مہرو بڑبڑائی۔ پھر تو تمہیں بچ کے رہنا چاہیے، گھوڑے کبھی کبھی دلتی بھی مار دیتے۔ عمران جو کہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا ٹکڑا لگائے بنا نہیں رہ سکا۔ تم تو اپنی چونچ بند رکھو پلیز، بھنا کر بولی۔ سنو خان میرا بیگ کمرے میں رکھو، اس نے بیگ بڑھا دیا۔ میں باری کے پاس جا رہی ہوں، وہ گلو سے مخاطب تھی۔ تھکی ہو بعد میں چلی جانا، گلو نے کہا۔ جبکہ عمران تو اپنا سامان اٹھایا پہلے اندر جا چکا تھا۔ نہیں تم چلو گی؟ اس نے پوچھا۔ نہ بابا میری تو کمر تختہ ہو رہی ہے، تم ہی جاؤ، ماں بدولت تو آرام کریں گے۔ گلو نے توبہ شکنہ انگڑائی لی۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو مہرو اس کی اس انگڑائی پر تبصرہ ضرور کرتی، مگر اس کا ذہن حقیقت میں بے حد الجھا ہوا تھا۔ ساری بزلہ سنجی جانے کہاں جا چکی تھی۔ وہ اندر چلی، کسی وقت حضرت خان باہر آتا دکھائی دیا۔ خان ذرا بات سنو، اس نے آواز دے کر اسے بلایا۔ جی سرکار۔ حضرت خان مؤدب سے اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ دیکھو جب باری یہاں آتا ہے تو کیا روبی بی بھی یہاں اس کی موجودگی میں آتی ہے؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھی تھی۔ ہاں جی کئی مرتبہ وہ یہاں آئی ہے، پر جی گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ سادگی سے بتانے لگا۔ مہرو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اچھا جاؤ تم، اس نے بجھے بجھے سے انداز میں کہا۔ حضرت خان چلا گیا، مہرو نے قدم فارم کی طرف بڑھا دیے جہاں باری اپنے گھوڑوں میں الجھا ہوا تھا۔ فارم پہنچتے مہرو کی نگاہ باری پر پڑی۔ وہ رائڈنگ کر رہا تھا، بے حد چمکیلے سیاہ رنگ کی تنومند گھوڑے پر بڑی شان سے بیٹھا تھا، بڑی مہارت کے ساتھ گھڑ سواری کر رہا تھا۔ اس وقت وہ بلیک ٹائٹ اور وائٹ پہ داغ شرٹ پہنے ہوئے نہایت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ رائڈنگ کرتے ہوئے تو بالکل کوئی شہزادہ سے لگ رہا تھا۔ مہرو یکٹا کسی دیکھتی رہی۔ تم اتنے ظاہر ہو کہ کوئی بھی تمہارا دیوانہ ہو جائے۔ مہرو نے ایک طویل سانس لی۔ باری سے دیکھ چکا تھا اس لیے دور سے ہاتھ ہلا رہا تھا، مگر وہ جواب میں سے ہاتھ نہیں ہلا سکی، دل پر عجیب سا بوجھ پڑا ہوا تھا۔ ہیلو خیریت سے آگے؟ گھوڑا اس کے پاس روکتے ہوئے بڑے فریش انداز میں پوچھا تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو اپنے گھوڑوں سے فرصت نہیں ملتی۔ وہ شاکی لہجے میں بولی تو باری ہنس پڑا، موتیوں جیسے دانت بھرے بھرے لبوں سے باہر جھانکنے لگے۔ او ہو تو محترمہ ناراض ہے کہ ان کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ ریسیپشن کیوں نہیں دیا؟ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ ریڈ کارپٹ ریسیپشن تو آپ اسپیشل لوگوں کے لیے رکھ چھوڑے، اس نے اسپیشل لوگوں پر زور دیا۔ باری اس کے لہجے پر چونکا ضرور، مگر پھر سر چھٹک دیا۔ حکم کی تعمیل ہوگی ملکہ حضور، وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر سر کو ذرا سا خم دیتے ہوئے مودبانہ لہجے میں بولا، لیکن وہ جواب میں مسکرا بھی نہیں سکی۔ باری نے بہت شدت سے اس کی سنجیدگی نوٹ کی تھی۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو بہت شدت سے چاہتے ہیں تو اس کے معاملے میں ہماری ساری حصیں بہت تیز ہو جاتی ہیں، ہم اس کے رویوں کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ اس کے لبوں کی جنبش، ان کے ابرو کا اشارہ، اس کی آنکھوں کے زاویے اس کے چہرے کے رنگوں سے اس کے اندر تک جھانک لیتے ہیں۔ اس کے لبوں کی جنبش، ان کے ابرو کا اشارہ، اس کی آنکھوں کے زاویے اس کے چہرے کے رنگوں سے اس کے اندر تک جھانک لیتے ہیں۔ خان گل، باری نے اونچی آواز میں پٹھان ملازم کو پکارا۔ اگلے پل ایک اونچا لمبا پٹھان لڑکا اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے پہلے مہرو کو سلام کیا، پھر باری کی طرف متوجہ ہوا۔ روپا بالکل ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ۔ اس نے گھوڑی کی لگام لڑکے کو تھما دی۔ لڑکا گھوڑی کی لگام تھامے چلا گیا۔ گلو اور عمران کہاں ہے؟ باری نے اسے چلنے کا اشارہ کیا اور پوچھنے لگے۔ آرام کریں، اس نے جواب دی۔ تمہیں تھکان نہیں ہوئی؟ باری نے اس کے کتابی چہرے کو غور سے دیکھا۔ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نٹھال سا تھا لیکن بہت گہرائی لیے ہوئے تھا۔ تو ریسٹ کرتی، یہاں کی چلیے، وہ بہت نرمی سے بولا۔ تمہیں دیکھنے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ باری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ جن سے محبت ہو ان کی صورتیں تو دل میں بسا لی جاتی ہیں، عمانی کے اس لہجے میں بولا تو مہرو کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اور جن سے محبت نہ ہو تو؟ مہرو نے ایک طرف دیکھتے ہوئے اچانک پوچھا تو اس بار وہ بری طرح چونک گیا۔ اس نے ٹٹولتی نظروں سے مہرو کو دیکھا۔ طبیعت خراب ہے کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ دل خراب ہے، وہ زومانی لہجے میں بولی۔ مہرو، باری ایک دم رک گیا، مجبوراً اسے بھی رکنا پڑا۔ کیا ہوا ہے؟ اپسٹ لگ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ باری، مہرو کی آنکھیں نہ جانے کی بھیگنے لگے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ وہ فکر مندی سے کتنا اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس خوب رونے کو جی چاہتا، دل کرتے خوب چیخ چیخ کرو۔ مہرو نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ تمہیں کیا پریشانی، کیا دکھ ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہارا کام اپنے دامن میں بھر لوں گا۔ بولو مہرو پلیز۔ باری نے اس کا مرمری ہاتھ تھام لیا، بڑا اپنائیت سے بھرپور اور بے ساختہ عمل تھا۔ بتاؤں گی مگر وقت آنے پر، اب چلے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے پلکیں جھکا لی۔ جب اس نے چھوا تھا تو دل کی ہر ہر دھڑکن چلا چلا کر کہنے لگی، یہ شخص دھوکے باز نہیں ہو سکتا، یہ شخص دوگلا نہیں ہو سکتا، اس شخص کا اصل حسن اس کی مردانہ وجاہت نہیں بلکہ اس کی دیانتداری ہے، اس کی سچائی ہے، اس کا خالص پن ہے۔ یہ دودھ کا دھلا کیچڑ میں لت پت نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مگر دماغ کی بھول بھلائیوں میں روبی کے جملے بھٹک رہے تھے۔ باری مجھ سے عہد و پیمان کر چکا، میں صرف اس کے دل کی نہیں اس کے جسم کی بھی مالک بن چکی ہوں۔ قربت کی جس قدر انتہا کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو، ہم اس انتہا سے گزر چکے۔ کیا تم اب بھی ایک بڑھتے ہوئے شخص کی تمنا کرو گی؟ کیا تم اب بھی ایک بڑھتے ہوئے شخص کی تمنا کرو گی؟ روبی کی کٹیلی آواز کی باز گشت اس کے دماغ کے دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر اسے پاگل کی دے دی۔ اس نے پریشان ہو کر اپنے سر کو تھام لیا۔ کیا وہ مہرو طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ باری نے پریشان ہو کر اس کے شانوں سے تھام لیا۔ میرا سر پھٹ رہا ہے باری، اس سے کہو مجھے پریشان نہ کرے، چلی جائے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ بے اختیار اس کے بازو سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہرو کس کی بات کر رہی ہو؟
बारी ने असहद परेशानी से इसका सर सहलाते हुए पूछा। वो मेहरू की हिचकियां बन गई। काबू रखो खुद पर मेहरू, प्लीज। बारी को एहसास था कि इस वक्त वो खुले मैदान में खड़े, जहाँ इसके बेशुमार मुलाजमीन काम भी करते थे। वो तो शुक्र था कि इस वक्त सब दोपहर के खाने के लिए गए हुए थे, वरना इनका अच्छा खासा स्कैंडल बन जाता। आई एम सॉरी। इसे एकदम ही एहसास हो तो बारी से अलग होगी, पल के झुकाए वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी खड़ी थी। चलो। बारी ने इशारा किया, दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रेस्ट हाउस के अंदर आ गए। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं खान से कहकर खाना लगवाता हूँ। तुम्हारा मूड है तो डाइनिंग हॉल में आ जाना, वरना तुम्हारा खाना कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। वो नरमी से कहता हुआ आगे बढ़ गया। मेहरू एक कमरे की तरफ बढ़ गई। जिस वक्त रूबिया फंदी मंजिल पर पहुंची तो वहां सिर्फ फिरदौस और खाला अमीरा नहीं थी। बीजान हस्बे मामूल अपने कमरे में थी, बाकी सारे जाने कहाँ चले गए थे। वो सीधी बारी के कमरे में जा पहुंची, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। वो फिरदौस के पास चली गई। हेलो आंटी, वो इनके कमरे में दाखिल होते हुए मखसूस लहजे में बोली। फिरदौस इस वक्त निटिंग में मसरूफ थी। चौंक कर इसे देखा। रेड कलर की टी शर्ट, ब्लैक जीन्स में अपने भरपूर हुस्न समेत खड़ी थी। आओ रूबी, कब आई? इन्होंने मुस्कुराकर कहा। बस अभी अभी। लेकिन ये सारा घर भाई भाई क्यों करा? कहाँ है सब? वो एक कुर्सी पर बैठती पूछने लगी। लड़के तो अपने अपने कामों के सिलसिले में हस्बे मामूल बाहर गए हैं, बाकी खवातीन जरा पड़ोस तक गई हैं। हमारे पड़ोस में जो मियाँ साहब रहते थे, इनका इंतकाल हो गया, बच्चियां अपने अपने कॉलेज में। इन्होंने मुख्तसरन बताया। आप नहीं गई तज़ियत करने? इसने पूछा। मैं और बीजन सवेरे सवेरे चली गई थी, फिर मुझे आना पड़ा कि घर में तो भी तो किसी को रुकना है। मेरे आने के बाद ही आपा वगैरह गई हैं। इन्होंने जवाब दिया। मेहरू का है कि कॉलेज गई है? नहीं, इसकी तबीयत खराब थी, हमने इसे फार्म हाउस भेज दिया ताकि जरा आबो हवा तब्दील हो जाए। सुबह ही गई है गुल्लो और इमरान के साथ। बारी भी वही है, तभी मैंने भेज दिया, वरना अकेली लड़की इतनी दूर कहाँ भेज सकती थी। अपनी धुन में वो बताती चली गई। बारी भी वहां है? वो चौंकी रही। इसकी हसीन आंखों में बड़ी पूरी स्टार चमक पैदा हुई। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। एकदम खड़ी होगी। अरे भाई बैठो ना, तुमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं। रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाती हूँ। इन्होंने इसे रोकना चाहा कि किसी मेहमान को सूखे मुंह भेजना इस खानदान की रीत नहीं थी। अद्दा दिलान दी मेहमानों ने तो बंदा धक्के मारते जुतियां मार के भेजे। नहीं, मूड नहीं है, मेरा अपना घर है, तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं। मैं तो यहाँ मेहरू से मिलने आई थी, लेकिन वो तो है नहीं। अच्छा खैर, मैं फिर आऊंगी जब मेहरू वापस आ जाएगी। इसने मुस्कुरा के कहा, और फिर दोस्त के लाख रोकने के बावजूद रुकी नहीं, चली गई। शाम की चाय पर वो चारों इकट्ठे हुए थे। गुल्लो के कहने पर इनके बावर्ची मतीन ने चाय का इंतजाम बाहर लॉन में किया। इस वक्त वो सब गर्मा गर्म चाय के साथ मुख्तलिफ हल्की फुल्की चीजें खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जुलाई का गर्म महीना था, लेकिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में खीरी स्वादी का दर्जा हरारत इतना कम था कि इन सब ने बाकायदा हल्के फुल्के स्वेटर पहन रखे थे। सिर्फ स्वेटर नहीं, गुल्लो ने तो बाकायदा मोजे भी पहन रखे थे। इसे सर्दी बहुत लगती थी, अलबत्ता बारी ने स्वेटर या जर्सी से खुद को आजाद कर रखा था। हाय मैंने आप, बड़ी ठंड लग रही है। यार तुम्हें सर्दी नहीं लगती? इमरान ने चाय का घूंट भरते हुए इससे पूछा। आयरन मैन है, इन्हें कहाँ लगती होगी सर्दी, खुद देख लो। देख लो खुद ही, आज मौसम कैसा है, बरूलूद हो रहा है और हवा भी किस कदर ठंडी है, मगर ये साहब फिर भी कोट स्वेटर से मुबर है। गुल्लो ने पकौड़ा मुंह में रखते हुए कहा। ये बात नहीं, दरअसल मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती है, मैं ठंडे मौसम को एंजॉय करता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ के मौसम का आदी हूँ, इसलिए इतना महसूस नहीं हो रहा। तुम लोग तो कभी कभार ही आते हो, इसलिए ठंड महसूस हो रही है। बारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे वो देखो, खुशीबाजी आ रही है बिमा पलटन के। इमरान ने गेट की तरफ इशारा किया और सभी की निगाहें गेट की जानिब उठ गई, जहाँ कर्नल अंकल की बेटी खुशबख्त, जिन्हें सब खुशीबाजी कहते थे, अपने तीन अदद नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मौजूद थे। कर्नल परवेज बड़े अब्बा के बहुत करीबी दोस्त थे। दोनों घरानों का आपस में आना जाना लगा रहता। खुशीबाजी इनकी सबसे बड़ी बेटी थी। इनके मियाँ फॉरेस्ट ऑफिसर थे और आजकल इनकी पोस्टिंग यही हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, अकेले अकेले चाय के मजे लूट रहे हो, लूटे जा रहे हैं? वो करीब आते हुए अपनी मखसूस खनकदार आवाज में सबसे गोए हुई। आपसे छुपकर लूट रहे थे, मजे क्या पता था आपकी सूंघने की हिस्से इतनी आफत है, कितनी ज्यादा इतनी दूर खुशबू पहुंच गई। बारी मुंह बनाते हुए बोला। दोनों की आपस में खूब बेतकल्फी थी, इसलिए खुशीबाजी ने इसकी बात का बुरा नहीं माना। वो तो सभी से बेतकल्लुफ थे। बच्चों, हमसे छुपकर कोई काम नहीं कर सकते, वो मुस्कुरा के बोली। फिर बारी बारी गुल्लो और मेहरू से मिली। सुना दुश्मनों की तबीयत नासाज है, वो मेहरू से मुखातिब थी। आप आगे हम साजगार हो जाएगी। इमरान ने पेस्ट्री मुंह में डालते हुए कहा। हाँ भाई, अपनी अपनी शख्सियत पर इन्हासार करता है। वो इतरा कर बोली। मैं आपसे सख्त नाराज हूँ, सोनी की शादी पे क्यों नहीं आई थी? मेहरू ने पूछा। क्या पूछती हूँ, बड़ी दर्दनाक दास्तान है, वो गहरी सांस लेती बोली। क्या मतलब? मेहरू ने ना समझने वाले अंदाज में इनकी तरफ देखा कि जबकि बारी मुस्कुरा रहा था। मतलब ये कि जिस दिन सोनी की मेहंदी थी, ऐन इसी दिन बारी पैदा हो गया। इन्होंने इंकशाफ किया। है बारी पैदा हो गया? गुल्लो, इमरान और मेहरू पटर पटर, कभी बारी को तो कभी ख्वाजी खुशी को शक्ल देखने लगी। बारी का दूसरा जन्म समझो, वसत संजीदा थी। मजाक मत करे खुशीबाजी, गुल्लो अभी तक चंबे की हालत में थी। 100% सच बोली हूँ, यकीन नहीं आता तो पूछ लो बारी से, ये कभी झूठ नहीं बोलता। इन्होंने बारी की तरफ इशारा किया जो मजे से चाय पी रहा था। क्यों बारी? इन्होंने जो कुछ फरमाया बिल्कुल सच है, बारी ने सर हिलाते हुए गवाही दे दी। अब सच भी उगल दे बाजी, मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। गुल्लो से सस्पेंस हजम नहीं होता था। भाई सच ही तो बता रही हूँ, इस दिन मेरे यहाँ एक और बारी ने जन्म लिया। खुशी बाजी ने एक बिस्किट उठाते हुए बड़ी इत्मीनान और संजीदगी से बताया। ओह, तो ये बात है, अब समझ में आई बात, आपने अपने बेटे का नाम बारी रखा है। गुल्लो ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। बड़ी देर से आती है बात तुम्हारी समझ में, खुशी बाजी ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन खुशी बाजी, एक बात समझ में नहीं आई। इमरान ने खाली कप में चाय मजीद चाय पत्ती डालते हुए पूछा। वो क्या? खुशी बाजी ने अपने लिए चाय बनाते हुए पूछा। वो ये कि आपने अपने बेटे का नाम बारी क्यों रखा? हमजा, ताहिर, फलां फलां क्यों ना रखा?
वो इसलिए बेटे जान कि मैं चाहती हूँ कि बड़ा होकर मेरा बेटा भी बारी जैसा ही निकले, लविंग, स्ट्रॉन्ग, एक्टिव, सिंसियर वगैरह वगैरह। वो बड़े प्यार से अंदाज में जवाब देती। क्या वाकई आप बारी को इतना पसंद करती हैं? इमरान ने मुतहैयर से अंदाज में पूछा। ये है ही इतना प्यारा, हम तो जब जब इसको इधर से उधर चक्कर पे चक्कर लगाते देखते हैं, बस इसके लिए दुआएं निकलती है दिल से कि खुदा इसको हमेशा ऐसा ही रखे। खुशी बाजी के लहजे में शफकत और मोहब्बत की चाशनी खुली हुई थी। क्यों चिढ़ाती है खुशी बाजी? कहीं आपके मियाँ साहब ने सुन लिया तो अपनी खैर नहीं। बारी अपनी तारीफ पर सचमुच सहम गया। अरे वो तो खुद दीवाने हैं तुम्हारे, तभी तो अपने सपूत का नाम अब्दुल बारी रखा है। वो मोहब्बत से बोली। मेहरू ने गौर से बारी की तरफ देखा। ये ऐसा ही है, ये पोज करता है? लोग इसे अपने दिलों पर कितनी ऊंची मसनद पर बिठाए हुए और इसके बलन के दाग की गवाही देते हैं, मगर रूबी क्यों ऐसा कहती है? काश रूबी आज मैं हकीकत तक पहुंच जाऊं। वो उलझी उलझी सी परेशान परेशान सी सोचे जा रही थी। इसे ऐसा लग रहा था वो भूल भुलैया में फंस गई है और यहाँ से निकलने के लिए इसे रास्ता ही नहीं मिल रहा। तेरे वगर तेरी दिमाग तो पैदल औरत इतबार के लिए तो कारी रूबी दे उत्ते। बारी के चेहरे पर कोई खास तहरीर रकम है क्या? खुशी बाजी की शोख आवाज ने इसकी महफिल तोड़ दी। नहीं तो पथावासी में इसने तेरी से सर हिलाया तो वो मुस्कुराने लगे। जहांगीर भाई कैसे हैं? इनकी मानी खेस मुस्कुराहट और गहरी नजरों से बचने की गर्ज से इसने पूछा। मजे में? तुम लोग कल मेरी तरफ चक्कर जरूर लगाना, ड्राइवर भेज दूंगी मैं। इन्होंने ताकीद की। वैसे कब तक का स्टे है? कुछ पता नहीं, जब जी उब जाएगा तो चले जाएंगे, इसने उदासी से मुस्कुराकर जवाब दिया। शायरा होगी, बीमारी ने उल्टा असर कर दिया, इन्होंने मजाक किया। ऐसे मौसम में ऐसी जगह पर तो इंसान शायरा क्या मुसव्वर अदीबा तक बन जाता है, गुल्लो ने मुस्कुरा के कहा। ये तो है, इन्होंने तायद में सर हिलाया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। एकदम खड़ी होगी। इतनी जल्दी? इमरान बोला। जल्दी कहाँ, 7 बजने वाले, देखो तो कितना अंधेरा छा के वो भी आते होंगे, फिर बारी को घर आके पास छोड़ के आई हूँ। जाने आप बेचारी का क्या हश्र का रखा होगा, अभी 1 फुट का है, लेकिन पूरा शैतान है, बंदे को तिगनी का नाच नचा देता है। वो बारी बारी सबसे मिली, फिर कल इनसे आने का वादा लेकर चली गई। सर्दियां बहुत बढ़ गई थी, अंधेरा भी हरसू फैल चुका था, वो लोग अंदर आ गए थे। दिन के उजाले में सब कितना हसीन लगता है, मगर रात के साए इस हुस्न को निगल जाते, तो यही जगह कैसी खौफनाक लगती है। मैरू ने शीशे की खिड़की में से बाहर झांकते हुए कहा। हाँ, इसलिए कि दिन के उजाले में हर शय साफ-साफ नज़र आती है, निखरी-निखरी सी, अपनी असल सूरत में, अपने असल रंग में, लेकिन रात की स्याही में चीज़ों की असलियत छुप जाती है। बारी ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में जवाब दिया। महरू ने कोई जवाब नहीं दिया, यूँ ही खड़ी बाहर झाँकती रही। इमरान ने टीवी ऑन कर लिया, जबकि गुल्लो रिसाला खोलकर बैठ गई। बारी इसके करीब चला। आज चौदहवीं की रात है, अभी चंद लम्हों बाद जब चौदहवीं अपनी पूरी आबोताब के साथ निकलेगा चाँद, तब इस रात का हुस्न दोबाला हो जाएगा। गोल्ड टिकिया जैसा चाँद जब अपनी पुरनूर किरणें हटसू फैलाता है, तो जैसे गर्दोपेश का सारा माहौल रोशनी में नहा जाता है। तुम ये मंज़र देखना, बेहद खूबसूरत होता है। बारी ने बड़े फनकाराना अंदाज में चांदनी रात के हुस्न की तारीफ की। तुम्हें बहुत पसंद है ना चांदनी रात? वो गहरी नजरों से इसे देखने लगा। मेहरू ने आहिस्ती से सर हाथ में हिला दिया। बारी, जानते हो मुझे चांदनी रात की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? इसने अपने पास खड़े बारी से कहा। तुम ही बता दो। मुझे चांदनी रात की मुकद्दस रोशनी पसंद है। वो रोशनी बिल्कुल बेदाग पाकीज़ा होती है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। बारी, मुझे ऐसे ही लोग भी पसंद है जो चौदहवीं के चांद की तरह शफाफ हो, चांद की किरणों की तरह पाक हो, जो मिलावट से पाक हो। दोगले लोगों में मेरा दम घुटता है। बारी, तुम तो ऐसे नहीं हो ना? इसकी बड़ी-बड़ी आँखों में समंदर तैरने लगा। बारी चंद सानियों तक इसे तकता रहा। कोई ये बेत पा रही है? इसने महरू की आँखों में झाँका। दुआ करना बारी, मेरे सारे खदशात रेत की भुरभुरी दीवार साबित हो। तुम वैसे ही निकलो जैसे हो, जैसा मैं तुमको समझती हूँ। महरू के दिल से आवाज़ निकली। इसी वक़्त टेलीफ़ोन की मुतरन्नम घंटी ने माहौल के तिलिस्म को तोड़ दिया। बारी एक गहरी सी निगाह इस पर डालते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ गया। जी बड़ी चच्ची, अस्सलाम वालेकुम। रिसीवर उठाते दूसरी तरफ से फिर दोस्त की आवाज़ सुनकर इसने कहा, जी अच्छा, महरू वगैरह भी पहुँच गए। जी अच्छा हूँ, महरू वगैरह भी पहुँच गए। खड़ी है, यहीं बात करवाऊँ? इसने माउथपीस पर हाथ रखते हुए इसे सर के इशारे से बुलाया। वो जल्दी से आगे बढ़ी, बारी के हाथ से रिसीवर ले लिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी पहुँच गए, सब खैरियत है। जी रास्ता आराम से गुजरा, मेरी तबीयत अच्छी है? जी ठीक हूँ, मौसम अच्छा है यहाँ का। अच्छा, रूबी आई थी? मैरू ने देखते हुए बारी की तरफ देखा। अच्छा क्यों आई थी? यूं ही। अच्छा, खुदा हाफिज। इसने रिसीवर बारी की सिम बढ़ा दिया। जी जी चची जान, रखूंगा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज। इसने रिसीवर टेबल पर रख दिया। बड़ी चच्ची कह रही थी कि तुम्हारा खूब ख्याल रखूं। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। मैरू ने जवाब नहीं दिया, बस सोफे पर बैठ गई। अम्मी तो यही फिक्रमंद रहती हैं, वो बेपरवाही से बोली। क्या तुम्हें माँ का यूं अपने लिए फिक्रमंद रहना अच्छा नहीं लगता? बारी से जरा फासले पर बैठते हुए पूछने लगा। लगता है। वो मुख्तसरन बोली। इसका ज़हन अब मुसलसल रूबी की तरफ लगा हुआ था। अम्मी से इसे पता लग गया होगा कि मैं और बारी यहाँ है, वो ज़रूर आएगी, इसका दिल गवाही दे रहा था। गुल्लो, मैं ज़रा आराम करना चाहती हूँ, अगर सोगी तो मुझे खाने के लिए मत जगाना। वो खड़ी होती बोली। ठीक है, तुम रेस्ट करो, गुल्लो ने कहा। वो चली गई और बारी की रोशन पेशानी पर लातेदार सलवटें नमूदार हो गई। वो नोट कर रहा था, वो जब से यहाँ आई थी और ज़्यादा टेंस लग रही थी। हालांकि यहाँ आने के बाद तो इसे इतनी खुशी होती थी कि मुस्कुराहट जैसे लबों से चिपक कर रह जाती। इसे फार्म हाउस बेहद पसंद था। यहाँ का माहौल, यहाँ के नज़ारे, यहाँ का हुस्न इसकी फनकाराना तबीयत को बेहद अपील करते। लेकिन इस बार वो जब आई तो हंसना तो दरकिनार, इसने मुस्कुराया भी नहीं जा रहा था। बस जिहदा दिमागो फारग होन उन्हां लोगां दा ही ना हुंदा। फिर इसका दोपहर के वक्त एकदम रो देना, इसकी ज़ोमानी फ़िक्र, इसकी आँखों में उठते लातदार सवाल, इसके लहज़े के उतार-चढ़ाव, वो हकीकतन इसके लिए परेशान था। जाने से कौन-सा मसला है, ऐसी कौन-सी परेशानी को इतनी परेशान है? वो मुसलसल इसी के मुताल्लिक सोचे चला जा रहा था। अगले दिन वादे के मुताबिक खुशी बाजी ने अपने जीप से बीमा ड्राइवर के भेज दी। गुल्लो और इमरान तैयार थे।
अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? गुल्लो ने इसे मलके से कपड़े लिबास में देखकर पूछा। मेरी तबीयत अच्छी नहीं गुल्लो, प्लीज तुम चली जाओ, खुशीबाजी से बहुत माजरत कर लेना, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। इसने इजाजत से इनकार कर दिया। ठीक है तो फिर मैं भी नहीं जाती, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो। इसकी खराबी तबीयत के पेश नजर गुल्लो बोली, मेरी खातिर अपना प्रोग्राम मत खराब करो, तुम चली जाओ वरना वो बुरा मान जाएंगी। और मेहरू ने बहुत इस्तार करके इसे भेज दिया। वो लोग चले गए तो मेहरू टेरेस पर चली गई। गर्मियों के मौसम की धूप थी लेकिन इसके बावजूद नरम थी, चुभने वाली नहीं थी। शायद ये ऊंचे और आसमान को चूमते पहाड़ों की करामत थी। एक मिनट जरा रुकना, मेरी रजाई में कोई चीज हिली है। कुछ भी नहीं है। वो रेलिंग पर झुकी थी, इसकी निगाहें गर्दो पेश के हसीन नजारों का तवाफ कर रही थी। वो इस वक्त घर में तन्हा थी, बारी फार्म पर गया हुआ था। हाय अल्लाह। मुलाजिम अपने अपने कामों में मगन थे, जाने कब तक वो यूं ही खड़ी रही। जब इसे थकन का एहसास हुआ तो इसने अंदर जाने का सोचा। अभी वो अंदर जाने चाहती थी कि रेस्ट हाउस के कुशादा पोर्टिको में एक जीप आकर रुकी। वो चौंक गई इस वक्त जब जीप की अगली सीट से रूबी उतरती हुई दिखाई दी। वो इस वक्त मैरून कलर के स्कर्ट, ब्लैक ब्लाउज, मैरून वेलवेट के कोट पर मैरून और ब्लैक डॉट्स वाला रुमाल लिए बेहद हसीन लग रही थी। इसके शोल्डर कट रेशमी बाल शानों पर बिखरे हुए थे, सन ग्लासेस इसके सर पर लगे थे। महारे से किए के फुल मेकअप ने इसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। वो बिलाशबा बेतहाशा हुस्न की मालिक थी। मेहरू ने देखा कि इसका इस्तकबाल मतीन ने किया। वो इसे कुछ कह रहा था, वो इसे कुछ कह रही थी। मतीन ने इसका सामान बाहर यानी एक छोटा सा सफरी बैग उठा और अंदर बढ़ गया, जबकि रूबी अपनी मखसूस चाल चलती हुई अंदर की तरफ आ गई। इसका रुख बारी के बेडरूम की तरफ था, जहाँ आकर बारी हमेशा ठहरता था। मेहरू ने लब भेज ली। इसने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली, एक बज चुका था, बारी के आने का वक्त हो चुका था। वो किसी भी लम्हे आ सकता था, यही मौका था हकीकत से रोशनास होने का। वो धड़कते दिल के साथ बेताबी से बारी का इंतजार करने लगी। फिर ये हुआ कि ठीक 15 मिनट बाद वो आगे अपनी बेनियाजाना चाल चलता हुआ सीधा अपने बेडरूम में चला गया। मेहरू नहायत सूरत के साथ इसके कमरे की तरफ बढ़ी। रूबी ने जीप से उतरते मेहरू को देख लिया था। वो कभी इस तरह खड़ी थी कि साफ नजर नहीं आ रही थी, मगर रूबी ने इसका आंचल उठता हुआ देख लिया था। जब भी बजाय दूसरे कमरे में जाने के वो सीधी बारी के कमरे में चली गई। इसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे इसे अपनी फतह का 100% इम्कान हो। इम्कान नहीं बल्कि यकीन, क्योंकि जो प्लान वो अपने जहन में तरतीब दे चुकी थी, इसका नतीजा इसकी तवक्को के मुताबिक ही निकलना था। वो बारी के बिस्तर पर नीम दराज होगी इसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वो उठी और इसने कुछ सोचा, फिर अपना कोट और स्कार्फ उतार कर बेड पर फेंक दिया। फिर मुतमिन होकर आराम से बिस्तर पर दराज हो गई। वो अपनी धुन में अंदर आ गई। इसने रूबी को नहीं देखा था। पोर्च में खड़ी जीप देखकर इसे अंदाजा तो हो गया तो वो आई भी होगी, मगर इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो उसके कमरे में डेरा जमाए हुई। जैसे वो दरवाजा बंद करके मुड़ा, इसकी निगाह रूबी पर पड़ी। हेलो मिस्टर बारी, वो बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। तुम यहाँ मेरे कमरे में? लातदार शिकने इसकी रोशन पेशानी पर फैल गई। कमरा तुम्हारा हो या मेरा, क्या फर्क पड़ता है? वह हनूज इसी अंदाज में लेटे लेटे बोली। शट अप, तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे इस किस्म की बेहूदगी बिल्कुल पसंद नहीं। उठो यहाँ से, निकलो फौरन। वो बिला लिहाज बोल गया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझे इतना नजरअंदाज क्यों करते हो। क्या मैं बदसूरत हूँ, कमतर हूँ? किस लिहाज से? तुम क्यों मुझसे भागते हो? वो उठकर इसके करीब चलिए। तुम नहायत बदतमीज और बेहुदा हो, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, वो तैश में आकर बोला। भाई भी अंदर खलोता ओ गल्ला बातें कर रहे हैं, बंदा पूछे तो बाहर निकल जा। मिस्टर बारी, तुम्हारा मुझसे गुरेज महज तुम्हारी शराफत नहीं बल्कि तुम्हारा वो खौफ है जिसने तुम्हारे दिल में अपनी जड़ें फैला रखी। तुम महज इसलिए मुझसे कतराते हो कि कहीं लोग तुम्हारी पाक दामनी पर शक ना करें, वरना मुझ जैसी लड़की से जो खुद तुम पर रीझ गई हो, तुम्हारा दामन बचाना क्या मायने रखता है? छोड़ो ये खौफ और चले आओ मेरे पास। वो खुद सुपुर्दी के तमाम तर जज्बात लिए कह रही थी। बारी के चेहरे पर जिस्म का तमाम लहू जमा हो गया। मैं तुम्हारी सारी तिश्नगी मिटा दूंगी बारी, बस एक बार मुझे अपनी बाहों में समेट लो। हया की तमाम तर हदें पार करते वो एकदम इसके मजबूत वजूद से लिपट गई। इससे पहले कि बारी से धकेल कर परे करता, धड़ाम से दरवाजा खुला और मेहरू अंदर चली गई। इसकी निगाह सबसे पहले बारी के बिस्तर पर पड़ी, जहां रूबी का कोट और स्कार्फ पड़े हुए थे। बिस्तर की चादर भी शिकन लूथी पी। जैसे इसकी नजर इन दोनों पर पड़ी तो इसे लगा जैसे कि क़यामत आने की कोई देर न रही हो। इसकी दुनिया में महशर बर्पा हो गया था और सूर फूंका जा रहा था। उम्मीद की वो आखिरी किरण भी बुझ गई जिसकी आस में इसे यहाँ तक ले आई थी। बारी की मजबूत बाहों ने रूबी के सुडौल जिस्म के गिर्द हाला बना रखा था। वो दोनों के इस कदर नजदीक थे कि इनकी सांसें एक दूसरे की सांसों में घुल रही होंगी। वो इस तरह एकदम पत्थर का बुत बन गई, जैसे किसी रिमोट कंट्रोल के जरिए से स्टैचू बना दिए गए। इसके लब नीम बात है, आंखों में इस हद तक बेयकीनी की जैसे से यकीन ही ना आ रहा हो अपनी बसारत पर। बारी से अचानक अफ्तार से इतना बदहवास हो गया कि इसका ज़हन ही माऊफ होने लगा। इसने बदहवासी में रूबी को एक झटके से खुद से अलग किया और जोर से परे धक्का दिया। रूबी एक तरफ जा पड़ी। मेहरू, मेरी बात सुनो प्लीज। मजहद हवास पाख्ता हो रहा था। वो सच्चा था मगर समझ नहीं आ रही थी कि इसे किन अल्फाज में अपनी सदाकत बयान करे। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है कि जब वो अपनी तमाम तर सदाकतों के बावजूद भी अपनी बेगुनाही पेश करने से कासिर हो जाता है। यही एक लम्हा इसकी जिंदगी में भी वारिद हो चुका था। मेहरू बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने तेजी से बाहर की तरफ भागी। पारी ने कहरलूत नजर इस पर डाली, जो जहरीली मुस्कुराहट से फातहाना अंदाज में इसी की तरफ देख रही तो मेहरू की तरफ भागा। मेहरू का रुख छत की जानिब था। वो इसकी रफ्तार भी बहुत तेज थी। मेहरू प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो। बारी ने इसे पुकारा लेकिन वो रुकी नहीं। सीढ़ियां चढ़कर वो दूसरी मंजिल पर आगे रबी रेलिंग से नीचे छलांग लगाने चाहती थी कि दो मजबूत बाजुओं ने इसे मजबूती से थाम लिया। छोड़ दो मुझे, तुम धोखेबाज झूठे आदमी, इतना बड़ा मजाक किया तुमने मेरे साथ, मेरे जज्बों का मजाक उड़ाया, मेरे एतबार का खून कर दिया।
मेरे जज्बों का मजाक उड़ा, मेरे एतबार का खून कर दिया। छोड़ो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती, छोड़ दो। वो खुद को छुड़ाती हुई आलमी हजियानी में चीख रही थी। सच जाने बिना इतना बड़ा कदम मत उठाओ मेहरू, बारी ने से अपनी आहनी बाजू में जकड़ते हुए कहा। सच, माय फुट, जान चुकी हूँ सारा सच, इसने नफरत और तमस्कराना अंदाज में से देखते हुए कहा। नहीं, जो तुमने देखा वो सच नहीं झूठ है, बारी नरमी से बोला। जो मैंने देखा वो झूठ था, जो रूबी ने कहा वो भी झूठ था, बस सच्चे तो बस तुम हो। इसने बारी की गिरफ्त से खुद को छुड़वाते हुए जहरीले लहजे में कहा। क्या कहा था रूबी ने? वो चौंका। तुम्हारा असली चेहरा दिखाया था, वो तंजिया लहजे में बोली। असली चेहरा? बारी उलझ सा गया। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, मुझे घिन आने लगी तुम्हारे वजूद से, छोड़ दो। वो खुद को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन बारी की आहनी गिरफ्त महज फड़फड़ा कर रह गई। बारी इसी तरह थामे हुए कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मेहरू की आंखों से निकलने वाले आंसू उसके गिरेबान को भिगो रहे थे, मगर वो समझता था कि अगर इसने मेहरू को छोड़ दिया तो छत से कूदने से भी दरेक नहीं करेगी। कमरे में दाखिल होकर इसने मेहरू को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं तो तुमको सबसे मुख्तलिफ समझती थी, सबसे अलग, खुद से बढ़कर तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना मुहाफिज, अपना साहिबान समझा था। कितनी पागल थी मैं। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। कभी कभी हकीकत वो नहीं होती मेहरू जो हम अपनी आंखों से देखते। तुमने जो मंजर देखा इसे सच समझ बैठी। कितना कच्चा भरोसा है तुम्हारा। मोहब्बत में तो एतबार सबसे बड़ी शर्त होती है। वो इसके करीब आकर रसानियत से बोला। मत फैलाओ मुझे अपनी बातों से, तुम्हारा बुत टूट चुका है अब्दुल बारी। कितनी पस्तियों में गिर चुके हो तुम, मुझे नफरत है तुमसे। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं मैं जहर खा लूंगी। बारी ने इसकी तरफ देखा, कितनी शिकस्ता शिकस्ता सी लग रही थी। तुम भी किसी जहर से कम नहीं हो, कितने बड़े एक्टर हो तुम। वो कतरा कतरा शम्मा बनकर खुल रही थी। बारी ने लब भेज लिए, वो कुछ सोचा और बिना मजीद कुछ कहे बाहर निकल गए। रूपी वापस से आ चुकी थी। बारी खोया खोया सा लॉन्ज में टहल रहा था। मैं अभी तक अपने कमरे में बंद थी। इमरान और गुल्लो अभी तक नहीं लौटे थे। शाम के साए रात के अंधेरों में बदल रहे थे। इसे मेहरू की जानिब से तशवीश हुई, वो अभी तक कमरे में बंद थी। इस वक्त इसने मेहरू को इसलिए छोड़ दिया कि मजीद कुछ कहना बेकार था। इसको शदीद धचका लगा था, फिर जाने रूबी ने क्या जहर इसके अंदर भरा था कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन अब बहुत वक्त गुजर चुका था। वो समझ रहा था कि इसके अंदर जो तूफान उठ रहा था, इसका जोर अब जरा कम हो गया होगा। वो इस कमरे में आज जहाँ इसने मेहरू को छोड़ा था, दरवाजा वैसे ही नीम था जैसे वो छोड़ कर गया था। वो अंदर दाखिल हो गया। इसने देखा कि सुरख कालीन पर मेहरू हाथ पैर छोड़े बेहोश पड़ी थी। वो भागकर आगे बढ़ा। मेहरू, इसने मेहरू का शाना हिलाया, मगर उसके साख्त वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई। इसने मेहरू के दिल पर हाथ रखकर धड़कनों का अंदाजा लगाया। दिल बहुत आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। या अल्लाह, कहीं कुछ खा तो नहीं बैठी। इसने घबराकर सोचा। मेहरू को अपने मजबूत बाजू में किसी रबड़ की गुड़िया की तरह उठा के नीचे आ गया। इसने से इसके अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पे लिटा दिया, फिर उल्टे कदमों वापस पलटा। खान, फौरन डॉक्टर को ले आओ, हमारा नाम ले लेना। हजरत खान से मुखातिब बड़ी उजलत से कह रहा था। लहजा खुद ब खुद तहमकाना हो गया। खैरियत है जी? इसने पूछा। मेहरू बीबी की तबीयत खराब है, फौरन जाओ। और हाँ, ये लो जीप की चाबी। इसने चाबी अपनी पैंट की जेब से निकाल के इसकी तरफ बढ़ा दी। हुक्म मिलते हुए बाहर को भागा, जबकि बारी का रुख मेहरू के कमरे की तरफ था। वो हनूस इसी हालत में थी। बारी ने फिक्रमंदी से इसका सफेद पड़ता चेहरा देखा, फिर इसके पास ही बैठ गया और इसका मरमरी हाथ अपने हाथों में ले लिया। इतना चाहती थी वो इसे, बहुत ये धचका बहुत शदीद था इसके लिए। जाने रूबी ने ऐसा क्यों किया? क्या चाहती हो? बहरहाल अब तो किसी तरह से यकीन दिलाना, रूबी की हकीकत दिखानी, अपने दामन पर से इस धब्बे को धोना, वो ये सोच रहा था। हज़रत खान डॉक्टर को लेकर आए। इसने मुकम्मल चेकअप के बाद चंद दवाइयाँ लिखकर पर्चा इसकी तरफ बढ़ा दिया। मलिक साहब, ये दवाइयाँ मंगवा लें। क्या हुआ इन्हें? बारी ने पर्चा डॉक्टर से लेकर हजरत खान को दे दिया और फिक्रमंदी से पूछने लगा। कुछ नहीं, बस शौक पहुंचा इन्हें, बहुत हसास है ये, खुश रखने की कोशिश कीजिएगा इन्हें, हल्का सा टेम्परेचर भी है, दवाइयाँ इन्हें खिला दीजिएगा, मैंने इंजेक्शन भी लगा दी, इंशाल्लाह सुबह तक तबीयत बेहतर हो जाएगी। आप मुझे सुबह इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। हजरत खान डॉक्टर को वापस छोड़ने चला गया और मेहरू के सराहने बैठ गया। इमरान और गुल्लो रात के खाने के बाद आए और इसे इस हालत में देखकर परेशान हो गए। गुल्लो ने तो बकायदा रोना शुरू कर दिया, लेकिन बारी और इमरान के समझाने पर इसे ढारस हुई। इस रात की सुबह बड़ी मुश्किल से हुई थी। बारी की ख्वाबेदा आंखों में नींद का शाबा तक नहीं था। चंद घंटों के लिए इसकी आंख लगी, मगर सवेरे वो फिर उठ बैठा। उठने के बाद पहला ख्याल इसे मेहरू का, वो सीधा इसके कमरे में चला है। वो अभी तक सो रही थी, शायद ये इंजेक्शन का असर था। गुल्लो भी इसके साथ ही कंबल में घुसी हुई थी। वो आहिस्ती से पलटा, बावर्ची खाने में आगे जहाँ मतीन पहले से मौजूद था। मलिक मलिक साहब, चाय लाऊं आपके लिए? नाश्ता कर लीजिए, कल रात आपने कुछ भी नहीं खाया था, वो कह रहा था। हाँ, ले आओ। बारी वहीं किचन में कुर्सी पर बैठ गया। इसका ज़हन अभी तक मेहरू की ज़ात में उलझा हुआ था। इसने भी तो कल दोपहर से कुछ नहीं खाया। वो बेचैन सा हो गया, सिर्फ चाय पीकर उठ गया। ये नाश्ता तो कर ले। मतीन ने ट्रे की तरफ इशारा किया। जी नहीं, जी नहीं चाह रहा। वो कहता हुआ निकल गया। वो मतीन हैरत से ट्रे को देखता रह गया। जिस वक़्त इसने आँखें खोली तो गुल्लो इसके सराहने बैठी थी। कैसी तबीयत अब? वो इसे होश में आते देखकर पूछ रही थी। वो चुप रही। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। हम तुम्हें यहाँ लाए थे कि ज़रा फ्रेश हो जाओगी, मगर तुम तो मज़ीद बीमार होगी। कमाल है, इतने अच्छे मौसम का भी कोई असर नहीं हुआ तुम पर। गुल्लो कह रही थी, जब अंदर का मौसम ही अच्छा ना हो तो बाहर का मौसम कितने खुशगवार क्यों ना, असर नहीं करता। इसने अफसुर्दगी से सोचा। तुम्हारा बुखार चेक कर लेती हूँ। गुल्लो ने थर्मामीटर साइड टेबल से निकाला, झटका और फिर इसके मुंह में रख दिया। शुक्र है बुखार तो नहीं है। थर्मामीटर गुल्लो ने वापस दराज में रख दिया। तुम उठो, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता कर लो। मैंने तुम्हारा सूट प्रेस करके बाथरूम में लटका दिया। गुल्लो ने अपनाइयत से कहा। जी नहीं चाह रहा गुल्लो, वो सुस्ती से बोली। जी की मत मानो, चलो उठो। गुल्लो ने जबरदस्ती से उठाकर बाथरूम भेजा, खुद नीचे आ गई ताकि नाश्ते वगैरह का इंतजाम कर सके। जिस वक़्त वो कपड़े चेंज करके नीचे हॉल में पहुंची तो बारी पर नज़र पड़ते इसने नफ़रत से रुख मोड़ लिया। कितनी अजीब बल्कि दिल दुखाने वाली बात थी। जिसकी सूरत देखे बिना इसकी सुबह नहीं होती थी, आज इसी की शक्ल देख के इसने मुँह मोड़ लिया।
बारी ने मलूल सी मेहरू के बुझे-बुझे चेहरे की तरफ देखा। इसका दिल पसीज गया। मेहरू इमरान के साथ वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई। इमरान मुझे वापस जाना है। नाश्ते के दौरान वो इससे मुखातिब थी। अरे इतनी जल्दी भई अभी तो हफ्ता भी पूरा नहीं गुजरा। वो हैरान होकर बोला। मुझे नहीं रहना यहाँ बस इन खुली फिजाओं में इतना हब्बस है कि मुझे लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। मुझे ले चलो इमरान प्लीज। वो भराई हुई आवाज में कह रही थी। बारी ने लब भेज ली जबकि इमरान और गुल्लो इसको ताज्जुब से देख रहे थे। इसकी बातें इसकी समझ में नहीं आ रही थी। और आती भी कैसे जो कुछ भी रूबी मेहर और बारी के दरमियान हुआ था इसकी भनक भी किसी तीसरे को नहीं पड़ी थी। अच्छा आज ही चलते हैं ओके। वो नरमी से बोला कोई और वक्त होता तो इसका खूब रिकॉर्ड लगाता मगर इसकी हालत के पेश नजर वो भी संजीदा हो गया। मुझे भी आज ही रवाना होना था इकट्ठे चलेंगे। बारी ने कुर्सी से उठते हुए कहा बाहर निकल के। सुनिए मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर दोस्त ने कॉफी का कप मेज पर रखते हुए इन्हें मुखातिब किया। कोई खास बात है? वहीद साहब ने किताब पर से नजर हटाए बगैर पूछा। बहुत ही खास, वो मानी के इस लहजे में बोली। कहो वो इनकी तरफ मत जाओगे। कभी आपने अपनी मेहरू की तरफ गौर से देखा? क्या मतलब? वहीद साहब इनके सवाल पर मोतजब से होकर बोले। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इन्होंने गोया इतला दी। ये तो अच्छी बात नहीं, तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। इन्होंने मशवरा दिया। ये काम मैं पहले भी कर चुकी हूँ। अच्छा फिर? वो सवालिया नजरों से इन्हें देखने लगे। डॉक्टर कहते हैं बीमारी कोई नहीं, बस ये टेंशन ले रही है। फिर दोस्त ने कुर्सी घसीट कर मेज के पास गिर बैठी। लेकिन क्यों? अब की बार इनके लहजे में तशवीश का अंसर ज्यादा था। पता नहीं, बहुत ज्यादा पूछा मैंने मगर टाल देती। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी? मगर अभी तो वो पढ़ रही है। आग लगे ऐसी पढ़ाई को, मेरी बच्ची घुल रही है और इन्हें पढ़ाई की पड़ी है। अरे पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। मैंने खुद शादी के बाद बीए किया था। वो चलकर बोली। तो फिर? वहीद साहब ने बेगम की शक्ल देखी। आप बीजान से कहें कि भाई साहब मलिक अनवर से बात करें। बारी से मेहरू की बात बचपन से तय हो चुकी थी। बस अब तो हमें सिर्फ इसको रुखसत करना बारी के साथ। ठीक है मैं करूंगा बात। इन्होंने जवाब दिया। फिर दोस्त मुतमिन सी होगी। कोई और मौका होता तो ये खुशखबरी सुन के जाने वो क्या कर डालती, मगर ये क्या हो गया था? इस खुशखबरी ने इसके अंदर आग लगा दी। इंकशाफ अगर किसी और वक्त इसके ऊपर होता तो वो छूम-छूम जाती है। लेकिन ये इंकशाफ ऐसे वक़्त पर हुआ कि इसका दिल रो रहा था। एक छूटे दोगले पड़ते हुए शख्स के साथ ज़िंदगी कैसे गुज़ारूँगी? नहीं, मैं मर जाऊँगी। इस शख्स की सूरत से नफ़रत है मुझे। पूरी ज़िंदगी कैसे गुज़ारूँगी? क्या करूँ, इनकार? लेकिन इस नकार खाने में मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? यहाँ रीत-रिवाज से बगावत करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। किसी को कुछ बताऊँगी तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। इस शख्स पर तो ईमान है, सबको उल्टा मुझे झूठा समझेंगे। क्या करूँ मेरे मौला? वो नहायत इज़्तिराब के आलम में सोच रही थी। इसकी परवरिश ऐसे माहौल में की गई थी कि बावजूद हक रखने के वो इनकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इस घर में औरत को अभी तक इसके जायज़ हकूक़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। फिर इसी दृढ़पन में हमेशा-हमेशा के लिए बारीकी बन गई। ढेरों मुबारकबाद इसे मिली। खुशियों के गीत इसे मिर्सिया लग रहे थे। इसे लग रहा था कि रूबी की तंज़ उड़ाती आँखें इसका मज़ाक उड़ा रही हैं। एक बटे हुए शख्स के पल्ले बंध गई हो मेहरुन्निसा बेगम, जैसे इसकी तंज़ में डूबी आवाज़ों का तांता सा बन गया हो। इसने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए। पूरा कमरा खाली था। सब लोग इसे तन्हा छोड़कर जा चुके थे। जनवी की ठिठुरती भी सर्दी थी। कमरे में हीटर की हल्की सी गरमाइश तकवीत पहुंचा रही थी, लेकिन इसके अंदर तो आग लगी हुई थी। सेज की पत्तियां और कलियां इसे अंगारे लग रहे थे। बदन पर मौजूद कीमती लिबास और जेवरात सांप बिच्छू बनकर काट रहे थे। वो घबरा के नीचे उतर आई। कमरे में मलकी सी रोशनी माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर सारी बत्तियां रोशन कर दी और खुद तमाम जेवरात एक एक करके उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। फिर बाथरूम में घुस गई। व्हाइट कलर की नाइटी वहां टंगी हुई थी। इसने वही पहन ली और बाहर आकर तकिया और चादर उठा ली और कालीन पर दराज होगी। बारी, ये तुम्हारी सजा है। उम्र भर मेरे कुरब को तरसोगे मगर मैं तुम्हें प्यासा ही रखूंगी। इसने पलके मौनते सोचा, फिर बेखबर हो गई। वो बेहद खुश था। सपने जब हकीकत का रूप धार लेते तो इंसान यूं ही मसरूर हो जाता है। फुल थ्री पीस सूट, ब्लैक सूट में दुल्हा बना बारी इस कदर अजीब लग रहा था कि बेसाख्ता ये बात क्या उठा। यार शादी वाली रात दुल्हन पर रूप चढ़ते तो सुना था, मगर दुल्हा पर भी इतना रूप आ सकता है, ये आज पहली बार देख रहा हूँ। अपने कमरे में कदम रखने से पहले वो जाने क्या-क्या सोच रहा था कि मेहरू से ये कहूँगा, इसे रोनमाई का तोहफ़ा इस तरह पेश करूँगा, मगर जैसे इसने अंदर कदम रखा इसे एक धचका सा लगा। मतलूबा जगह के बजाय वो सुकून से कालीन पर सिकुड़ी सो रही थी। जैसे कि इससे ज़्यादा ज़रूरी काम और कोई ना हो। वो सब कुछ पल भर में समझ गया। तवील सांस लेते हुए इसने दरवाज़ा लॉक किया, तमाम बत्तियाँ गुल कर दी। सिर्फ साइड टेबल पर लैंप रखा, लैंप जलाए रखा, फिर हसरत भरी नज़रों से सेज पर डालते हुए बाथरूम में घुस गया। शौरिश सिफ्त औरत, तू क्या समझती है कि मैं इतनी आसानी से तुझ जैसी औरत से हार मान जाऊँगा? तू समझती कि मुझसे इसे बदज़न करके अपनी बेइज़्ज़ती का इंतकाम लिया तूने? क्या मैं नहीं जानता कि तू किस किरदार और वसफ़ की औरत है? तेरा दामन तो खाली रह गया मगर मुझे मेरा सब कुछ मिल गया। अफ़सोस तू हार गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी हार गई, मगर रुबीना वक़्क़ार मेरा नाम भी बारी है, हारने वालों में से नहीं हूँ। पर तू पगली है, तेरा नकाब उल्टूँगा तो ये भी तेरा असली चेहरा देख लेगी, मगर फिर तुझे कहाँ अमान मिलेगी? अपनी हार, अपनी शिकस्त क्या तुझे चैन से छोड़ेगी? ज़िंदा रहने देगी? वो बेड पर लेटे-लेटे सोचों के गहरे समंदर में डुबकियाँ लगाता न जाने कब नींद के जज़ीरे में उतर गया। सुबह तेज़ दस्तक की आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठ बैठी। आँख खुलते पहली निगाह बारी पर पड़ी हुई एक चादर लिए सो रहा था। इसने अपने ऊपर निगाह डाली। कंबल इस पर ओढ़ाया गया था। वो जल्दी से उठी, कंबल और तकिया उठाकर बेड पर रखा और दोनों हाथों से बिखरे-बिखरे बाल समेटती दरवाज़े की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो ज़हरा अपिया का चेहरा नमदार हुआ। इसने सलाम किया। "बस सलाम भई, क्या रात भंग पीकर सोए थे? कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ?" वो मुस्कुराकर बोली। "इस रात का नशा भंग से भी ज़्यादा होता है ज़हरा।" तहमीना आपा ने झट टुकड़ा लगाया। मेहरू का चेहरा पक्का टमाटर बन गया।
माशाल्लाह भाई, ये साहब तो अभी तक ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। अपिया ने कमरे में दाखिल हुए बगैर अंदर झांका और बारी पर निगाह पड़तेगा। जी हाँ, वरना इस वक्त तक तो इनकी दोपहर हो चुकी होती है, बच्चों बोली। सभी जानते थे कि बारी परिंदों के साथ ही जागने का आदी, ये आदत इसने आगा जान की चुराई थी। अच्छा मेहरू, तुम इसे जगाओ, हम नाश्ता लेकर आते हैं। वो सबकी सब दरवाजे से वापस पलट के इसने दरवाजा बंद किया, बारी के पास आ गई। जाने से जगाते हुए आज कैसी झिझकती महसूस हो रही थी, वरना आज से पहले जब कभी इसे सोते में जगाना होता वो बेधड़क इसे झंझोड़ कर जगा देती। और आज जब इनके दरमियान इतना मजबूत रिश्ता कायम हो चुका था तो वो झिझक रही थी। शायद इसी रिश्ते की करामात थी। वो शशोपन में पड़ गई कि इसे कैसे जगाए। फिर से एक तरकीब सूझी, इसने पहले तो खिड़कियों पर से भारी पर्दे हटाए। फिर कॉर्नर्स पर रखा पित्तल का गुलदान उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। शोर की आवाज सुनकर वो एकदम से उठ गया। मेहरू ने इसकी आंखें खोलते देखा तो अनजान बनकर जमीन से गुलदान उठाने लगी। जगाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं मोहतरमा, वो कहता हुआ बाथरूम में घुस गया। तो तौबा, नजरें की एक्सरे मशीन, मिनटों में हर बात समझ आता। वो इसकी दानिशमंदी की कायल तो थी। गुलदान अपनी जगह पर रखा, फिर बेड की तरफ बढ़ी। इसने बेडशीट उतार के कोने में छाड़ी। सारे मुरझाए हुए फूल धड़ाधड़ करीन पर गिरने लगे। बिस्तर ठीक करने के बाद अभी वो मुड़ी थी कि बारी बाहर आ गया। अगर जहमत ना हो तो मेरा एक शलवार सूट निकाल दो, मैं नहा रहा हूँ, इसे प्रेस करके दे दो। बड़ा रिजर्व लहजा था वो। अलमारी की तरफ बढ़ी और बारी वापस बाथरूम की तरफ। मेहरू ने एक जोड़ा निकाल कर जल्दी जल्दी इस्त्री किया और हैंगर से लटका देकर जब आगे तब दे दूंगी। इसने अपने बालों की चुटिया खोली और आहिस्ता आहिस्ता ब्रश फेरने लगी। इतने लंबे बालों की कंघी करना भी एक अज़ाब ही होता है। इसने सोचा, बालों की चोटी बनाकर अभी वो पलटी थी कि बारी बात का उन पहने सर को तौलिए से रगड़ता बाहर निकला। मेहरू इसे इस हुलिये में एकदम अपने सामने देखकर बुरी तरह गड़बड़ा गई। मुझे आवाज़ दे दी होती, मैं कपड़े पकड़ा देती, वो खफीफ सी बोल रही थी। मियाँ बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं होता, इतना तो तुम्हें मालूम ही है। वो मुस्कुराए। मेहरू कट के रह गई। बारी ने दिलचस्पी से इसका लालनार चेहरा देखा और कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गया। इसी वक्त जब वो दस-बस हो रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाजा खोला तो अप्पी और सोनी भी नाश्ते वहाँ मौजूद थी। गुड मॉर्निंग भाभी जान, सोनी मुस्कुरा के इसके गले से लगी। मेहरू को इसका भाभी जान कहना बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनाइयत सी महसूस हुई थी। लेकिन अगले लम्हे इसका दिल बुझ सा गया। बारी कहाँ है? इसने पूछा तो मेहरू ने बाथरूम की तरफ इशारा किया। रोनमाई में क्या दिया? सोनी ने इसके कान में पूछा। रोनमाई? वो गड़बड़ा गई। इसे रोनमाई लेने का होश ही कहाँ था। ना ही इसने बारी को मौका दिया। वो चुप रही, करीब था कि पोल खुल जाता, मगर इसी वक्त बारी बाहर निकला। बड़ी बहन को देखकर मुहज्जब बन गया। इसने इनको सलाम किया, फिर अप्पिया के बुलाने पर नाश्ते के लिए बैठ गया। फिर बातों के दौरान रोनमाई का किस्सा ही गोल हो गया। वलीमे के लिए बतौर खास शहनाज ने इसके लिए सुर्ख चमचम करती बेहद भारी पेशवाश और सुनहरी पजामा सिलवाया था। मौसद के चली जावे, चमचम कर दी जड़ी पेशवाश सी। वलीमे तो लाल रंग कौन पांदा बीबी। बेहद भारी कामदार लिबास में ढेरों ज़ेवरात पहने फुल मेकअप किए वो मावरा हुस्न की मालिक लग रही थी। बारी की निगाहें बार-बार फिसल कर इसकी तरफ उठ जाती। मलकोती तबस्सुम लबों पर सजाए वो इसकी धड़कनों को उथल-पुथल कर रही थी। कल रात इसने नज़र भर के इसे देखा भी नहीं था, बस कनखियों से इसकी झलक देख रहा था। इसने पर भी शैतान के टोले यानी इमरान वगैरह ने इसके खूब कान खींचे थे। वलीमे के हंगामे सर्द हुए और वो दोनों कमरे में तन्हा रह गए तो बारी ने बहुत गौर से इसे देखा। हसीन चेहरे पर थकान के असर थे, हिरनी जैसी आंखों में खुमार की सुर्खी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपना एक-एक ज़ेवर उतारती। रहने देती, अभी तो मैंने जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं। वो इसके पास आते हुए बोला। मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं, किसी और को देख लेते काफ़ी था। वो तंज़िया लहजे में बोली। मुझे तुमसे बात करनी है इसी सिलसिले में। बारी एक लग संजीदा हो गया। सब बातें खत्म होगी, कुछ बाकी नहीं रहा, वो दृष्टि से बोली। देखो मेहरू, मसले इस तरह हल नहीं होते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक बात की असल तक ना पहुंचो तब तक इस बात का यकीन ना करो। तुम सिर्फ शक की बुनियाद पर नासिहाना अंदाज में समझा था। शक? मेहरू एकदम खड़ी होगी। शक नहीं किया मैंने तुम पर, हकीकत देखी अपनी आंखों से। इसने हाथ में पकड़ा कंगन ड्रेसिंग टेबल पर पटका। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि हकीकत नहीं थी, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। वो चिल्ला गया। अपने आप को सच्चा करने के लिए अब कोई नई कहानी गढ़ेंगे, वो तंजिया लहजे में बोली। इस रोज रूबी जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आई थी, बल्कि एक दफा पहले भी वैसी हरकत कर चुकी थी। मैंने इसे लान तान किया, बुरा भला कहा, वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुझे ब्लेम करी है। तुम समझती क्यों नहीं? इस रोज वो जबरदस्ती चिपकी थी मेरे साथ। वो इसे हकीकत बताने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, एक कमजोर लड़की एक भरपूर मर्द से जबरदस्ती करे, अजीब बात है, मेहरू ने तंजिया अंदाज में से देखते हुए कहा। गल तो सही है, धक्का मार के छोड़ देंदा। ठीक है, तुम मत करो यकीन, लेकिन जल्दी तुम्हें ये बता दूंगा कि जो कुछ तुम्हारी नजरों ने देखा वो सब कुछ गलत था। बारी ने मुस्तहकम लहजे में कहा। मेहरू ने तंजिया अंदाज में से देखा, फिर कपड़े बदलने की ओर से बाथरूम में घुस गई। बारी किसी गहरी सोच में गर्काब हो गया। दिन बड़ी सूरत के साथ आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। एक ही छत तले रहने के बावजूद इन दोनों में अंधे की खलीज छायल थी। ऐसी खलीज जिसको गिराने के लिए मेहरू राजी नहीं थी और बारी जाने के इन मसलतों में घिरा था कि इस दीवार को पार करने की कोशिश वो भी नहीं कर रहा था। इस रोज़ अचानक इसने फार्म हाउस जाने का प्रोग्राम बना लिया। मेहरू को भी साथ ले जाना चाहता था, मगर किसी तो राज़ी नहीं हो रही थी। अभी तक वो दोनों लोग हनीमून मनाने भी नहीं गए थे कि मेहरू की मर्ज़ी नहीं थी। देखो मेहरू, अगर तुम्हें मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत चाहिए, तो अगर तुम अपनी और मेरी उलझन का ख़त्म करना चाहती हो, तो तुम्हें फार्म हाउस जाना ही पड़ेगा। प्लीज़ मान जाओ, ज़िद नहीं करो। वो आजिज़ आकर कह रहा था। लम्हे भर के लिए कुछ सोचने के बाद मेहरू ने हामी भर ली और बारी ने इत्मीनान का सांस लिया। फार्म हाउस पहुंचते ही सबसे पहले इसने खान को तलब किया। रूबी बीबी तो नहीं पहुंची? और मेहरू ने उलझ कर इसकी शक्ल देखी। नहीं जनाब, अभी तक तो नहीं। अच्छा देखो, वो पहुंचने वाली होंगी, लेकिन तुम इसे ये मत बताना हरगिज़ हरगिज़ कि मेहरू बीबी मेरे साथ आई हैं। समझ गए? इसका अंदाज समझाने वाला था। जी समझ गए। खान ने सर हिलाया और दूसरे मुलाज़िमों को भी समझा दिया। जी बेहतर। मेहरू ने ना समझने वाले अंदाज में से देखा। क्या करना चाहते हो तुम? रूबी को आने दो, पता लग जाएगा। अब चलो कमरे में।
वो नॉर्मल से लहजे में कहता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि महरू की सुई अभी तक इसी में अटकी थी कि बारी ये सब क्या ड्रामा करे, अभी तक नहीं पहुंचा, आधे घंटे में गुजरा होगा, अभी नहीं पहुंचे, आधा घंटा ही गुजरा होगा कि मतीन ने रूबी के आने की इत्तला दी। सुनो, तुम बाथरूम में जाओ, कोई आवाज मत निकालना, समझ गई? वो जल्दी से बोला। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वो चिल्लाकर बोली, लेकिन बारी ने इसका जुमला पूरा होने से पहले से बाजू से पकड़कर बाथरूम की तरफ धकेल दिया। सामान तो वो लोग लेकर आए नहीं थे, सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें बारी और महरू के एक कपड़े के जोड़े मौजूद थे। बारी की हदायत पर खान रूबी को लेकर सीधा इसके कमरे में आ गया। बारी ने खान के जाने का इशारा किया, फिर रूबी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, मुझे यहाँ बुलवाना, फिर खुद अपने कमरे में आने की दावत देना, और अब ये मुस्कुराहट में कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? रूबी की हैरतज़दा आवाज महरू के कानों में टकराई। कभी कभी ख्वाब अगर हकीकत में बदल जाए तो हमें इसी तरह हैरत होती है जिस तरह इस वक्त तुम्हें हो रही है। बारी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, बल्कि लॉक भी कर लगा दिया। इतना लंबा सफर करके तय करके आई हो, थक गई होगी, बैठ जाओ। इसने बेड की तरफ इशारा किया तो मजीद हैरान हुई। बारी में शदीद हैरत से मरी ना जाऊं, वो वाकई हद हैरान थी। बारी मुस्कुरा दी। रूबी बड़े इत्मीनान से बैठ तक आई, फिर बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में बैठ गई, बल्कि नीम दराज होगी। तुम्हारी बीवी को अगर पता लग गया तो? रूबी ने गहरी नजरों से देखा। भाड़ में डालो, बीवी को किसका नाम ले लिया तुमने, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। वो बेजारी से बोला, और अंदर खड़ी मैरू ने लब भेज लिया। क्यों भाई, ये तब्दीली कैसी? मैरू में तो तुम्हारी जिंदगी बंद थी। रूबी का लहजा हनूस था। वो तो शादी से पहले का जुनून था, मगर शादी के बाद मुझे पता चला कि किस कदर बोदी और फजूल है। इसे तो जिंदगी गुजारने के ढंग ही नहीं आते जो ढंग तुम्हें आते। शादी को इतने दिन हो गए, मगर आज तक इसने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। मैं अगर गलती से हाथ भी पकड़ूं तो रो रो कर पूरा कमरा सर पर उठा लेती है। वो मुंह बनाते हुए बोला। रियली? रूबी खिलखिलाकर यूं हंसी जैसे महसूस हो रही हो। अब मुझे महसूस हो रहा है रूबी कि तुम जैसी लड़की को ठुकरा कर मैंने कितनी बड़ी भूल की। मुझे दरअसल तुम जैसी लड़की की जरूरत है, हसीन, बोल्ड, जिंदगी को सही तरीके से गुजारने वाली। जबकि महरू में तुम जैसी कोई खूबी नहीं। वो बेवकूफ की हरगिज नहीं समझती कि इंसान के कुछ फितरी तकाजे भी होते हैं। मैं मर्द हूं, कब तक बर्दाश्त कर सकता हूँ? रूबी, क्या तुम मेरी बनने को तैयार हो? बारी नहायत खुले लफ्जों में कह रहा था। इसकी आंखों में नशा सा उतर आया था, इसका लहजा बोझिल हो रहा था। इसने रूबी का हाथ थाम लिया। मैं तो हमेशा तुम्हारी बनने की तमन्ना रखती थी बारी, मगर तुम ही हमेशा मुझे ठुकरा देते थे, धुतकार देते थे। जितना मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी, तुम इतना ही मुझे हेत समझकर धकेल देते थे। अब तुम्हें एहसास हुआ ना कि मैं जो कुछ कहती थी वो सब सच था। रूबी की आंखें अपनी फतह पर चमक रही थी, और अंदर मौजूद महरू को चक्कर सा आ गया। या अल्लाह, इतना बड़ा फरेब, ऐसा धोखा! महरू का जी चाहा कि वो रूबी का गला दबा दे। अब मजीद बर्दाश्त की ताकत इसमें नहीं रही। इसने धड़ाम से दरवाजा खोला, धकेला और बाहर आ गई। बारी से देखकर चौंका नहीं, इत्मीनान से बैठा रहा, मगर रूबी से देखकर झटके से उठ गई। तो तुम महरू? वो बुरी तरह हकलाने लगी। हाँ, मैं चुड़ैल, मेरे दिल में शक का बीज बोकर मेरा सुकून बर्बाद करने के बाद तूने सोचा कि मेरे हक पर डाका मार देगी? महरू गहरालूद नजरों से घूरी थी। बारी? रूबी ने गड़बड़ा के इसे देखा, जो अभी तक मुस्कुरा रहा था। बारी से क्या कहती हूँ? मुझसे कहो जो कहना है। बदजात, तुम्हारी वजह से मैं बारी से बदगुमान हुई, इसके किरदार पर शक किया, तुम्हारी वजह से हम दोनों का सुकून गारत हुआ। अगर अपने हुस्न के जलवे दिखाने का इतना शौक है तो जाओ चौराहे पर बैठ जाओ, बोलियां लगाने वाले बहुत आ जाएंगे। महरू तो जैसे हत्ते से उखड़ गई थी। कूल डाउन महरू, जिस मकसद के लिए ड्रामा किया था वो तो कामयाब हो गया, बल्कि सुपर हिट रहा। अब क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? बारी ने काफी देर बाद गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ड्रामा? रूबी ने छंबे की कैफियत में से। जी हाँ मोहतरमा, ये सब एक सोचे समझे मंसूबे का ही नतीजा कि हमारी जोजा मोहतरमा ने आज हम पर यकीन कर ही लिया, वरना आपने तो हमारा घर खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो कोई नेकी काम आ गई और बाल बाल बच गए। वो मुस्कुरा के कह रहा था। रूबी ने अपना सर पीट लिया। वो तो अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहती थी, मगर यहाँ तो सारी बाजी उल्टी हो गई। अब इससे पहले कि मैं धक्के देकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा अपनी मनहूस सूरत कभी मेरे सामने लेकर ना आना, वरना सबके सामने तुम्हारा वो हशर करूंगी कि याद रखोगी। महरू ने दरवाजा खोलते हुए पुरजलाल अंदाज में कहा। इसने बारी की तरफ देखा। निकलो यहाँ से! महरू चिंगाड़ी तो वो जख्मी नागिन की तरह बल खाती हुई बाहर निकल गई। महरू इस कदर ऊंची आवाज में बोली थी कि मतीन और खान भी वहां आ गए। रूबी मुलाजमों के सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर होंठ काटने लगी। खान, मतीन, अगर आइंदा ये लड़की यहाँ आई तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगी, समझे? इसके लहजे में बला का तहकमानापन और सख्ती होत कर आ गई। जी सरकार, दोनों बौखलाकर बोले। जाओ तुम लोग, इसने हकमाना अंदाज में कहा। दोनों नौकर चले के वो अंदर चली गई, जहाँ बारी बड़ी दिलचस्प नजरों से उसे देख रहा था। मुझे माफ कर दो। वो इससे लिपट गई। अरे रे मोहतरमा, आपकी जगह तो हमारे दिल में है। बारी ने इसे शानों से पकड़ कर उठाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बारी। इसने झुकी झुकी नजरों के साथ शर्मसार लहजे में कहा। इसकी पलकों से मोती टूटकर इसकी आरज़ों को भिगो रहे थे। होता है कभी कभी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एतबार शर्त मोहब्बत है। बारी ने हौले से इसके आंसू अपनी उंगलियों से पहुंच डाले, वो बेख्तियार मुस्कुराने लगी। वैसे रूबी इतनी बुरी भी नहीं, इसे तंग करने की गर्ज से बोला। क्या क्या कहा? मैरी ने घूर कर इसे देखा। तुम्हारी इसी अदा पर तो जान चाहती है, बारी शोखी से बोला। तो इसने छेम कर चेहरा हाथों से ढांप लिया, और बारी दिलचस्पी से इसकी अदा देखता रह गया। जी तो गाइज, यहाँ पे हमारी जो आज की एपिसोड थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी कि आज का नावल था अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो एंड करेंगे। अमजद कुरैशी जबरदस्त नावल होते हैं। आपके अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको, सबको, आपको। आमीन। थैंक यू वेरी मच अमजद कुरैशी। अली बेग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल। थैंक यू अली बेग। अली बेग, काफी टाइम बाद आपका कमेंट आया। पहले तो आप डेली आती थी, रेगुलर थी, अभी काफी टाइम बाद आया आपका कमेंट। म्यूजिक लाइफ जबरदस्त नावल। थैंक यू म्यूजिक लाइफ। अमरीन काशिफ, नाइस। थैंक यू अमरीन काशिफ।
सुंदस ने आपने दिल भेजे, थैंक यू सुंदस। आमना रहमान, थैंक यू सिस्टर फॉर दिस नावल, वेलकम, थैंक यू आमना फॉर योर कमेंट। शहजाद भट्टी, हेलो डियर, आजकल डेली की वीडियो जन्नत के पत्ते सुन रही हूँ। अच्छा जी, सुने, आप इंजॉय करें, मैंने भी बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। थैंक यू मिसेस शहजाद। म्यूजिक लाइव बहुत ज़बरदस्त, और गुलमहर ने बाकी अच्छा नहीं किया। एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ कैसे गलत कर सकती है, ये क्या भूल जाता है कि मकाफ़ात होगा। सही बात है। थैंक यू म्यूजिक लाइव। सुंदस ने आपने दिल भेजे, थैंक यू सुंदस। नायाब, आमरा तो फ़ैल, आउटस्टैंडिंग नावल। और कुछ लोग होते हैं जो खुशकिस्मत, लाइक मंसूरा वाहदी जैसे बेज़ाद जैसा हस्बैंड मिला। लेकिन ये बात सही है कि क्लियर हुई कि किसी को गुनहगार का टाइटल देने वाले हम नहीं होते, बेशक वो हो भी। लेकिन लेकिन क्या पता उसने कोई ऐसी नेकी की हो कि जो उसको बख्शा जाए, जो अल्लाह को पसंद आ जाए, और क्या पता आगे जाके उसको हिदायत का मौका मिल जाए। हम जिस बात का इल्म नहीं रखते, उस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। बस अल्लाह ने जैसा किया मान लो। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। आज मैंने भी एक चवल मार दी। अब मुझे भी अजीब फ़ील हो रहा है। आज यूनी में सर पेपर चेक करवा रहे थे और उन्होंने मेरे नंबर कट किए हुए थे। मैंने कहा कि ये बढ़ा दें, वो नहीं बढ़ा रहे थे। इतनी बहस के बावजूद और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर सर ने बढ़ा तो दिए, लेकिन वो अब मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में बातें सुनाएँगे कि इस बात पे मुझे टेंशन हो रही है। लेकिन क्लास के सामने बोल दिया तो सर ने कहा भी कि उस वक़्त अभी तो लाइफ़ में क्या कुछ देखा है आपने, आप 1-2 नंबर के लिए रो रही हैं। नहीं कीता ते आपने माड़ा ही है। ठीक है, गुस्सा चढ़ता है, बड़ा जब बिला वजह नंबर काट लिए जाएँ, लेकिन रोना ते फिर नहीं चाहिदा। मैंने सोचा आपको भी अपनी यूनी की ताज़ा-ताज़ा स्टोरी सुना दूँ। है तो एम्बैरेसिंग, लेकिन नावल भी यूनी का था तो सुना दी। कोई ना, होता है, चलता है दुनिया। कोई नहीं, सर अल्लाह सर को भूलने की तौफ़ीक दे। आमीन। थैंक यू आमरा। समरीना खान, आई एम फर्स्ट, थैंक यू समरीना। और समरीना ने शुलियाँ पटाखे भी भेजे ने। इकरा अताउल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आइश, वो पहले पढ़ ली चुकी हूँ, अच्छी स्टोरी है। थैंक यू आइश, दोबारा पढ़ लें। इकरा अताउल्लाह, हैप्पी एंडिंग, कमाल की एंडिंग। तनु आर्या, मुझे बहुत टाइम से आशिक टाइप हीरो का नावल का वेट था। थैंक्स, अब मैं कल से नावल शुरू करूँगी। जी ज़रूर सुने। थैंक यू तनु आर्या। ZNT नहीं, इसका ये एक सिंगल नावल है। इसके आगे इसके हवाले से अनाउंसमेंट मैं जल्दी करूँगी, लगाऊंगी। मेरा ख्याल शायद अभी जब तक आपको ये वाली वीडियो मिले मैं वो वीडियो लगा चुकी हूँ। आमना रहमान, थैंक यू सिस्टर फॉर दिस नावल, थैंक यू आमना फॉर योर कमेंट। तुरबीना तौफीक, नाइस, थैंक यू तुरबीना। खालिद असमा, नवली नावल, अमेजिंग नावल है, थैंक यू खालिद असमा। नेक्सस AI ने दिल भेजे हैं, थैंक यू। बड़ा औखा ना रखा आपने। नगीना राशिद, वालेकुम अस्सलाम, अच्छा नावल है बट थोड़ा और लिखना चाहिए था, बस कुछ हो जाता किसी किसी में। थैंक यू नगीना। शुराइम, अमेजिंग, थैंक यू शुराइम। शहजाद भट्टी, खुदा हमारे सोल्जर्स की हिफाजत करे और हमारे मुल्क को भी। मेरा दिल भर आया और बार बार अपने पाक आर्मी की दुआ में हिफाजत मांगी है। ये यार हासिल रीड करोगी? नहीं, हासिल नहीं मैंने रीड करना, वो जो मेरा अहमद का मैंने कोई नावल नहीं रीड करना। थैंक यू मिसेस शहजाद भट्टी, प्लीज़ हीरो को मत मारना। नहीं मारते जनाब, जहान नू मर जांदा ते असीं कित्थे जाना सी। जान मर जांदा ते मेरे चैनल ते नावल नहीं होना सी। म्यूज़िक लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त, पहले मैंने भी सुना हुआ, बट रीशा के नावल जितनी मर्जी सुन लो कम ही लगता है। और इसके सीज़न 2 भी है, वो भी रीड करिएगा। सीज़न 2 से रीच का कोई ताल्लुक नहीं है। और रीच का नावल साइड साइन शही साइन वाला नावल है, वो भी रीड करिएगा। स्टे ब्लेस्ड, वो मैंने किया हुआ, मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ। थैंक यू म्यूज़िक लाइफ। रुला दिया यार शहजाद भट्टी, मैंने कब रुलाया? हो सकता है नावल में कुछ हो। थैंक यू मिसेस भट्टी। तनु आर्य, यार ये पुराना नावल है मुकद्दम और कद्दम का, मैंने सीज़न 1 और 2 दोनों सुने। मेरे चैनल पे तो न्यू है, आपको मेरे चैनल पे सुनना चाहिए। थैंक यू तनु आर्या। मलिक गेमर, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू मलिक गेमर। अहमद अली, वेरी नाइस, थैंक यू अहमद अली। फरजाना चौधरी, मैंने ऑलरेडी सुना है बट आपकी आवाज़ में तो मज़ा ही अलग है, थैंक यू वेरी मच फरजाना चौधरी। बहुत ही अनीस बानो, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी, थैंक यू। वेलकम डियर अनीस बानो, लॉन्ग नावल नहीं सुना आपने।
خیر یہاں پہ گائز کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی انشاءاللہ جلد مجھے دے اجازت. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. میرے گلے دی بیٹری بھی مک گئی, میرے مائک دی بیٹری بھی مک گئی, میرے فون دی بیٹری بھی مک گئی, اور جنہوں نے کمرے 'ਚ سونا وہ مینوں کڈن دے چکراں 'ਚ ہے کہ اسی سونا ہے, بچوں نے سونا ہے. تو مجھے دے اجازت. انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ. اب تک